Cause the subtitles ain't there. I just need to find the maid cafe, I'm asking people where. In my room I'm pulling hose cause I bought that gaming chair. Taking Kaide to the zoo just to see the panda bears. 2D waifus on me and they calling me senpai. Hop on incognito and we watching some hentai. Filter out the tabs cause I like massive opie. Nutted in 2 seconds because she is so fine. Needed some spice so I nutted in the lean. Clapping all these cheeks like I'm playing tambourine. Beating up my meat, that's my daily routine. Marin Kitagawa step on me, I'm your trampoline. Reading dojins on the daily, yeah, you know we going crazy. I be stacking up my manga, yeah, I got 280. Anime is what I'm craving, I'm a weeb so I ain't bathing. Figurines cost 20 bands, but you know that I'm still paying. Hey, L ratio on your wifers cause they trash. Looking like she's Sakura cause the chest be looking flat. Binging anime, got no time to touch grass. Family tree messed up again cause my grandma is my dad. Miyamoto just like Kirino, she's screaming. I just want a 2D girl, please I'm begging on my knees. Man, I'm stuck in the friend zone, yeah, we Tomodachi's. And she's slobbering on my knob and she's saying, funny girl senpai, yeah, that ending gave me pain. Body pillows in the whip and I'm swerving through these lanes. And you know Marin bad when she wear that cosplay. I would let her smack my balls like we playing rhythm games. All these waifus dying cause they getting hit by truck-kun. Can't get past one day without beating it to a cartoon. Smacking Chun-Li's ass cause we both know kung fu. Choji getting fatter every day like a balloon. Watching hentai on the daily, yeah, you already know that I failed no nut November like 40 days in a row. And Hinata looking fine, I'ma steal her from Naruto. Lana Rose got nothing on me and my 2D hoes. Top a hentai body pillow of Chizuru, you know I got a Marin Remen 02 up on me chillin' in the sauna. On my anime we caught up 2D girls I got a lot of. And my waifu Maya up in my bed she's saying, Hey, where'd the beat go? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। ये सॉन्ग न्यूक्लियर ने रेकमेंड किया, मुझे पता भी नहीं क्या था बट आ गया यार, क्या ही दिक्कत है यार। रुको यार, मैं गेम्स क्यों नहीं कर लूँ? हाँ मैं गेम्स ये क्या हो गया? ओके भाई, कैमरा ऑन, गेम स्क्रीन ऑन, येलो एंड येलो। Oh, PasKaLL with the OG cap, let's go. Nice cap, bro. Thank you, bro. 101, show me 41. मुझे बस जाके खाना लेना है गाइस। वैसे सारे फॉर्म्स के रिस्पॉन्स आ चुके हैं, जो भी नए फॉर्म्स थे सारे फॉर्म्स के रिस्पॉन्स आ चुके हैं। अभी वो सब का इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, आज के इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, कल के इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, फिर फाइनली इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे होपफुली। न्यूक्लियर का लो यार बॉस, थोड़ी एंजॉय है। फ्लैश का सीन शॉर्ट हुआ, मतलब आई डोंट नो, अभी देखेंगे आज का मीटिंग में। इंसर्ट ग्रैब फ्रॉम कॉन्जिव, एवीजी को ऑफिसर रैंक मिला ना? यस, एवीजी को ऑफिसर रैंक मिला।
सॉन्ग नेम मैं भूल गया। 1041 10-8 सल्फर। मैं खुद सॉन्ग भूल गया, न्यूक्लियर ने रेकमेंड किया, मैंने लगा दिया। एमपी का इंटरव्यू कैसा था? बाय हिज रैंक यू ऑल शुड नो, आई थिंक ही गॉट ऑफिसर। मेरे को आरपी करनी है, पीसी फेंक दो तुम। न्यूक्लियर क्यों रीअप्लाई करेगा? वो सिलेक्ट ऑलरेडी हो गया, वो क्यों रीअप्लाई करेगा? सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस अभी ध्यान से देखो। वॉरियर को मिला है नहीं? वॉरियर का री इंटरव्यू संडे को, वॉरियर वर्सेस साकाशेवा वर्सेस राउजी, एक इंटरव्यू वही भाई। हाँ ऑब्वियसली न्यूक्लियर तो सीनियर ऑफिसर है। Want to dispatch? Send it. I think we should actually start the interview because there are already 6 participants and I don't know how many we should be expecting today. Around 13 to 14 as they responded. 10-4. 20 for the night, 14-17 for today. I don't know, like we'll start in like 10 minutes. Grab your food, water and whatever you need. क्या बात कर रहे हो? सारे कोड्स तो कॉपी। I've got food and water. I'm ready whenever you guys are. Who are these guys? क्या मैं किसी को जानते हैं यहाँ पे? Is that Lord Whitey? गुड इवनिंग सर। Good evening. कैसे हो? सर बढ़िया सर, आई एम हियर फॉर इंटरव्यू। कुछ पूछना था मेरे को। हाँ पूछो। मतलब इंटरव्यू कब तक चालू होंगे, क्या आपको कुछ पता? Interview will start very shortly. ओके सर। हैं? ये पूछा था साले, ये पूछा था। देखो क्या, जैसे अगर मैं बाजू में खाना खाऊं तुम लोग को दिक्कत है क्या? हाँ, अगर मैं लंच खा लूँ तुम लोग को दिक्कत है क्या? तुम्हें लगता है कि दिक्कत होता भी तो मैं रुकता? तुम्हें लगता है दिक्कत होता भी तो मैं रुकता? हाँ क्या तुम पहली बार आए हो मेरे स्ट्रीम पे? हाँ पहली बार आए हो मेरे स्ट्रीम पे? हाँ क्या खा रहे हो? I'm having one roti, I'm having paneer and I'm having dal. आओ खाना पानी लेके आ। रोक, ये ले। फिर गाड़ी निकालिए चलो। अबे गाड़ी निकालिए मतलब भाई चलाना ही है। चलो ड्राइवर। आज एक बंदे को तोड़ना है। कौन? नाम नहीं रिवील करूंगा, तुमको पता है। Who all are there for today's afternoon interview? You, me, Sanded, and is anyone else on radio? I think Chief is there. He was gonna be there, he told me. कभी जाओगे ये पीडी में? मैंने क्या किया पीडी में? मैंने क्या किया पीडी में? बुक्खड़ साला। इंटरव्यू मुझे देखा
अबे मुझे मुझे खुद पता है मैंने क्या एक्सेप्ट किया क्या रिजेक्ट किया ना सूर्या, मुझे पता है तू किसकी बात कर रहा है, आराम खोल। मुझे एक्चुअली बात है वो मुझे पहले पता लगा, बट ऑल दिस आई एम द फर्स्ट वन टू नो। डॉक्टर का बस क्या बताओ, अभी तक पता नहीं। ऐसे इसमें हैकर कर रहा है पे वो चलेगा। What's up, AK Gaming? Thank you for joining the gang, bro. Really appreciate it. Oh, look, yes, yes. Hello, sir. Hello, how you doing? One direct to Rex. Send it. Just open and close the MDT once. Now, I can't notice you in the MDT. Send for done. One direct to Chief. ऐसे लोग सैलरी ग्रैंड करते He's 10-7 for 10 max, I believe. आओ। Das 41. Send for. 10-4. Welcome on duty. और 101 to Das. Send it. जब भी इंटरव्यू चालू हो जाएंगे पर्सन नेम शौर्या को भेज देना पहले ही, बिकॉज उसने मुझे ईमेल किया फॉर स्पेशल कंसिडरेशन थोड़ा सा। शौर्या और कौन है? बस शौर्या ही ओनली शौर्या। बेचारे ने बोला एग्जाम है तभी भी मुझे बस इंटरव्यू देने आ रहा हूँ। शौर्य। हाँ। सरनेम? उसको तोड़ना है वैसे। आप सरनेम? शौर्या सिंह। शौर्य सिंह। हेलो अलीटा। नहीं उसका लेटर एग्जाम है यार, उसका कल एग्जाम है इसलिए।
करता बॉडी कैम खा तो लूँ. भाई हेल्दी ईटिंग बहुत बहुत मुश्किल है. What I want to Rex, do you just want to start with Yumi and send it until Chief comes in, then we can split up? 10-4, I'm getting food, I'll be there in like 10-4, 1 mic. When you're here, you can join us in M2. 10-4. Okay, sending one candidate, right? नहीं 2 मिनट रुक जाओ. Let Rex come to the PD, then you can send Shaurya first. 10. हाँ रैक, आज किसको हेल्प करने वाला है? हाँ, किसकी चैट में रहूँ मैं? बताओ. क्या लॉर्ड लाइव है? We can also include if any of the FTOs come on duty together. 10-4. $2060 Super. I think 3060 Ti is better than 2060 Super. I think. नजदीक का हेल्प नहीं कर रहा. हम मैं जा रहा हूँ सेंड इट. हाँ. मैं जा रहा हूँ. कहाँ पे? अपने हराम खो रहते हैं, अपने ही हराम खो रहते हैं. क्या हो गया? ठीक कुछ भेजूँ जो मुझे अभी भेजा गया है. भेजो भेजो. ये किस मुंह से भेजो समझ नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, भेजो भेजो. Last one, sir. कैसे भेजूँ ये? ऐसा क्या है? 76. Rex, can you come to Radio 3 for a while? 10-4 switching. मुझे किसी ने बंदे ने ये बना के भेजा. क्या भेजा? देखो देखो देखो. अरे रे, वो लगा लो अंगूठा. नहीं भाई ये पागल हो गया क्या? थोड़ा बहुत 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 वियर्ड लगेगा यार. गाइस एक सेकंड मैं सबको दिखाता हूँ. एक सेकंड रुको. क्या तुम्हें देखना है मुझे अभी कौन सा थंबनेल मिला? किसने मुझे क्या थंबनेल भेजा? हाँ देखना है क्या? मैं दिखा सकता हूँ.
भाई ये थंबनेल भाई ये क्या बनाते रहता है भाई हरामखोर। ग्राइंड दिखा दूं? Triple 211 you as in M1 right? चल फॉर अगर ग्राइंड बोलेगा तो दिखाऊंगा। करो भाई, छी भाई कैसे हो? अबे रुक, मेरे को भेजा, मुझे अभी क्या मिला। तू भी शॉक हो जाएगा। भेजो भेजो। भेजा। देख देख नहीं एक्चुअली मैं ज्यादा जोर से हंसता अगर लेफ्ट में किसी और का फोटो भी होता तो बढ़िया आ जाता। 2 दिन बाद लग जाएगा फोटो। देखो भाई और देखो इसे देखो, मैं तो नहीं सहता इसके लिए इंटरव्यू रिस्पांस एक्सेप्ट करते हैं लोग। देखो मैंने क्या किया? मैं सोचा सबको दिखाओ कि नहीं दिखाओ ये। बाद में है अभी रिस्पांस डाला है, अभी बुली हो जाओगे, अच्छा लगेगा? क्या बोल रहे हो यार, तुम खाना पानी खाते हो पूरा हाथ ऊपर जाता, मेरे को देखो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली शौर्य के बाद वो माइकल हंस है, उनका भी लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस में। दाशी यू कैन सेंड द फर्स्ट कैंडिडेट। भाई मैं कितना वो लग रहा हूँ भाई, तुमने मेरे चश्मे तो गिरा दिए। मुंह धो ले। भाई मैंने आज ना नया लेंस लगाया, मैं एकदम ना मेरे जो अगर ग्राइंड बोलेगा तो दिखाऊंगा। दिख रही है ना जो मैंने, अगर ग्राइंड बोलेगा तो दिखाऊंगा। एलसीडी चीप का है, पता नहीं भाई, पूछो, बोला था रहेगा। देख भाई इधर देखो, देख तो लाओ। रुक मैं सबको दिखा रहा, एक सेकंड रुक जा। ठीक है गाइस, डिटेलिंग देखोगे जॉर्डन भाई? दिखाओ। देखो ग्राइंड की हरकतें देखो। भैंस क्या देखो आग हमारे वाग लोगों की नहीं लगेगा हरकतें, हमारे लोगों की हरकतें देखो। हाँ हंस नहीं ले। 80% ही जा रहा है इसमें। यहाँ पे इमोजी ये तो रियलिटी है। हाँ जी, ठंड में रियलिटी है। लिंक दियो है अबे ओ। वन मार में देगा ई मॉन्स्टर, मैं मारूंगा दे रहा ओ। वो चैलेंज अभी भी चल रहा है, कौन सा चैलेंज? 1-1 डायरेक्ट टू दाशी अभी भी रेडियो 3 पे है क्या? 1-1 डायरेक्ट टू दाशी। आई थिंक सो मैं सोच कर कम ऑन रेडियो 1 एंड सेंड द फर्स्ट कैंडिडेट। 10 भाई वहीं पे रह गया था। मुझे फ्रिस क्यों कर रहा है? गलती कौन सा फ्लोर पे हो रहा है? M1 वो पहला क्लासरूम।
ना ना ईमान सर वो मत करो, वो मत करो। ये किधर से पैदा किया चुराया है। हैं? क्या हाँ, चुराया? इसने लीना का पॉकेट मारा है। चुराया है? यू आर अ चुराया शेरिफ। लीना का था। अरे तब शेरिफ नहीं था ना, अनरैंक था तब। सो दैट मींस यू आर गोइंग टू रुको, हाँ। कैन डाल है। अनरैक था 5 के अनलॉक कर लिया। हाँ। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? माई सेल्फ शौर्य सिंह। All right, my name is Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my right is Jordan Sendit, who is the sheriff in the BCSO department, and to his right is Rex Davis, who is the game warden in the SASPR department. ये इंटरव्यू चालू होने से पहले क्या आप आपका रेज्यूमे एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन हम में से किसी को भी भेज सकते हो? यस आई कैन सेंड। सर सेंड यू। चेक कर। जब तक मैं ये सब चेक करता, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो आपके रेज्यूमे में नहीं है। ओके मतलब मेरा डिस्क्रिप्शन? आपकी मर्जी, डिपेंड व्हाट यू वांट टू टेल मी। Okay, so my name is Shaurya Singh. I'm 26 years old and I completed my higher school education from NOP High School at Los Angeles and pursuing my physical training at PTILA, which is Physical Training Institute of Los Angeles. I have a past 1 year experience of cop. ये सब बोलना है तो तुम्हारा रेज्यूमे पढ़ने का क्या फ़ायदा? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है जो रेज्यूमे में नहीं है। सर Tell उसमें us मेरे about your फैमिली के बारे strengths में and नहीं है weaknesses. और मैं ठीक है, ओके। हैव यू एवर वर्कड एज अ लियो बिफोर? यस सर। कितना एक्सपीरियंस है आपका? सर ऑलमोस्ट 1 year। एंड इससे पहले आप किधर काम करते थे? सर LA पे मैं कॉप था। व्हाट इज योर रैंक? सर सीनियर ऑफिसर। यू आर सीनियर ऑफिसर इन द LAPD रैंक, ठीक है। आपने वो डिपार्टमेंट छोड़ा क्यों? सर एक्चुअली मैं जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो इधर के पहले एयरफील्ड मार्शल थे सर। मेरे को मेरी जो बॉर्न सिटी है वहाँ पे आके सर्व करना था मेरी सिटी को, इसीलिए सर दैट इज़ नॉट माय बॉर्न सिटी LA। मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हुए थे आफ्टर मेरे दादाजी के जाने के बाद, सो आई एम हियर। नहीं सर, आपने LAPD छोड़ा बिकॉज जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था आपको उधर सर्व करना था। यस सर। आपका बर्थ किधर हुआ था? सर लॉस एंजल्स। ओ यू आर बोर्न हियर। यस सर। इंटरेस्टिंग, ओके। सर बट उसके बाद मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे। ठीक है। जो डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है कॉल दी SASP, क्या आपने उसके बारे में कुछ भी रिसर्च किया है? सर लिटिल बिट ऑफ देखा है मैंने इन्फॉर्मेशन। ओके। मुझे एक चीज़ बताओ, आप लॉस एंजल्स में बॉर्न थे तो लाइक एट व्हाट एज डिड यू गो टू लॉस एंजल्स? Sir, I was very small, like 6 to 7 years, but I was very attached to my grandparents. ठीक है। Hmm. मुझे पता है SASP के अंडर कौन से सब डिपार्टमेंट्स आते हैं? सर 3 आते हैं, शायद 3 आते हैं। एक तो BCSO होता है और पार्क रेंजर एंड थर्ड वन सर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मेरे ओके। क्या आपको लगता है यू हैव गुड लिसनिंग स्किल्स? को। यस सर। जब मैंने रेक्स डेविस को इंट्रोड्यूस किया मैंने क्या बोला था?
सर लिसनिंग स्किल्स मतलब जब टैक्टिकल ऑन फील्ड काम आती है ना अच्छा, सर, मतलब उसमें जो अगर सुनना कोई है आप चीज़ सुन समझाते लेते हैं। हो, बाकी सब नहीं सुनना है, वही है राइट आपका फुल? हम्म। मतलब अभी जो हम बोल रहे हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली अगर मेरा इधर डिपार्टमेंट में हो जाता है सो मेरे को है ना धीरे धीरे सबसे इंट्रोड्यूस होऊंगा, बहुत सारी रैंक्स है, बहुत सारे ऑफिसर्स है, तो सबसे धीरे धीरे होते रहूंगा, तो सर एक टाइम के बाद मेरे को सब चीज़ याद हो जाएगा। बट जो टेक्टिकल ऑन फील्ड यूज़ होती है वो सर अगर कोई एक ऑफिसर समझाए तो उस टाइम में मैं एक बार में कैच कर लेता हूँ वो चीज़। वो बट ऑन फील्ड बोथ की आर बात नहीं डिफरेंट। कर रहा हूँ, इट इज़ सिमिलर बिकॉज दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिपार्टमेंट. मैंने जब आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन SASP ट्रूपर, आई यस सर। इंट्रोड्यूस सेंडिट एज अ BCSO sheriff, and I introduced Rex as something being a game warden. हम्म। It was Park Rangers, but I did not. I used the acronym for it because that is what Park Ranger is like. There's a full form to the entire thing. So okay, you did not hear. It is the San Andreas State Park Ranger. That is the SASPR. ओके There सर। is the BCSO. Do you know the full form of BCSO? हाँ, ब्लेन काउंटी शेरिफ ऑफिसर्स। Blaine County Sheriff Officers. हम्म। Okay, and then there's the LSPD, which is the Los Angeles Police Department. हम्म। These are the three sub departments. ओके सर। अगर बाई चांस इंटरव्यू सही गया एंड यू गेट सिलेक्टेड, और अगर आपको एक प्रेफरेंस रहता है टू सिलेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ योर चॉइस, कौन सा होता है? सर पहले तो जो भी है ना मेरे को सीनियर से अलॉटेड होगा, दैट्स फाइन फॉर मी। और अगर मैं एक्चुअली है ना इन तीनों डिपार्ट के बारे में इतना ब्रीफली नहीं जानता, और जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ अभी तक वो है LSPD और ये BCSO। बट आई ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर द पार्क रेंजर टू, सो आपको वो भी मेरे को एलएस एक्सेप्टेबल है। आपको LSPD के बारे में जानकारी है? हाँ। आपको एलएस आपके पास LSPD के बारे में जानकारी है? नहीं सर, सबसे ज़्यादा BCSO के बारे में जान। नहीं, पर आपने LSPD भी बोला राइट? हम्म। पर आपको ये नहीं पता था कि LSPD इज अ सब डिपार्टमेंट ऑफ द SASP, तो क्या जानकारी है? सर आपने अभी सब डिपार्टमेंट ही तो पूछा मेरे को कि अब तीनों में से किस में जाना When I asked प्रेफर you कर। for the सब डिपार्टमेंट्स, यू सेड मुझे BCSO पता है, मुझे पार्क रेंजर्स पता है, और मैं तीसरा वाला भूल गया. सर LSPD बोला था मैंने। वो टाइम पे LSPD नहीं बोला था. सॉरी सर, अगर ओके, आई एम अ बिट नर्वस, दैट्स व्हाई हो सकता है कि मैं बोलना भूल गया। अगर कोई वेरी हाई इंटेंस सिचुएशन हो और आप नर्वस हो गए तो विल यू मेक मिस्टेक्स? नो सर, बट धीरे धीरे इम्प्रूव करना, दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। सो आई नो कि अगर मेरे जो भी सीनियर ऑफिसर्स हो वो मेरे को इस चीज़ को लेके हेल्प करेंगे आगे जाके अगर होता है धीरे तो। धीरे इम्प्रूव करना. ओके, अगर धीरे धीरे इम्प्रूव करने की बात है, टेल मी 5 रीजंस व्हाई यू आर वर्दी इनफ टू सर्व द सिटी ऑफ लॉस सैंटोस. ओके सर, अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करोगे ऑन बेचारे का तो जान सर लोगे क्विक क्या? डिसीजंस, पहला तो मैं ये बताऊंगा क्विक डिसीजंस। अगर मान लो कि कोई स्पेसिफिक टाइम है जब है ना सीनियर ऑफिसर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाता है जिसको है ना मेरे को लीड करना पड़े, तो सर उस टाइम पे क्विक एंड स्पॉन्टेनियस एक्शंस अगर लेने होंगे तो सर वो मैं ना कर सकता हूँ। एंड सेकेंड थिंग सर, टीम वर्क, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है हमारे कोई सी भी डिपार्टमेंट में। और थर्ड चीज़, आफ्टर ड्यूटी भी सर बहुत सारी चीज़ होती है, लाइक बहुत सारे ऑफिसर्स को है ना कुछ ऑफिसर से दिक्कत भी होती है, बट वो है ना उनको बताते नहीं है, उनसे खुन्नस मारता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंटरनल मैटर हो जाता है। तो ऐसा अगर उसको सॉल्व करना हो और मतलब बातें करके सब सॉर्ट आउट करना हो तो सर वो भी एक चीज़ काम आता है, बिकॉज वो चीज़ क्या टीम वर्क को भी तोड़ती है और बहुत सारे सिचुएशंस को ख़राब भी कर देती है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज तो आपने 3 रीजंस बोला राइट, व्हाई यू हाँ डिजर्विंग हाँ इनफ. अभी तक ठीक है, 3 छोड़ो. reason आई बोले। डोंट थिंक यू माइट तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि देयर माइट नॉट बी एनी मोर रीजंस, बट ठीक है, लेट्स फाइन. लेट्स गो. क्या तुम्हें SOP के बारे में पता है? यस सर, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ SOP? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, आपका अगर आप इफ यू वुड हैव टू रेट योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 10 अबाउट SOP नॉलेज, तो आप कितना देते खुद को?
सर अगर मैं खुद को रेट करूँ तो सर 7 या 7.5. ठीक है ओके I अच्छा deducted अच्छा 2.5 हुआ because हाँ बताओ क्यों सर बिकॉज हर जगह का अलग अलग एसओपीज होता है एंड सर बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो है ना एडवांस लर्निंग जो होती है जो कि ऑफिसर्स को पता होती है वो चीज़ मेरे को उसके बारे में नहीं पता सो दैट्स आल्सो अ पॉइंट. ठीक है मोस्ट बेसिक चीज़ रीजनेबल सस्पेशन प्रोबेबल कॉज ओके सर. रीजनेबल सस्पिशन होता है कि है ना आपको किसी चीज़ के ऊपर है ना डाउट है मतलब यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्रूफ और प्रोबेबल कॉज मतलब आपके उसके खिलाफ एविडेंस है. तो सर इन दोनों पे है ना डिफरेंट डिफरेंट वारंट होता है जैसे कि इन्वेस्टिगेशन वारंट आपको है ना ये क्या कहते हैं रीजनेबल सस्पिशन पे आप है ना वो इन्वेस्टिगेशन वारंट भी इशू कर सकते हैं. ओके बट अरेस्ट वारंट आप प्रोबेबल कॉज में कर सकते हैं बिकॉज यू हैव अ प्रॉपर एविडेंस लाइक जैसे ब्लड स्प्लिट्स होते हैं बहुत सारी जगह पे. तो सर दैट्स द डिफरेंस. आर यू 100% श्योर फॉर दिस आंसर हाँ सर. तुम्हें नहीं लग रहा कि कुछ गलत बोला तुमने नहीं ठीक है राइट इन दोनों में से किस में अरेस्ट कर सकते हैं किस में डिटेन कर सकते हैं सब प्रोबेबल कॉज में आप अरेस्ट कर सकते हो. रीजनेबल सस्पेंशन पे आप है ना वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हो. मैंने इन्वेस्टिगेट पूछा ही नहीं सर कौन कौन से बताया था आपने. यू सेड यू आर अ गुड लिसनर आई सेड डिटेन एंड अरेस्ट सर डिटेन आप उसमें कर सकते हो रीजनेबल. रीजनेबल सस्पेशन में आप डिटेन करोगे डिटेन में आप सर्च करोगे कि फ्रिस्क करोगे सर फ्रीज करूँगा पहले तो फॉर लीथल्स. उसके बाद अगर मेरे को ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ हो मानो मेरे को दिख रहा है कि उसके पीछे बैग है बट उसके अंदर कुछ हो सकता है तो उसके बाद मैं ना उससे पहले पूछूंगा कि उसमें क्या है. और अगर है ना मेरे को कुछ ज़्यादा ऐसा प्रूफ मिलता है फ्रेश करने के बाद कि उसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ हो सकती है तब जाके मैं उसको सर्च करूँगा. तो अगर तुम्हें मेरे ऊपर कुछ रीजनेबल सस्पेशन है और तुमने मुझे फ्रिस्क किया एंड यू फील आई हैव अ हेवी ऑब्जेक्ट और आई हैव समथिंग बल्जिंग आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर अगर आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है तो सर सबसे पहले मैं ना बैकअप बुलाऊंगा ओके विच इज़ इमरजेंसी बैकअप. ओके इमरजेंसी बैकअप होगा हम्म. ठीक है नेक्स्ट सर जैसे ही हो बुलाऊंगा अगर मेरे को लगता है कि उसके पास कुछ हैवी सर लीथल अगर हो. ठीक है आपने लीथल नहीं बोला था आपने आपने बोला था फ्रिस्क कुछ हैवी है. बोला आई सेड समथिंग हाँ बल्जी सी द थिंग इज आपने बोला आप यू आर अ गुड लिसनर सो यू शुड लिसन केयरफुली जब द क्वेश्चंस आर आस्क्ड तो मैंने बोला समथिंग यू फ्रिस्क मी देयर इज समथिंग बल्जिंग उसके बाद यू सेड यू विल कॉल फॉर 78 एंड फिर क्या सर फिर है ना मैं उसको डिटेन करूंगा उधर तो डिटेन तो पहले ही कर लिया था तो मैं उसको पहले फ्रिस्क अच्छे से करूंगा कि उसके पास कोई लीथल ना हो. ठीक है उसके बाद मैं उसको चेक कर लूंगा सर्च. फ्रिस्क करने पे अगर कुछ बल्जिंग नोटिसेबल है तो कैसे सर, आइडेंटिफाई करोगे कि वो लीथल है कि नहीं है सर उसको चेक वो क्या कहते हैं सर्च करूंगा उसका कंसेंट लेके अगर वो बार बार मना करता है उस चीज़ को लेके तो सर एक वो लॉफुल कमांड को डिनाई कर रहा है तो सर मेरे को उसको या तो पीडी लेके आके फर्दर सर्च करना पड़ेगा या तो फिर अगर उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं तो सर्च करने देगा वो. और अगर वो ऐसा नहीं मानता तो सर आगे का प्रोसीजर है पीडी में लाके सर्च करना एंड ऑल. Okay, क्या आपको लगता है कि जो भी कमांड एक पीडी ऑफिसर कोई भी सिविलियन को दे द सिविलियन हैज टू फॉलो इट ऑलवेज हाँ सर. Okay, then my next question to this is, do you know how many amendments are there in the Constitution? सर इधर का मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है अमेंडमेंट. Okay, but generally you would know at least दो amendments से पता होगा, right? सर प्रोबेबली अगर मैं बताऊं तो मेरे को नहीं पता यार. Okay. ठीक है. Do you guys have any questions? Sunday Rex. हाँ तुमने बोला बीसीए के बारे में पता है ना तुम्हें. हाँ सर. हाउ मेनी सब डिविजन बेचारा टूट गया. सर 2. व्हाट आर दोस
सर एक तो पलीटो, एक सैंडी शॉर्ट्स। फुल फॉर्म ऑफ पीबीएसओ। हाँ, फुल फॉर्म ऑफ पीबीएसओ। पीवीएसओ, पलीटो ब्लेन काउंटी ऑफिसर, अच्छा, शेरिफ ऑफिसर। फुल फॉर्म ऑफ एसडीएसओ। SDSO, सैंडी डिपार्ट। Wrong. Move on. What's the meaning of code of conduct? सर आई एम नॉट नोइंग दैट। अच्छा, सर मेरे को है ना पूरा मतलब ज़्यादा इतना डीपली नहीं पता, बट थोड़ा सा ठीक है ठीक है। According to you, what's a code red? सर कोड रेड इज़ अ कर्फ्यू सिचुएशन जिसमें एरिया को है ना ब्लॉक कर दिया जाता है और उधर कोई एक्टिव सिचुएशन चल रही है, उधर से है ना अच्छा लोगों वाला को इंटरव्यू हटा भाई दिया भाई जाता है। जो भी 2 से जो इंटरव्यू बनते हैं ना उनकी लग जाती है भाई। दैट्स अ कोड रेड, मतलब कहीं पे भी अगर कंफ्यूज सिचुएशन आप लगाते हो। अच्छा, example of a code red? हाँ, एग्जाम्पल ऑफ अ कोड रेड, ठीक है। सो सर कहीं पे भी बॉम्ब एक्टिविटी होती है, वो भी सोचे लाइक इंटरव्यू से पहले अगर आप मान लो ये बन के पिल बॉक्स स्कूल में अगर कोई की पढ़ाई है ना ऐसा डैमेजेबल चीज़ लेके जाता है जो कि उधर के लोगों को भी हार्म कर सकती है बहुत बड़े मात्रा में, तो सर वो एरिया को हम है ना कोड रेड डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ से जितने भी सिविलियंस हैं उसको बाहर जाने के लिए बोलते हैं। दे आर नॉट अलाउड इनसाइड दैट कोड रेड एरिया। अच्छा, एमडीटी बनाई है कभी 2 साल के एक्सपीरियंस में? कर्फ्यू पास के सर। लोग का भी कभी लगाती है। फॉर्मेट ऑफ एन एमडीटी? सर पहले है ना जो सस्पेक्ट होते पहले तो एमडीटी नंबर तो पहले से ही आता है, तो सस्पेक्ट का नाम, फिर उसने क्या किया है, उसका डेट, उसके Guys, बाद जिस ऑफिसर ने वो the एमडीटी next बनाई interview है। is also going to be fun by the way. तो बिना चार्जेस के एमडीटी बनाते हो? नहीं सर, ये मैं है ना टाइटल फॉर्मेट बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पहले तो डिब्रीफिंग करेंगे कि क्या हुआ था पूरे सिचुएशन का। उसके बाद जब वो अरेस्ट हुआ उसके बाद जो आइटम्स का इन्वेस्टिगेट किया वो, फिर उसके बाद कौन से ऑफिसर ने, नहीं किसने ऑफिसर ने बनाया वो तो लास्ट में आएगा। उसके बाद आपका होता है कि आपने फ़ाइन कितना दिया, सेंटेंस कितना किया, और प्लीड एंड गिल्टी अगर सामने वाले बंदे ने किया है तो वो भी लिखा जाता है, और फिर लास्ट में ऑफिसर ने। अगर उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया एंड ही एग्रीज टू द बेल अमाउंट, विल इट बी अ कोर्ट केस और अ बेंच ट्रायल? सर वो बेंच ट्रायल होगा। अच्छा, चार्जेस हाँ, कितने टाइप्स के होते चार्जेस हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर दे क्लासिफाइड इनटू? सर इधर का मेरे को नहीं पता। हर मतलब जगह का सेम होता है, कोई बात नहीं, बता दो। 3 होते हैं। सर नॉर्मल, बेसिक सर 3 इसका बता मैं दो। सब डिवीजन भी होते हैं लेकिन बेसिक 3 बता दो। एमडीटी मतलब खोला तीन है कुछ चार्जेस ऐसे शीट? चार्जेस जो आप किसी पे लगा सकते हो। ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन। अच्छा वो कलर्स में। बताओ अभी। आंसर भी मैं ही दे दूं कि तो तुम सर बता रहे अगर हो? ग्रीन बताऊंगा तो सर कोई ये ट्रैफिक सिग्नल का अगर कोई तोड़ता है, टाइप क्या या होता है फिर उसका नाम बताओ। सर जे वॉकिंग एक आप ले सकते हो। एग्जाम्पल नहीं, नाम बताओ चार। जे वॉकिंग हाँ ठीक है, और कोई बात। हम्म उसके बाद व्हाट आर अनलाइसेंस अनबिलेबल एंड ऑपरेशन बिलेबल ऑफ चार्जेस? क्या। व्हाट आर बिलेबल एंड बिलेबल चार्जेस? सब अवेलेबल चार्जेस होता है जो कुछ लोअर केसेस होता है जिसके लिए हम है ना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए है ना। अच्छा चार्जेस बोल रहे थे सर, बिलेबल चार्जेस लाइक अगर आपने है ना रेकलेस ड्राइविंग किया है उस चीज़ के लिए, और अनवेलेबल होता है तो उसका एक चार्ज मैं बताऊंगा, शूट आउट ऑन अ लियो। इस परजुरी अनबिलेबल और बिलेबल? सर आपकी आवाज़ नहीं। हेलो परजुरी अनबिलेबल या बिलेबल? सर, आपने जो चार्ज बताया ना वही मेरे को समझ नहीं आया। Perjury. सर मेरे को नहीं पता वो कौन सा चार्ज है। एक्सटॉर्शन? सर बेलेबल। परजुरी? सर वो मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने अभी भी बोला अपने जो बोला अभी चार्ज forgery बताया। बोल। Perjury and forgery are 2 different things.
तो मेरे को इस चार्ज के बारे में नहीं पता। सेंड इट। ठीक है, समझो तुमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा, ठीक है? He does not plead guilty to his charges. He paid the bail amount and he will be in the court. But he did not appear in the court. कौन सा charge डाला? He's supposed to be in the court, but he did not attend. सर डिसोबेइंग अ लॉफुल कमांड, और उसके बाद सर मेरे को नहीं पता उसको क्या बोलता है, बट इसका भी एक अलग चार्ज होता है, डिसोबेइंग कोर्ट, ऐसे होता है, अ कोर्ट ऑर्डर या ऐसा कुछ होता है। Difference between match of force and force of escalation. सर मैच ऑफ फोर्स होता है जॉर्डन बहुत हो जब रहा है। आपके सामने जो भी कोई सिचुएशन हो रही है उस हिसाब से आपको है ना उसी लेवल का फोर्स यूज़ करते हो, उसे बोलते हैं मैच ऑफ फोर्स। और फोर्स ऑफ एस्केलेशन होता है कुछ सिचुएशंस में आपको अपनी है ना फोर्स है वो एस्केलेट करनी पड़ती है, जो कि बढ़ानी पड़ती है फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस। लाइक दोनों का अगर एग्जांपल दूँ, मैच ऑफ फोर्स मैं सिर्फ वेपन्स का एग्जांपल नहीं दूंगा, गाड़ी का भी दूंगा, क्योंकि अगर सामने कोई लो ग्रेड व्हीकल्स होगी ए की, ए प्लस की, देखो तो सर भाई, उसमें है ना हम ही हमारी भी जो गुजराती, पीडी अगर व्हीकल्स थोड़ा है वो भी कोई लो वाली यूज़ गुजराती होगी। में है ही हो जाएगा। और फोर्स ऑफ हमें नहीं पता। एस्केलेशन का अगर एक एग्जांपल दूं तो सर वही है कि बार बार कोई है ना चेंज कर रहा है अपने व्हीकल्स ड्यूरिंग एटी सिचुएशन, तो उसमें जो टायर पॉप करते हैं सर उसको भी फोर्स ऑफ एस्केलेशन हम बोल सकते हैं। और इन द टर्म्स ऑफ वेपन अगर बोले, इफ़ यू और दो ऑफिसर्स बचे, एक दो ऑफिसर्स बचे और सामने बहुत सारे लोग हैं एंड दे आर यूजिंग क्लास 1, बट आप लोग कम बचे हैं, तो आप क्लास 2 या क्लास 3 यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ फोर्स ऑफ एस्केलेशन इन टर्म्स ऑफ वेपन। What are the levels of forces? सर 5। What are those? सर पहले तो प्रेजेंस आपके उधर, उसके बाद आपका आप जो बोलते हो उसे आपका मतलब स्पीक जो आप बोलते हो। थर्ड इज वार्निंग, नॉन लिथल्स, लिथल्स। Okay. हम्म Difference between possession of a firearm class 1 and criminal use of a firearm class 1. सर पोजीशन में उसके पास वो कैरी कर रहा है अपने साथ वेपन, वो है। और यूज ऑफ फायरआर्म मतलब उसने वो क्लास 1 यूज किया है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अच्छा। हम्म We performed a felony stop. यस सर। What do you mean by protective sweep? व्हाट डू यू मीन बाय? Protective sweep. सर जब है ना कवर करते हैं किसी को, मतलब जब हम है ना बैकअप बुला के किसी पे फेलनी स्टॉप करते हैं, तो सर वो जो जिस पोजीशन में सारे गाड़ी रखते हैं सर उसको बोलते हैं। Are you लाइक allowed सबके to एक स्पेसिफिक वो होती है जगह फेलनी स्टॉप करने। Are you allowed to search the vehicle during a felony stop? सर आफ्टर डिटेनिंग द पर्सन। अच्छा, ठीक है। Rex, you there? I think he's in his mind. I have just one more question. Yeah, यस go. सर। I'll give you a situation. There are few people, they robbed a bank. Okay? ओके। They are in a chase. यस सर। You have enough units that are behind them. हम्म They were first in a BMW. हम्म For some reason, they get into an accident and their vehicle starts smoking. हम्म They call a friend and they switch to a Mitsubishi. हम्म I give you a command to get the tires out. To get, like you said, pop the tires. And I give you a command to pop tires. हम्म आप कैसे करोगे, क्या करोगे? सर मैं आपकी बात मानूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं, सीनियर वो ऑफिसर मतलब वो मेरी बात माननी पड़ेगी, वो मैं बोला, पर कैसे हाँ। करोगे? हाउ विल यू गो अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉपिंग द टायर्स? आप क्या करोगे वो टाइम पे? सर जो ड्राइव करेगा प्राइमरी व्हीकल वो कभी भी नहीं उतरेगा। सेकेंडरी व्हीकल को मैं ना बोलूँगा कि टायर पॉप करने के लिए, अगर वो जस्ट मेरे पीछे हो। बट अगर अकेला मैं रहूँगा
तो मेरा जो को ड्राइवर आएगा पास में, को पैसेंजर, मैं उसको बोलूँगा जब वो चेंज कर रहा है और अगर गाड़ी स्टिल खड़ी है तब टायर पॉप करने के लिए। उसमें भी कुछ है ना स्पेसिफिक वो रीजन होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लो कि उसकी गाड़ी ज़्यादा तेज़ है। वो ठीक है, बट लाइक जब वो आपका पैसेंजर उठेगा, हाउ विल लाइक वो क्या करेगा वो टायर पॉप करने के लिए? अगर है ना गाड़ी स्टिल है और मान लो अगर किसी है ना एक अपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं और उनके निकलने का वो एक ही वे, तो उधर तो वो पहले स्पाइक ट्रिप लगाए। ओके अगर उसमें अगर वो है ना मतलब सामने खुले रोड में जा रहा है तो सर वो उतर के वो टायर पॉप करेगा विथ हिज क्लास 1। ओके, तो तुम्हें लगता है वेपन्स आर गिवन टू बस्ट टायर्स? नो सर, बट दैट्स स्पेसिफिक सिचुएशन एंड वी गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम आवर सीनियर, सो वो We तो हमें got करना ही orders पड़ेगा। to pop a tire, not shoot a tire. Government has provided us a very, very good armory. Like you said, that consists of spike strips. यस सर। Why would you use a gun? सर क्योंकि उस सिचुएशन में है ना हम रोक नहीं पाएंगे ना उसके सामने, ऐसे भागते भागते जाके स्पेक्ट्रिप लगा नहीं पाएंगे अगर वो हमारे आगे होगा तो, क्योंकि That कुछ कुछ means you जगह do ऐसे not होती है। know how to use spike strips. That यस सर, means आई नो हाउ टू यूज स्पाइक ट्रिप्स, बट अगर वो है ना मेरे से आगे है तो सर वो जल्दी मेरे से पहले गाड़ी में बैठ के जा सकता है ना, और सर स्पाइक ट्रिप बिछाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। अभी तो मैंने again, बोला अगर वो किसी again, अपार्टमेंट। then you do not know how to use spike strips because आपको अवेयर नहीं है कि हमें ये पीडी आर्मरी क्यों गया है और कौन सा इक्विपमेंट किस काम का है। पर ठीक है, that's all the questions we actually have for today. This is the end of the interview. आपका जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा लाइक सून। ओके सर, थैंक यू, या थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे सर। यू टू। आओ। इसकी भी गलती नहीं है। पता है। माइक बैनिंग आया था रेंजर एक्स। हाँ जॉब का उसका है, बोला मैंने उसको बताया। लेन काउंटी शेरिफ ऑफिसर्स। हरामी रहो, हम तो हरामी हैं भाई। चलो ये वाला तो तोड़ना ही है, नेक्स्ट वाला कैसे ना कैसे तो कुछ ना कुछ निकाल के तोड़ना ही है। मुश्किल रहने वाला तोड़ना। इसमें मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। ये मुश्किल रहने वाला है, पर जैसे तो भेज रहा हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। आई कैन नॉट ट्राई फॉर दिस वन। हाँ हाँ सेंड इट। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा ये वाले में। बहुत पहले उसके वजह से मैं इधर हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं तोड़ सकता, सॉरी। कैसे तोड़ूं इसको, कैसे तोड़ूं इसको? मैं इसको एक क्वेश्चन तो पूछूंगा। व्हाई दिस पीडी? ना 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 नहीं रुको, तू सुन लेगा तू भी हंसेगा। हाँ मेरे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिचुएशनल। जब जरूरत हो मेरे को बोल देना, ठीक है? मैं यहाँ पे लंबे की तो आदत है, हम इंटरव्यू लंबा ही होता है। अरे ये है क्या? वही तो। या कम इन। मैं कम इन सर। आ जाइए आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. My name is Officer Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my right is Jordan Sendit, who is the sheriff of the BCSO department, and to his right is Rex Davis, who is the game warden of the Park Rangers department, the SASPR department. नाइस टू मीट यू सर। सेम हियर मैन। ये इंटरव्यू चालू करने से पहले क्या आप हम में से किसी को भी आपका रेज्यूमे एज वेल एज मेडिकल हाँ जी, सर्टिफिकेशन दे सकते हो? मिल गया मेरे को। What? Do you guys know like each हाँ। other from before? नहीं उन्होंने मेरे को फास्ट बोला ना कि लाइक कि बोला था कि उनको थोड़ा काम है, तो पहले इंटरव्यू थोड़ा, तो इसलिए तो उन्होंने मेरे को उसी समय भेज दिया। I'll share it with you. अबे माइक है। हाँ, if that's Mike, you can let him in. All right.
I'm just going to go through your resume. Until then, क्या आप मुझे आपके बारे में कुछ बता सकते हो जो आपके रेज्यूमे में नहीं है? यस सर, बाकी रेज्यूमे तो आपने पढ़ ही लिया होगा बैकग्राउंड के लिए। बाकी मैं अपने बारे में बता दूं, जैसे कि मेरे को मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत है, जैसे हाइकिंग और स्विमिंग और अपना क्या कहते हैं एयरप्लेन उड़ाना मेरे को बहुत पसंद है। मेरे पास एक पायलट लाइसेंस है उसके लिए, प्राइवेट जेट के लिए। तो सेसाना करके एक प्लेन होता है, मैं वो उड़ाता हूँ जनरली। मतलब कि चार्टर करना पड़ता है, ऑब्वियसली इतना पैसा तो है नहीं कि खुद का खरीद लें, तो चार्टर करके तो वो लोग एक्टिविटीज़ के लिए देते हैं। तो उसमें नॉलेज है। प्लस मुझे फाइटर जेट्स की भी नॉलेज है, जैसे जो मिलिट्री फाइटर जेट्स, वो मेरा वर्क बैकग्राउंड भी है, पर उसकी इतनी एडवांस टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट उनकी मैनेजमेंट, हैंडलिंग, ये वो सब कुछ है नॉलेज। ऑलराइट, ठीक है। यू हैव पास्ट एक्सपीरियंस, राइट? जी सर। लाइक कैन यू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस? वेयर वाज इट, हाउ वाज इट, व्हाट वाज इट लाइक? ये सबसे पहले मतलब कि मैं एक छोटे काउंटी में था, लाइक तो वहाँ पे रुकी कॉप था मैं, जैसे मतलब रुकी इन द सेंस कि कह लीजिए कैडेट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया उसको, तो अभी बहुत टाइम हो गया। तो वहाँ से मैंने सीख के थोड़ा देखा। उससे पहले मिलिट्री में था मैं। मिलिट्री में भी ऐसे ही ऑन फील्ड कॉम्बैट नहीं था, लाइक ग्राउंड सर्विसेज में था। लैंकूल है यहाँ पे डेलीवरी पे आगे, मैं पहले वहाँ काम करता था, तो वहाँ पे सिक्योरिटी हेड था मैं। उसके बाद फिर मुझे लगा यार कि ना कॉलिंग नहीं मिल रही है, तो मैंने कहा ज़रा पुलिस डिपार्टमेंट देखते हैं। तो किसी ने रिकमेंडेशन लेटर डाला था, मेरे एक सीनियर ने वहाँ से। मैंने आई जॉइंड देयर, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो उसके बाद आई ग्रू अप वेरी फास्ट इन प्रोफेशनली, इन द सेंस कि फ्रॉम कैडेट टू हमारे जैसे रैंकिंग स्ट्रक्चर होते थे सीनियर ऑफिसर तक का, 2 रैंक आगे, वो जनरली एक बंदे को जाने में लगते थे 3 से 4 महीने। मेरे को 1 महीने में प्रमोट कर दिया था, ड्यू टू माई पास्ट नॉलेज एंड अदर थिंग्स विच आई अप्लाइड देयर। तो उसके बाद करते करते तो मेरे को लगा कि माई कॉलिंग इज इन ट्रेनिंग न्यू पीपल। जैसे जो नए लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, जो कैडेट आते हैं, उनको मतलब कि एक गाइडेंस देना, उनको ट्रेन करना, उनको समझाना कैसे, वो गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। तो मैंने कहा यार, जैसे मतलब कि कोई बच्चा मान लीजिए कि कोई हाई कमांड बनता है, मान लीजिए बाद में जाके, मेरे सिखाए हुए बहुत हैं वैसे ऐसे हाई कमांड में हैं जो अलग अलग जगहों पे। तो ऐसे बच्चा बोलता है कि सर देखिए आपने उस टाइम पे ध्यान दिया, ट्रेनिंग करी, तो देखिए आज देखिए हमारे। तो उसमें वो कॉलिंग मिली मेरे को, सेटिस्फैक्शन मिली, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं। मैंने कहा मुझे यही परस्यू करना चाहिए। तो करते करते मैंने अलग अलग काउंटीज से, मेरे को इनवाइट्स भी आते थे ट्रेनिंग बैचेस के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो करते करते आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ 450 प्लस कैडेट्स ट्रेन्ड इन माय करियर, एक्सपीरियंस्ड एंड नॉन एक्सपीरियंस। ज़्यादा 80% ऑब्वियसली नए बच्चे हैं, नॉन एक्सपीरियंस्ड। तो उसके बाद एक काउंटी से इनविटेशन था, वहाँ पे मैंने, वहाँ पे कुछ नहीं था, एक दफ्तर था बस, एक पीटी का, और 20 लोग काम करते थे बस। तो मेरे को वहाँ के सेनेट साहब ने बोला कि आप ऐसा करो, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि आप आइए और हमारा कुछ सेटिंग करवाइए यहाँ पे। तो क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सेटल हो पा रहा है, हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो करते करते आई डिड लाइक 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैंने सेट किए, और वो 20 लोग से मैंने 150 लोग मैनेज किए अपने अंडर। और एक टाइम पे 25 बंदे ऑन ड्यूटी फॉर स्ट्रेट 6 मंथ्स मेरा रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और डेली बेसिस 25 बंदे एक टाइम पे ऑन ड्यूटी, एक छोटी काउंटी में सर बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ पे शायद ना हो। ठीक है। सो इसके साथ साथ क्या कहते हैं ये अपना, सर क्या आपके लाइक पॉकेट में कुछ लाइक फिडल कर रहे हैं सर? वो सॉरी, वो मेरे जेब में हाथ चला गया था। सर आई मीन लाइक क्या? ओके जी माफ़ कीजिए। हाँ, कंटिन्यू। तो एक चीज़ बोलो, you're good at training people, you said, right? जी। अगर आपके पास एक कैडेट आता है, since you have such a you like since as per your resume you were at such a esteemed rank, अगर आपके पास एक कैडेट आता है and he is very confused in life, he's a very new cadet, he is learning about how the PD functions, ठीक है, नया बच्चा है। हाँ। तो
वो डिस्पैच पे उसको 2 कॉल्स आते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है? जी एक one where he has been told that एक hostage है एक जगह पे and he has to go and save the hostage, जी and दूसरा पे at the PD itself there's a person come who's filing a FIR about a missing wallet. What would you tell him, or suggestion to give more priority, a hostage or a missing wallet? सर इस क्वेश्चन के ना 2 जवाब हो सकते हैं। पहला अच्छा, जवाब अच्छा। तो सर जो बेसिक जवाब है उसका तो सर यही है कि वो हॉस्टेज पे ही जाएगा पहले, Okay. क्योंकि एज पर मतलब कि एज पर लॉज एंड एज पर रेगुलेशंस ऑफ अ पुलिस डिपार्टमेंट जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ह्यूमन लाइफ इज मोर अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। Of course. दूसरा जवाब सर इसका ये है कि डिपेंड करता है कि कॉल किसने दिया। अभी मान लीजिए हॉस्टेज का कॉल दिया है एक ऑफिसर लेवल के बंदे ने, और एफआईआर पे अटेंड करने के लिए कॉल दिया है एक उसके सार्जेंट ने, जो उससे ऊपर होता है रैंक, तो वो पहले सार्जेंट की सुनेगा, ठीक है सर, क्योंकि वो उसका एफटीओ भी है। पर वो एज अ कैडेट अपने सार्जेंट को सजेस्ट कर सकता है कि सर वहाँ पे हॉस्टेज है तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ पहले। तो बाद में उसके सार्जेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसका सार्जेंट बोलेगा नहीं आप वॉलेट पे ही जाओ एफआईआर लिखने, तो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऑर्डर है ऑन ड्यूटी। आपको नहीं लगता लाइक वो that wallet case can be investigated later and taken care of at a later date? इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड लेटर, यस फॉर श्योर। इसलिए सर मैंने पहला जवाब वही दिया कि हॉस्टेज लाइफ इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन पहले अगर बंदा, जब हम ड्यूटी में होते हैं ना सर, तो सीनियर का ऑर्डर पत्थर पे लकीर होता है। Okay. तो उस केस में ऐसे हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं एज अ कैडेट, क्योंकि कैडेट एक बहुत छोटी पोस्ट होती है रैंक के स्ट्रक्चर में, तो उसको वो बात माननी पड़ेगी। पर वो सजेस्ट कर सकता है, जैसे मैंने बताया, वो बोल सकता है कि सर वहाँ पे जाना चाहिए। पर अगर कल को कुछ इशू होता है, मान लीजिए वो हॉस्टेज की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, और कैडेट पे अगर बात आती है, तो एज पर रेगुलेशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कैडेट जाके वहाँ पे ये कौन है? ये बंदा है जिसने मुझे कॉपर भी सिखाया है कि आप पहले वॉलेट इंस्पेक्ट कीजिए। तो वो सार्जेंट की गलती है, वो कैडेट की गलती नहीं है। अच्छा, वो सार्जेंट की गलती होगी। ऑलराइट, ओके। जी सर। I'll just make note of this कि अगर कोई बोलता है कि वॉलेट के पीछे भागो तो वो सार्जेंट की गलती होगी, बिकॉज नहीं, गिवन दैट वो सार्जेंट ने कॉल दिया उसको कि हाँ, आपने of course, hostage छोड़ के wallet absolutely. तो the thing is, I want to understand, after reaching at such a high space in that department of yours as the LCPD, why would you want to like let go of that post and look out for something else? Like, वो क्यों? सर मैं काफ़ी सीधा आदमी हूँ, मैं सीधी बात बताऊंगा कि मेरे को करियर में ग्रोथ चाहिए। छोटी काउंटी से बड़ी काउंटी आना, ग्रोथ, ठीक है, fair enough. प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है। in the San Andreas state, क्या आपने रिसर्च किया about the SASP? I assume you already have done research, but I just thought I'll ask. जी। आपको पता है SASP के अंडर कौन से सब डिपार्टमेंट्स आते हैं? सर एसएसपी के अंडर देखिए, एसएसपी सैन एंड्रियास का स्टेट पुलिस है। स्टेट पुलिस के अंडर शहर, डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए हम लॉस एंटोस में रह रहे हैं अभी, जैसे तो लॉस एंटोस में जितना पुलिस काम करेगा, जहाँ जहाँ पे भी लॉ एनफोर्समेंट का डिपार्टमेंट रहेगा, एलएसपीडी, बीसीएसओ, पीडीएसओ, ठीक है सर, पीबीएसओ, एसडीएसओ, ठीक है सर, ये सब कुछ, पाक रेंजर, ये सारे के सारे स्टेट पुलिस के अंडर आएंगे। ओके, ऑलराइट। सो एज ऑफ नाउ हमारे पास 3 फंक्शनिंग डिपार्टमेंट है। जी। One is the LSPD, one is the BCSO, and one is the SASPR. जी। If this interview goes well and eventually हम आपको select करते हैं and हम आपको एक preference दे to choose a department of your choice, आप कौन सा, like what would be your preference? सर मेरा एलएसपीडी ही रहेगा। And बाकी सब क्यों नहीं, like why not BCSO और Park Rangers? सर क्योंकि देखिए, एक मेरे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बोथ में, बीसीएस और पार्क रेंजर में। देखिए कुछ नया ट्राई करने की बात अलग होती है, वो आदमी तब कर सकता है जब वो शुरू कर रहा होता है करियर। पर अभी मैं उसी चीज़ को ब्रश अप करूँ, उसी चीज़ को और इम्प्रूव करूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑलराइट। I'm pretty sure because you are such a high rank, you know about the SOPs, right? जी। SOP सर। Sandy, do you want to take care of the SOP part of it? नहीं, go ahead. Alright, okay. Giant bit. Yeah, alright, okay. Okay, so आपने honestly like, I want to ask you chain of command because you've already told me that, but what is match of force? सर मैच ऑफ फोर्स के स्टेप्स होते हैं। जैसे मैच ऑफ फोर्स, पहले डेफिनेशन बताता हूँ। मैच ऑफ फोर्स मतलब कि सामने जो आपके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करी जा रही है इन अ कॉम्बैट जोन, उस फोर्स को आप मैच करेंगे। जैसे कि अगर सामने से आपको मुक्केबाजी हो रही है, मारपीट हो रही है,
तो माइंड सॉरी मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा वैसा फील्ड टाइप का है, सॉरी। ओके जैसे आपके साथ असॉल्ट हो रहा है थ्रू मिली, लाइक मिली यानी कि मुक्केबाजी, तो आप अपना बेटन यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथ यूज़ कर सकते हैं, या अपना नॉन लीथल डिवाइस यानी कि टेजर हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो यूज़ कर सकते हैं। शॉटगन हो सकती है स्लग वाली रबर के, ओके वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक मुक्का एक्सट्रीमली लीथल नहीं होता है, वो नॉन लीथल में ही माना जाता है ओके टेक्निकल में। तो सामने अगर आपको क्लास 1 फायर आर्म यानी कि सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन, पिस्टल, रिवॉल्वर यूज़ हो रहा है, तो आप अपना सर्विस पिस्टल यूज़ करेंगे। ओके अगर आपके सामने क्लास 2 फायर आर्म यानी कि ऑटोमेटिक फायर आर्म या सेमी ऑटोमेटिक हाँ राइफल, पूछने के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए एक आंसर ईएमआर, में। एआर, ये सब कुछ यूज़ हो रहा है, नहीं नहीं तो मैंने आप सारे अपना क्वेश्चन आंसर कर लिए एक आंसर में। एसएमजी, एआर जो आपको मिलता है आर्मालाइट का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके सामने क्लास 3 यूज़ हो रहा है जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, ये अपना ये वो, तो आप अपना क्लास 3 यानी कि एक्सप्लोजिव्स, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट ओके। कोड रेड का मतलब क्या होता है? कोड रेड का मतलब सर ये होता है, कोड रेड एक जगह को माना जाता है जहाँ पे मान लीजिए गोली चल गई है, तो वहाँ पे 4 सस्पेक्ट हैं, चिल वो ठीक है वाओ। चाहे अरे यार मान इसने मुझे लीजिए आरपी होल्ड आउट सिखाया, लेके मुझे इसको बैठे हैं तोड़ना या फिर है। तो सड़क पे हैं, कहीं पे हैं, उन लोगों ने गोली चला दी है पुलिस के ऊपर या किसी सिविलियन के ऊपर वहाँ पे, तो वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी के ऊपर डेंजर आ रहा है बहुत ज़्यादा, ओके लीथल वे में। सर आई थिंक आपके फ़ोन पे स्काइप बज जाता सर। हाँ एक सेकंड होल्ड कीजिए। हैं हम होल्ड करें या उनको बोल रहे हो? नहीं मैं कह रहा था आप होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। हाँ हाँ कोई कोई नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि कोड रेड ऐसा मतलब कि कोड रेड वो एरिया हो जाता है, तो उस दायरे में पुलिस नाकाबंदी करती है, बैरिकेडिंग करती है आसपास जगह जगह, उस एरिया को बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे सिविलियंस ना आ पाए। और वहाँ पे जो भी इंसान के हाथ में बंदूक होती है, या वो इंसान एक पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो उसकी जान के लिए हानिकारक है, तो वो उसको शूट ऑन साइट कर सकता है, तो उस एरिया को कोड रेड माना जाता है, वो लागू हो जाता है सर। ओके क्या आप व्हाट डू यू बिलीव इन मोर, टीम वर्क और वर्किंग ऑन योर ओन? टीम वर्क सर, टीम वर्क। ओके मैं आपको एक छोटा सा सिचुएशन बताता हूँ। आप अल्टा स्ट्रीट गए हो जो ट्रेन स्टेशन पे? जी 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 वही वही। हाँ हाँ जी। उसके सामने हैव यू सीन दैट मैसिवली ह्यूज अपकमिंग बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ तो बन रहा जी है? जी हाँ। जी जी। समझ लो देयर आर लाइक 5 criminals out there, they have class 2 weapons on them जी and they've already decided to fire on the police department. जी चलो तुम्हारे यूनिट्स इनफ इन नंबर्स है टू टेक केयर ऑफ देम, कोई दिक्कत ही नहीं है। out there and as per tactical skills and combat skills, you are probably one of the most experienced officers from all of the other officers out there. Keeping this in mind, क्या आप would you rely on yourself out there and go try to take down the suspects on your own, or would you listen to your commands of sticking to a situation and strategizing and moving ahead? सर लिसनिंग टू माय कमांड्स एंड Okay. गिविंग कमांड्स टू माय जूनियर्स एंड स्ट्रेटेजाइजिंग एंड मूविंग अहेड विद द टीम, क्योंकि सर अकेला मैं अगर 5 बंदों के सामने जाऊंगा तो सर मेरी तो जान गई ना। Fair enough, fair enough, fair enough. That is right. What's the difference between frisk and search? सर फ्रिस्क एंड सर्च, देखिए फ्रिस्क सर मान लीजिए हम ऊपर ऊपर से आदमी को फिजिकली टच करके या फिर तो वो मेटल डिटेक्टर से स्कैन करके हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि उनके पास अगर कुछ है, तो मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने आपको फ्रिस्क करना है, तो मेरे हाथ आपकी जेबों के अंदर नहीं जाएंगे, मैं आपकी छाती, आपके पेट, आपकी पीठ या आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास टच करके देख सकता हूँ कि अगर आपके पास कुछ वहाँ पे रखा हुआ है कि नहीं है। सर्च का मतलब सर ये होता है कि मैं आपकी जेबों में हाथ डाल रहा हूँ, आपकी जेबें फरोल रहा हूँ, आपके वेस्ट के नीचे उसको खोल के देख रहा हूँ, या आपके प्राइवेट पार्ट्स वाली जगह के आसपास देख रहा हूँ। केस लॉस पढ़े सर आप? जी सर, सब पढ़े? डिपेंड करता है अभी किस जगह के। अच्छा कहाँ से आप? मैं सर वैसे तो इंडिया और नहीं अपने प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस का था आप? यूएस एक्सपीरियंस में सर देखिए मिरांडा राइट्स का केस लॉ मुझे आता है। अच्छा एक केस लॉ बता, ठीक है। मेन सीरिया वर्सेस एक्टर सीरियस।
What does this case law state? क्या नाम बोला सर? Mens rea versus actus reus. नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा सर मैंने यूएस के केस लॉस कम ही पढ़े। मिरांडा का कोई मेरे को बात आता है, नहीं। मिरांडा राइट्स वाला आता है। ठीक, एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। समझ लो आपने गाड़ी को पुल ओवर करा, ठीक है? जी आगे गया आप, गाड़ी के अप्रोच किया ड्राइवर को, डैशबोर्ड पे आपने देखा एक पिस्टल पड़ी है, जी बट दैट पिस्टल टर्न्स अप टू बी अ ब्रोकन फायर आर्म। जी वो बंदा कह रहा है मैं तो पीढ़ी के बाद सरेंडर करने जा रहे थे ब्रोकन फायर आर्म। जी So which charge are you supposed to, or else are you like supposed to charge him with a charge, or you'll have to let him go? Sir, I will first confiscate that broken firearm. Secondly, I will detain him. Thirdly, if my forensics team tells me that the firearm is actually broken and not in a working condition, so then he cannot be charged. Though I will investigate upon it, that how he got a hold of it, and if in investigation it is proved and we get an evidence that the firearm was previously operational and was held by a person unauthorized, so only then he can be charged. ठीक है, परफेक्ट। समझ लो आपने एक सस्पेक्ट को पकड़ा, ठीक है? जी सस्पेक्ट को पकड़ा, आप पीढ़ी ले गए and जी he completely forgot to read his Miranda rights. He forgot completely out of him. मैंने उसको मिरांडा भूल राइट से गया। नहीं पढ़ा। जी हाँ, जी अब वो बजे जा रहा है, जी लॉयर को बुला लिया उसने अपने, जी लॉयर को बता दिया कि इसने मेरे को मिरांडा राइट्स नहीं पढ़ा, जी और लॉयर भी बजलीश निकले, दोनों ऐसे हैं। वो तो होते ही हैं सर। जी हाँ, according to case law, are you supposed to process him further, or will you have to leave them? Sir, I will have to leave him, or else my job will be gone, and I can also go to jail for that, because because if I don't read anyone's Miranda rights, that comes under illegal detention or illegal arrest. And whatever, वो बंदा सर मेरे सामने किसी को गोली भी मार देगा ना सर, और मैंने राइट नहीं सुनाए हैं, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में सुना नहीं जाएगा, वो इलीगल अरेस्ट और इलीगल डिटेंशन के अंदर आ जाएगा, और वो बात मेरे ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, इसको छोड़ना पड़ेगा। चार्जेस पता है आपको? फेलिनी, मिसडीमेंट, ये सब। तो कुछ चार्जेस पड़ेगा आपको, क्लास में रखना कौन सा? जी ग्रैंड लार्सेनी। ये सर फेलिनी। फॉर्जरी? फेलिनी डिपेंड्स, फॉर्जरी डिपेंड्स कि ठीक है, समझ किस लेवल पे हो रही है। मिसडिमिनर भी होती है। आर्सन? फेलिनी, आर्सन तो फेलिनी। impersonating a judge? फेलिनी। accomplice to armed robbery? फेलिनी। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन। समझ लो आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? जी उनका लीगल वीड का बिजनेस है। लीगल वीड, ठीक है सर। आपको कॉल आता है कि वो किडनैप हो गई। ये माइकल हंस है गाइस, और जिसको भी नहीं पता है, आप गाड़ी निकालते हो, डिस्पैच पे एक और कॉल आती है कि एसएसपी चीफ किडनैप हो गया। जी लेकिन आप जहाँ पे आपकी दोस्त किडनैप हुई है, जिनका लीगल वीड का बिजनेस है, यार ऑलमोस्ट देयर, पहुंच गए ऑलमोस्ट उधर, लेकिन चीफ का भी आ गया किडनैप होने का कॉल। तो हाउ विल यू टैकल इट? बैकअप दोनों जगह पे चाहिए ना। हाँ, तो सर चीफ, अच्छा कोई बात। दूसरा सिचुएशन, आपका एक दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा दोस्त, एंड यू आर कैप्टन ऑफ एलिस फ्यूरी। दोस्त ने आपको भरोसा करके एक पेन ड्राइव दिया, आपने मस्त वीडियो देख लिया पेन ड्राइव से, और पेन ड्राइव घूम गई हो गई आपसे, और दोस्त निकला एक फेमस रेस्टोरेंट लाइक फास्ट फूड चेन का ओनर। उसको पता चल गया आपका पेन ड्राइव घूम गया आपके हाथ से। अब क्या करता है, पूरी पीढ़ी को बैन कर देता है उसके फास्ट फूड चेन से। जी तो कैसा भी, हाउ विल यू टैकल दैट सिचुएशन? And that fast food chain is like the only restaurant which is open like 24 hours. कैसा Only? भी? हाँ, ऐसा मतलब और कहीं खाना नहीं मिलेगा? नहीं। तो सर पीडी वालों के लिए तो सर देखिए, बच्चों के सामने तो शाहजहां भी झुक गए थे।
हम भी झुक जाएंगे कभी। झुक जाएंगे आप, ठीक ठीक है। रेक सर कुछ पूछना है? नहीं सर, मैंने तो पहले ही बताया आपको। ओके हाँ। ट्रूपर भाई आपको कुछ पूछना? Just for my understanding, one thing that Hmm. if you are, if we do consider you in this department, and we hope, I mean, like, we feel you're capable enough with your CV, with the way your interviews gone, we feel you're capable enough to train people. Would you be up for that opportunity and ready to be take on something like that? यस सर। ठीक है, I have no more questions. ये टोपी वाले सर को कुछ? नहीं नहीं, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं क्या ही पूछूंगा। Sometimes it feels like, yeah, he goes speechless at some points in life, but that's okay. Like, in front of certain people. या वो जैसे रोडीज में रन विजय होता था कि आई एम स्टंट। हाँ सेम है। मैं नॉट स्टैंड लाइक, ठीक है मतलब, है ना, सबको तोड़ सकता हूँ, कुछ को नहीं, यू नो। वैसे can you like just from my understanding, since you have trained over 150, no, how many 450। 450 officers, you might have like a say list of 5 or 10 officers who you feel have like crossed expectations and been and really stood out in their field. Like, are there any names like that in your mind? यस सर, यस सर। So there also must be some officers who might have like destroyed the expectations. You're like, you must be like, यार इसको क्यों सिखाया मैंने, अच्छा, ये मेरा नाम खराब कर रहा है। वो भी हैं। तो ऐसे like if you don't mind कुछ वी asking, डोंट वांना नो। हाँ, सर बुरे वाले बंदों को तो नहीं मैं बता सकता, अरे लेकिन यार, मेरा थोड़ा वो बाद में जान अच्छे लेंगे, वालों का ठीक मैं है, बता आज सकता आप ड्यूटी पे हूँ। होगा ना ठीक तो हम है, लोग बाद ठीक में है। discuss बुरे वाला करेंगे। अच्छे वालों का, बुरे वाला एक्चुअली जाने में मजा था, पर हाँ ठीक है, अच्छे वाले का बताइए तो। अच्छे वाले बहुत सारे हैं, जैसे एक युवराज करके लड़का था, एक एरन सेज करके लड़का था, और उससे पहले एक क्या कहते हैं थ्री प्रिंस करके भाई साहब थे, उनको भी मैंने ट्रेन किया था, और एक रेक्स डेविस करके लड़का था है? जो कि Rex? दूसरा नाम का अच्छा, another दूसरा Rex. था। Okay, 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 okay. जी, जी, जी। वो भी हाई कमांड बन गया था। काफी हैं, काफी हैं। Rex High Command, Rex High Command. सस लग रहा है। जंगल वाले डिपार्टमेंट के And थे वो। फिर send it. इसने पहले से ही CV भी ले भी लिया था. I think they know each other. सस है भाई हाँ. सस। तो Rex? अगर ऐसा है भी तो क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा, but at least be honest with us, yeah, Rex. Like if it's true, it might be true. It's fine, but you can be honest with us. Like you don't have to lie about. Yeah, it's true man, it's true man, क्या दिक्कत है यार? Wait, you'll know each other. I am proud of Rex Davis. Yeah, and we know each other man, come on. And being professional, sir, we don't act in a way that we know each Yeah, other. yeah, that's why. I'm actually proud of him. Very good, very good. He was a cadet when he came, you know, and I trained him well. Trust him. Solo cadet sir, solo cadet. Solo cadet, yes, and हाँ. he will be a very good asset to you, Mr. William, Officer क्या William. चल रहा है सन्नट? कुछ समझाएगा मुझे? ये इंटरव्यू चला था ना पहले 2 मिनट पहले? थोड़ा गेट तो खत्म हो टुगेदर गया वाला ना? सीन लगा रहा। अच्छा, ओके, ओके। खत्म हो गया ना? एक सेकंड तब है, तो एक पूछ- सेकंड है। हाँ. Sir, one thing is for sure, sir. Trooper Jake. यस सर। सर आपके तो लिए मैं सर क्यों मैं बुला रहा एक हूँ? चीज हाँ? बोल दूंगा। आदत हाँ। जी, ट्रूपर जेक सर। जी सर, मैं कह रहा हूँ सर कि ना आपके सर जो नए बच्चे आएंगे, जैसे मतलब कि हमारे यहाँ पे देखिए सर, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ, ओके, थोड़ी उम्र भी है, तो मैं कैडेट, जैसे कैडेट अपने बच्चे जैसा होता है, ओके। तो बच्चों को सर ऐसा ट्रेनिंग, ये जो भी अगर आप उनको मेरे अंडर डालेंगे सर, यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, बेस्ट वंस। Unfortunately or fortunately, I don't know you, but I trust you with that. So yeah. I have a मैं- vouch. मैं- I have a vouch. Yeah. No, Rex you Davis can don't. vouch. You don't need a vouch for that. To be honest, yeah, I don't know you, but Yeah, I your trust you with interview that. says it all Yeah. actually. Yeah. Resume and all. उसमें थोड़ा दिक्कत है। All right, Mr. Hans, thank you for your time. This is the end of the interview. Your response will be out in due time, and we will let you know about the results जी as सर। well. जी So yeah, thank you for your time. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। यस मैं रेटिंग करोगे अपने आप? नहीं करने रेटिंग क्या, कितना आउट ऑफ कितना? हाँ भाई, क्या?
भाई मतलब ये मेरे को समझ नहीं आया बैंक वाले यार, मतलब व्यूइंग राइट्स क्यों देते हैं नेट बैंकिंग में? साला मतलब एक्टिवेट करने के बाद 1 घंटे तक अभी वेट करना पड़ेगा फुल ट्रांजैक्शन राइट्स के लिए। तब एक्टिवेटेड ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पे सिर्फ व्यूइंग राइट्स ही है, जो देखने के लिए थोड़ी लूंगा नेट बैंकिंग। साला हरामखोर इंसान ने वॉलेट को कम प्रेफरेंस दिया हॉस्टेज से। इसके सिचुएशंस और हेवी थे, वो पता है, रिसेंट वाले थे वो तो दोनों। पता है मुझे, एक का पता है, दूसरा का नहीं पता। मेरे को दोनों पता है भाई, पहले मैं वाला क्या दोनों था? से पहले वाला क्या था? वो अरे वीट वो वाला? उसने बोला ना, वीड वाला सुनाया, फिर वो दोस्त का बर्गर शॉट वाला। वो ठीक है, अरे सॉरी, रूसर रूसर रेस्टोरेंट। रेस वाला, रूसर रेस वाला वो तो हाँ। पता है। वो वीट वाला कौन सा है? अरे क्या बंदे हो भाई तुम? मैं भूल गया। कोई गांजा वाला टाइटल नेम था किसी का। ओ ओ ओ, अच्छा 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 अच्छा। समझे? You can bring the next one, Raj बाबू। 76 इटी A3 अरे कितने लोग आए हुए हैं अभी? ये है 7 8 10 तो आई थिंक। अरे माँ की। अबे स्प्लिट होना होगा, बुलाओ भाई बैकअप एफटीओ को। एक बार वो नॉक करके आ जाना, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग के साथ चालू कर लो। आई जस्ट ट्राई टू कांटेक्ट एफटीएस। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है। So one in the blue shirt is SASP Trooper Jake Williams. Me in the grey shirt is Sheriff of the Senate. On my right is Game Warden Flex Davis from SASP. What's your name, sir? सर माय नेम इज कार्ल जॉनसन। Kyle Johnson. यस सर। फिल सर्टिफिकेट बना दिया आपने? यस सर। भेज दो जी सर। रिज्यूमे के साथ। ओके सर। Check it out. Tell us about yourself, Kyle Johnson. जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है वैसा बताना। क्या चीज़ सर? अपने बारे में बताओ जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है। जो रेज्यूमे में नहीं लिखा तो सर, नाम से शुरू कर देता हूँ लेकिन रिज्यूमे में लिखा। So sir, my name is Carl Johnson and I am from Liberty City. My age is 29 years and my father was also serving for the Liberty City government in the fire department, and my mother was a housewife. When I was 15 years old, my mother died, and my mother's dream was that I should be also like my father and serving the city like him, the way he's doing. But I had some different plans. I want to work in the police department from since my childhood. हिंदी पे आ जाता हूँ। तो सर उसके बाद जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई करी, अपनी लिबर्टी सिटी से ही करी है सारी। उसके बाद जब मैं अपनी पढ़ाई करके निकला तो फिर मैंने एक छोटी सी जेनिटर की नौकरी पकड़ी थी पुलिस डिपार्टमेंट में लिबर्टी सिटी के। एंड उसके बाद सर मैंने वहीं पे अपने पेपर्स वगैरह दिए एंड आई वाज सिलेक्टेड एज अ ट्रेनी इन द लिबर्टी सिटी पुलिस डिपार्टमेंट। एंड सर वहीं पे आई वाज गेटिंग प्रमोटेड एंड वहाँ पे आई एंडेड अप एज अ सीनियर ऑफिसर। एंड वहाँ से मेरे को बाहर निकलना था तो आई केम टू लॉस एंटोस फॉर माय फ्यूचर। अच्छा, यस सर। जेनिटर से सीनियर ऑफिसर? नहीं सर, मतलब पहले जेनिटर की छोटी मोटी नौकरी, मतलब कि फैमिली सपोर्ट। उसके बाद सर मेरा बचपन से सपना था मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊँ, तो मैंने वहाँ पे पेपर भर दिए थे एंड वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ ट्रेनी पे। उसके बाद सर मैं ऐसे ट्रेनी से लेके सीनियर ऑफिसर तक व्हाट ऑल डिड यू अचीव? सर आई अचीव्ड सेल्फ, मतलब रिस्पेक्ट इन द सिटी। मेरे को बहुत से मेडल भी मिले थे ब्रेवरी के।
बाकी सर आई वाज अ कोच ऑफ द बास्केटबॉल टीम इन लिबर्टी सिटी 2. What changes did you made for the city? खुद सर के लिए नहीं. चेंजेस यस सर ऑब्वियसली. सर चेंजेस सर बहुत से चेंजेस आए जब मैं मतलब सर्विस में था. जैसे कि क्राइम रेट कम हो गया, लोग सुधर गए, जो बुजुर्ग लोग थे लोग उनकी इज्जत करने लगे. पहले वहाँ पे ऐसा होता था ना कि जो लोग थे वहाँ पे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते थे. तो सर वहाँ पे हमने लोगों को बताया, बहुत से पब्लिक कैंपेन्स भी करवाए, पर्सनली करवाए वो हमने, कि लोगों की इज्जत करनी चाहिए बुजुर्गों की. तो सर वो बहुत से चेंजेस आए वहाँ पे. सर अब मैं आपको सारे गिनाने बैठूंगा तो हमको शाम हो जाएगी. अच्छा, इतना सब उखाड़ लिया. यस सर. SOP के बारे में पता? सर एसओपी के बारे में पता ही है, पूछ लीजिए. What do you mean by SOP? सर एसओपी मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अगर पर्सपेक्टिव से बोलूँ मतलब कि हमको कैसे काम वाम करना चाहिए. सर सेल्फी मतलब सर आई एम मतलब कि लोग यहाँ पे आ जाएंगे. Thanks for welcome on board. यस My bad. हाँ. सर एसओपीज बेसिकली मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन पर्सपेक्टिव ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. मतलब कि कैसे हमारा पीडी काम करता है, कि किस सिचुएशंस में हमको क्या क्या करना चाहिए, ऑल एंड ऑल दैट. जस्ट अ ब्रीफ ऑफ दैट. कितने amendments होते हैं? क्या चीज़ सर? Amendments? सर 10 अमेंडमेंट्स है सर हमारी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में. आते 10 सारे के 10. सर सुनाने लग जाऊंगे हम. सुनाने लगो. तो सर फर्स्ट अमेंडमेंट गिव्स अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच. ऐसे शॉर्ट में बता दूं, मतलब ऐसे तेजी तेजी. बोलो बोलो. सर फर्स्ट अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच. सेकंड अमेंडमेंट कि हम अपने लिए आर्म मतलब फायर आर्म्स वगैरह रख सकते हैं विद द लाइसेंस. Fast forward to 7th. क्या चीज़? Fast forward to 7th amendment. 7 अमेंडमेंट होता है ना आपको? 7th वाला बता, ऐसा बोल रहा हूँ. अच्छा 7th बतानी है आपको. ओके. सो सर 7th अमेंडमेंट हमारी है दैट द राइट ऑफ ट्रायल बाय ज्यूरी. तो 10th. एंड सर 10th होती है द सर 10th क्या थी, थोड़ा सा ऐसे भूल गया, लेकिन इट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. Okay. या How many types of charges exist? there are 3 types of charges. आगे. कुछ एक काम करो और इसको Classify करो. Send it, sir. देख भाई तुम दोनों चले Yeah, जाओ. yeah. वन मेरे साथ एक I'll मेरे join. साथ आ. Thanks for coming. अच्छा उधर ग्लास डोर वाला जो गैंग डिवीजन पे कर लेंगे ना, दूर है Gang division? वो इधर ही कर लो. वो कमरे से दूर है वैसे भी. ठीक है ठीक है ठीक है इधर कर. ये कमरा बढ़िया है. कितने हुआ आज टोटल अभी तक? 2 हुआ, ये तीसरा चल रहा है. तीसरा चल दूसरा वाला वाज प्रोबेबली द बेस्ट इंटरव्यू टिल नाउ. टिल नाउ एक्सपेक्टेड था ना. थोड़ा भाई मैं कितना तोड़ने का सोचा था, कैसे भाई कुछ कुछ कर ही नहीं पाया भाई. एक्सपेक्टेड था. एक्सपेक्ट कुछ चीजें एक्सपेक्टेड एक और इंसान है जो मुझे लगता है कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, पर तभी भी ट्राई करूंगा उस पर भी. हाँ हाँ सही है. बेचारा पहले वाले को बहुत तोड़ा, पर पहला वाला क्या हुआ? शौर्या सिंह था, उसको बहुत तोड़ा. शौर्य सिंह. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा. कैसा गया शौर्य सिंह का? ठीक था, मतलब ओके था. मैंने रिव्यू तो लिख लिया उसका, डिपेंड ऑन व्हाट सेंड इट एंड रेक्स आल्सो थिंक अबाउट इट, बट ठीक है. कोई इशू नहीं. आई कैन सी वन मैडम जो नीचे वेट कर रही है. कम इन या कम इन मैन कम इन. सामने आ जाओ यार, सामने आ जाओ. Yes, sir. एंड विस्पर. Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग.
My name Good is evening, Officer Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. And to my left is Kevin Butler, who is the chief of the SASP department. हम आपका आज इंटरव्यू लेंगे. ये Okay. इंटरव्यू होने से पहले कैन यू टेल मी योर नेम एंड ऑल्सो कैन यू सेंड मी अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन. Yeah, okay. Myself, Tom Hardy. And sir, मैं मेल कहाँ पे करूँ आपको? Can you hear me? Hello? Yeah, one sec. You can just mail me, yeah. Okay. उधर एक बार अपडेट कर देना. कर दिया, कर दिया. ठीक ठीक. सर भेज दिया आपको. ओके, जब तक मैं आपका मेडिकल सर्टिफिकेशन एज वेल एज रेज्यूमे देखता हूँ, क्या आप आपके बारे में कुछ बता सकते हो जो आपके रेज्यूमे में नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल. तो सर मेरा नाम टॉम हार्डी है एंड मैं पलीटो में पला बड़ा हूँ. तो जो मेरे फादर थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और जो मेरे मदर हैं वो मेज़ बैंक में जॉब करते हैं. और मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो एलिमेंट्री हाई स्कूल से हुई है लॉस सैंटोस के. एंड सर मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है. एंड अबाउट एक्सपीरियंस एंड ऑल, आई एम फ्रेशर टू दिस जॉब एंड मैंने जो अपनी इंटर्नशिप की है वो सर मेरी वेदर से की है 1 साल के लिए. दैट्स ऑल. तो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों? सर एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो थे पुलिस डिपार्टमेंट में. एंड जब मैं मतलब लास्ट ईयर था मेरा कॉलेज का, मतलब सेकंड लास्ट ईयर, तो उस दौरान जॉब पे उन्होंने अपनी मतलब शहीद हो गए थे वो. तो मेरे उनसे बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े थे क्योंकि उन्होंने मुझे पला बड़ा जो भी था उनकी वजह से ही था मैं. तो मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में इतना कि मैं कभी पीडी में जाऊंगा या फिर ऐसा वैसा. बट दैट्स वाई मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन वगैरह की वो भी आपने जैसे रिज्यूमे में देखा होगा, मैंने कंप्यूटर साइंस में की थी. बट जब सेकेंड लास्ट ईयर में कॉलेज के जब ये सब हुआ तो सर मैंने देखा कि जो मेरी फादर की डेथ हुई उसके बाद जो भी मेरे फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत मतलब हैवी था. मेरे मदर डिप्रेशन में चले गए एंड ऑल. ये सर नेगेटिव पॉइंट्स थे. बट पॉजिटिवली साइड में अगर देखता हूँ तो जो लोग थे सोसाइटी में वो सभी मतलब एक बहुत रिस्पेक्टेबल नज़र से देखते थे मेरे फादर को कि उन्होंने मतलब अपने शहर के लिए इतना बड़ा काम किया और ड्यूटी पे उनकी जान गई है. तो वो देख के मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली उनसे. तो एज़ मैंने आपको बताया कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में थी तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे सीखना था थोड़ा कि इस फील्ड में कैसे होता है, डिसिप्लिन वगैरह कैसे मतलब हम सीख सकते हैं. तो मैंने उस दौरान सर लास्ट ईयर में मेरी वेदर के थ्रू थोड़ी सी इंटर्नशिप की थी. मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है बट थोड़ा मतलब बेसिक थोड़ा वहाँ पे सीखा ऑलराइट. मैंने कि यस. ऑलराइट. सो फ्यू थिंग्स. आपको पता है ना आप कौन सा डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने आए हो? हाँ जी सर. कैन यू प्लीज टेल मी द डिपार्टमेंट नेम? सर SASP, फुल फॉर्म. सैन एंड्रियास स्टेट पुलिस सर. हाँ. सो अब क्या बताया आपको एसएएसपी के बारे में, क्या नॉलेज है? एक्चुअली सर SASP कंट्रोल्स मतलब सभी जो भी शहर में जो भी ज्यूरिडिक्शंस आती हैं, जो भी मतलब कहीं पे भी जो भी अंडर फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स हैं वो इसके अंडर ही आते हैं. मतलब कहीं पे भी जो भी सिक्योरिटी से होती हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी लॉ इन्फोर्समेंट होती है वो SASP के थ्रू होती है. और लाइक अदर डिपार्टमेंट्स विच मतलब जो कंट्रोल करते हैं आउटस्कर्ट्स पे या फिर फॉरेस्ट में या फिर सिटी में, वो सारे SASP के अंडर आते हैं. ऑलराइट. सो अगर आपको एक ऑप्शन मिले टू चूज बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, या फिर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक ऑप्शन है टू चूज, आप कौन सा डिपार्टमेंट को चूज करोगे? सर एक्चुअली आई एम फ्लेक्सिबल टू एनी डिपार्टमेंट बिकॉज क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ अभी, तो मैं अभी सीखना चाह रहा हूँ कि काम कैसे होता है. उस हिसाब से आई एम लाइक एनी डिपार्टमेंट आई एम फ्लेक्सिबल टू दैट. ठीक है. टेल मी अबाउट योर वीकनेस. क्या है?
सर एज सच वीकनेस तो नहीं है, बट क्योंकि डिपार्टमेंट में नया हूँ तो आई हैव वेरी लेस नॉलेज अबाउट इट। ये मेरी वीकनेस है अभी के लिए, बट टाइम के साथ साथ सर ये ख़त्म हो जाएगी। और आपका स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ सर, लाइक आई टोल्ड यू कि मैंने इंटर्नशिप वगैरह की है, तो आई एम डिसिप्लिन्ड इन मैनी वेज। लाइक किसी के ऑर्डर फॉलो करने हो या फिर कोई भी सिचुएशन में कामली डिसीजन लेना हो, और आई एम गुड एट राइटिंग द डॉक्यूमेंट्स। सो अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है एफआईआर वगैरह लिखने की, तो मैं सर बखूबी निभाऊंगा। अभी मुझे आइडिया नहीं है कैसे लिखते हैं, बट आप चापो आई शो सम इंटरेस्ट इन दैट। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। एसओपी के बारे में आपको कितना नॉलेज है? डू यू हैव लाइक कभी कुछ नॉलेज है, कभी कोशिश किया जानने के लिए कि हाउ लाइक पुलिस फोर्स वर्क्स? सर एक्चुअली मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट मैंने सुना है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे डिपार्टमेंट फॉलो करता है, उसके थ्रू चलता है एंड ऑल, बट आई डोंट कैसे हैव हो आप लाइक ब्रो? मैं थका हुआ हूँ फंडामेंटल सच ब्रो, नॉलेज आई ऑफ एम फीलिंग थिंग्स। वेरी टायर्ड इन ठीक लाइफ, हाँ जी, वेरी ऑनेस्टली। मैं आपको आपका देखो, ऑब्वियसली एज यू आर अ फ्रेशर आई कैन नॉट जस्ट आस्क यू सम रैंडम एसओपी क्वेश्चन, बट आई वांट टू हाँ जी, अंडरस्टैंड योर अप्रोच. If you get हाँ जी, selected, if you go on duty, I want to understand how do you approach in certain circumstances. ठीक है? हाँ जी, सोच लो आपके साथ आप एक सीनियर ऑफिसर हो, ऑल राइट? हाँ जी, आपके साथ एक कैडेट बैठा है साइड में, आपके साथ राइड अलोंग कर रहा है, हाँ जी, ठीक है? ओके। मैं अब इधर हो, आप सिटी के बारे में आपको आइडिया है ना? हाँ जी, हाँ जी, सिटी के बारे में मतलब सिटी के हर एक गली के बारे में, रास्ता क्या नाम है या फिर हाँ नहीं पता जी, है आपको? मोस्टली सर, मतलब सोच लो आप लीजेंस कर पे हो, हाँ जी, आपको मैंने कॉल दिया सिटी के आउटसाइड पलीटो से, हाँ कि जी, तुरंत मेरे को मिलो पलीटो पीडी, ओके, ठीक है? हाँ और जी, सिर्फ आपको नहीं, पूरा पीडी को कॉल दिया, वी कॉल दैट एट 99 कॉल, लाइक ऑल यूनिट रिस्पॉन्ड वाला कॉल, ठीक है? इट्स ओके, लाइक प्रायोरिटी कॉल्स में सबसे टॉप मोस्ट में आता है, ठीक है? ओके, तो आप उधर आ रहे आई थे, थिंक अचानक से क्या हुआ, एक संडे मंडे तक हो जाना ब्लैक चाहिए सारे बॉलर आपके इंटरव्यूज। सामने आया हाईवे पे, और यू क्रैश्ड विद दैट ब्लैक बॉलर। उसमें ओके, दो सीन हुआ, एक आपके ऑफिसर को भी इंजरी लगा, मतलब आपकी साइड में बैठा हुआ जो कैडेट था उसको भी इंजरी हुआ, एंड जो गाड़ी चला रहा था वो बेहोश हो गया, ओके, इतना जोर से धक्का लगा। एंड ऑन द अदर हैंड आई एम गिविंग यू 99 कॉल, सोच लो सो एंड सो रीजन, सोच लो मेरे को कोई किडनैप करने का कोशिश करे या फिर मेरा लाइफ थ्रेट है उधर, ओके। आप ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, मतलब इसके बाद प्रोसीड कैसे करोगे? सर लाइक ऑल मतलब बाकी यूनिट्स भी हैं ऑन ड्यूटी, मतलब जिन सभी को कॉल दिया ना आपने? हाँ, बाकी सभी जा रहे हैं, बाकी सभी पलीटो की तरफ जा रहा है, कोई लॉस सैंटोस फ्रीवे से जा रहा है, कोई ग्रेजुएशन फ्रीवे से जा रहा है, कोई सैंडी शोर्स होके जा रहा है, बट जा रहा है। ओके। सर सबसे पहले तो इस सिचुएशन में पहले रेडियो पे कॉल दूंगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है एंड वी नीड टू कॉन्टैक्ट दैट ईएमएस। फिर सर मैं ईएमएस की रेडियो पे जाके उन्हें कॉल दूंगा कि हमें इमरजेंसी चाहिए, यहाँ इस सिचुएशन में ऐसा ऐसा हुआ है। सोच लो ईएमएस नहीं हाँ है जी, प्रेजेंट, हाँ जी, कोई इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट मतलब समझ रहे हो ना, जो इधर से उधर लेके जाते हाँ हैं, जी, हाँ जी, जो हाँ जी, बेसिकली एम्बुलेंसेस वगैरह चलाते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। वो है नहीं। अब बताओ। तो सर मैं रेडियो पे कॉल दे के जो सीनियर है उनको इन्फॉर्म करूँगा एंड आई टेक दैट सिविलियन टू द ईएमएस फर्स्ट हॉस्पिटल, सॉरी, ठीक है, एंड देन या फिर वहाँ से फ्री हो गया सर मैं सिचुएशन पे वापस आ जाऊँगा। ठीक है, जे कैरियर। या सो आप मैरीवेदर में काम करते थे राइट? हाँ जी सर, एज ए इंटर्न। एज एन इंटर्न, यस। हाँ जी, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म चेन ऑफ कमांड? हाँ जी सर। क्या आप बता सकते हो क्या है? चेन ऑफ कमांड लाइक जैसे हम वर्ड से पता कर सकते हैं कि कोई ऐसी चेन जिसमें कि बाय कमांड मतलब लोगों को लाइक पोस्ट बाय पोस्ट रखा जाता है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो पाए। जैसे मेरे से ज़्यादा पावर जिसके पास होगी वो मेरे से ऊपर होगा, जस्ट लाइक दैट, लाइक जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं। ओके।
हाँ एंड जी। क्या आपको पता है द डिफरेंस बिटवीन क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 वेपन्स? नहीं सर, एक्चुअली हमारी वेपन ट्रेनिंग इतनी नहीं हुई थी वहाँ पे, तो ओके। आई डोंट नो दैट। यस। आपका इंडस्ट्री एक्सपर्टीज में आपने लिखा है, यू जस्ट टॉक्ट अबाउट योर 2 स्किल्स व्हिच आर ड्राइविंग एंड शूटिंग स्किल्स। हाँ जी सर। सर एक्चुअली जो हमारी ट्रेनिंग हुई है वो मतलब जो वेपन्स होते हैं सिंपल, यू कैन से दैट पेंट बॉल्स एंड ऑल, शूटिंग रेंज में हमारी प्रैक्टिस हुई है, बट हमें कभी फील्ड पे ऐसे चलाने का मौका नहीं मिला। एज आई टोल्ड यू कि मैं इंटर्न था, तो सर हमारी बेसिक जॉब रहती थी लाइक चेकिंग वगैरह की एंड ऑल। हमें कभी ऐसे किसी सिचुएशन में नहीं भेजा गया ऐसा कुछ। नहीं, सो द थिंग इज हाँ जी। आई वांट टू नो कि ये चलो ड्राइविंग एंड शूटिंग आप गुड है, ठीक है, सही है, बट ओके। ऐसे आप में क्या स्किल्स है दैट विल बी बेनिफिशियल टू दिस डिपार्टमेंट? लाइक आई टोल्ड द ऑफिसर लाइक, आई वाज यॉलिंग। या, तो सर जैसे मैंने बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, सो अगर कोई एफआईआर वगैरह ठीक है, मिलने ठीक की, है। लिखने की क्योंकि वो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टाइम्स होती है। आई टेल यू, आस्क यू, मैं उल्टा क्यों पूछा ये फिर से क्वेश्चन? लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आंसर द फर्स्ट टाइम, आंसर डिफरेंटली द सेकंड टाइम, हाँ जी। हाँ because जी। they think कि हम like they think we don't listen to the answers and then they'll answer very differently, but ठीक है, हाँ all जी right. सर। हाँ जी सर। तो like आप Meriwether में you were just a security intern, right? हाँ जी सर। Why did you decide to let go of that job? सर एक्चुअली थोड़ा उस टाइम कंपनी में थोड़ा रिसेशन चल रहा था, तो वैसे भी हमारी इंटर्नशिप थी वो, तो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट आफ्टर ईयर। Okay. हाँ जी। क्या मैं जान सकता हूँ like you know like ये आपने elementary school में like you हाँ जी। came first in a race, right? हाँ जी। How fast did you finish that race? कुछ आइडिया है? सॉरी कितना जल्दी वो रेस खत्म किया, कुछ आइडिया है? सर, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर दैट टाइम एग्जैक्टली। क्योंकि But basically, he is asking about, he is actually questioning about your body fitness. नहीं, So, if I एक्चुअली आप ask you how fit you are, how would you describe us? How would you explain? के लाइक सर, मैं अगर बात करूँ फिटनेस के बारे में, तो सर मेरी डेली रूटीन में जिम है, तो मैं मतलब डेली जिम तो जाता ही What is your हूँ। daily routine and also your daily diet plan? सर एक डाइट प्लान की बात करें, जैसे मैं मॉर्निंग में जिम जाता हूँ, तो सुबह सर मैं 4-5 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा प्री वर्कआउट लेके आधा पौने घंटे बाद जिम चला जाता हूँ सर। तो फिर वहाँ पे वर्कआउट वगैरह करके फिर सर पोस्ट वर्कआउट में थोड़ा सा प्रोटीन शेक्स एंड ऑल जो भी होता है वो मैं ले लेता हूँ। बाकी सर ऐसे ही पूरे दिन में 3-4 मील्स डिवाइड करके सर ले लेता हूँ, ऐसे 2-2 घंटे की गैप में। बाकी सर अभी काम वाम तो हम लोकली कर रहे हैं, इसलिए काम पे खाना पड़ता है एंड ऑल। ठीक है, I mean I have no more questions from my end. I think I'm quite clear. I just have one single question. Okay. How eager you are to get the job? So just a second, okay? Yeah. Hello. Yes, how eager you are to get the job? What would be your excitement, interest, whatsoever level? सर एक्चुअली अभी मैं डिपार्टमेंट में नया हूँ, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ को अच्छे से सीख पाऊँ और हर चीज़ को माइन्यूटली मतलब देख पाऊँ चीज़ें कैसे हो रही हैं एंड ऑल। बाकी मैंने आपको बताया कि मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर से है, तो Alright. आई वांट टू So, बी Mr. Tom, I will be very honest. Okay? हाँ जी। हाँ जी। There might be, obviously, you want to start as a fresher. I do respect that. Okay? हाँ जी। But the thing is, there, in some point of time, you need to understand हाँ कि जी। ये जो जॉब हम लोग जो सर्व करते हैं हम सिटी को, at हाँ some जी। point of time we need to actually risk our own life to save others. Are you ready for that? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
एक्चुअली सर अगर लोग फैमिली में कोई है आपका और? हाँ सर, मेरे मदर हैं बट आफ्टर माय फादर पास्ट अवे वो थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, इसलिए घर पे। डज शी नो अबाउट दैट कि आप इधर इंटरव्यू में आए हैं? नहीं सर, मतलब वो तो प्राउड फील करते हैं मेरे, मतलब लाइक मेरे फादर इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर थे तो उन्हें अच्छा लगता है कि मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ। Start 2.2. सही है, आई गेस none of us have any question. Yes. So we will get back to you related to your response. ओके अभी के लिए आप जा सकते हो। दाश बाबू हमको थोड़ा दिखा दीजिए और एक आज मैंने कॉफी नहीं किया है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे मैन। थैंक यू। हैं? स्वीट बंदा है। क्या दाशी ने पूछा खाना बनाना आता है तुमको? दाश बाबू क्या पता नहीं क्या करते हो। हाँ बंदा सही था, seems keen to learn. Yeah. Sunday को you can't miss out Sunday's day, हाँ? ना संडे मिस आउट होगा ही नहीं ना, कल मिस आउट होगा। वो कल का ठीक है, Sunday is an important day. कल मैं बेसिकली 5 बजे तक हूँ, उसके बाद नहीं हूँ, ऐसा सीन होगा। 5 नहीं सॉरी 4:30 बजे तक हूँ, उसके बाद चलेगा, that's okay. तुम्हें पता है संडे को क्या हो रहा है? मतलब आज जितना भी हो वो करना। और आज एक और चीज़ मैं देखता हूँ, स्टेट से कांटेक्ट करता हूँ। नीड टू हैव अ वर्ड विद जज। हाँ बोलिए। रिलेटेड टू दिस हंटिंग स्टफ। हाँ ठीक है, ओके। जो लेट में हो रहा है, दिस इज लाइक वेरी रॉन्ग। यू नो आज मैं तो लेजिट खुद डर गया था। 4 हंटिंग राइफल्स लेके लोग वो पहाड़ियों के ऊपर। ठीक है, वो ऑर्डर कॉफी। मैं जाके से पूछ के आया, मैं देख रहा था कौन क्या कर रहा है, एविडेंसेस वगैरह। क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकता मैं अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाओ आओ सामने आ जाओ। हेलो। हाय सर। आपका नाम? Myself Mark Martin. Sorry, what Martin? Mark Martin. Mark Martin. All right. Nice to meet you, Mark Martin. My name is Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my left is Kevin Butler, who's the chief of the SASP department. हम आपका आज इंटरव्यू लेंगे। ये चालू करने से पहले आप हम में से किसी को भी आपका लाइक रेज्यूमे एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन भेज सकते हो प्लीज? Yeah, sure, sir. Can any of you give the mail ID? Yeah. Yeah, got it. Give me answer. Yes, I have shared those. One second. ऑलराइट। क्या आप आपके बारे में कुछ बता सकते हो जो ये रेज्यूमे में नहीं है? मैं तब तक आपका रेज्यूमे देखता हूँ, पढ़ता हूँ, एंड ऑल्सो हियर यू आउट। Yeah, sure. Myself Mark Martin. I work in an orphanage, brought up by caretaker named Joe. Being him as an inspiration, I
I learned how to serve people, how to be a person whom when they are needed, when they are needy, Okay. and after while growing up, in between I have faced a situation where I have to take a decision where to continue, where to नहीं करेंगे, वो do कभी the नहीं यूज़ job, करूँगा, वो कभी and नहीं यूज़ करूँगा. I That's have not made PasKaLL, you know. I have contacted my caretaker, and he suggested me it will be better you go to the department and serve. It would help so many people who are in need and give the support to them. So Okay. with these standards and with his inspiration, I am standing right here now. Okay. Before I have served for a few months, few weeks uh, before coming here in that state. Okay. आपने इसके पहले लाइक किधर काम किया है? Like, should I say the name? नहीं. मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, सवाल मत बोलो. कौन सा शहर में जैसे लोग काम करते हैं ना, जैसे सवाल कुछ मत बोलो. Yeah, न्यूयॉर्क से, Please. कुछ कैलिफोर्निया से STPD. आपका STPD. Guys. Okay, तो like what मैं- was your responsibility? मैं Triple O to join. Basically, I have joined there as a मैं जा रहा हूँ. cadet, and मैं जा रहा हूँ. I have got some training, and after few weeks passed, more than a month passed, I got promoted to the probationary STPD? officer. Later, due to some circumstances, Yes, to get a good career, I have chose this city to come and continue to serve the people. So जब आप इधर आ रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, आपको पता है ना आप कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आ रहे हो? Yes, sir. आपको पता है जो डिपार्टमेंट है उसका नाम बता सकते हो आप? I would be glad if you ask the questions in English. In English? Yes, sir. Alright. Because I am little confused with Hindi. Not. Alright. I mean. Alright, sure. I don't know complete Hindi. So Most of the Hindi. which department you are coming for? I do prefer the LSPD because I have learned a few. I mean, I have got some months of experience in that department. In that department, so yeah, you were in LSPD. No, we do follow the same SOP for the same. That for the means like department you were working inside the city area, right? Not like yes, the it's city. inside the city area. City area. So like, why do you prefer like the city area? Why do you want to work in the city area? That's basically because I can be near to my close the persons who are close to me, so that I can be when I am not in duty, I can spend time with my people and all. All right. So the thing is, yeah, Jake, go on. All right, okay. Carry on. तो आपने आप बोला कि लाइक कितना एक्सपीरियंस है आपके He पास? doesn't understand English. How much? I can understand basic. It's fine. things. I I'll can talk in understand English. I have no basic worries on English. So how much experience do you have? 1.5 months. All right. So in this experience of yours, what all like? Think of it this way: that what is the difference between the 1.5-month-old you and the current you? What all have you learned in this department? I have grown up a lot. I mean, by Talking duties meeting wise. so many- Talking duties yeah, wise. Like what all talking duties have you wise learned? only. Yeah. I mean, you're asking the duties which I have. I mean, which Yes. I have learned after coming. During I have learned. during your tenure as you're a cadet, right? I assume. Yeah. So during your tenure as a No, cadet. Okay, no, you weren't. I have got promoted to probationary officer and served more than 15 to 20 days. All right. So during that time, like, what were the major situations you responded to? What duties did you do? Like, tell me about that. During cadet phase, I haven't gone to most of the situations because they didn't allow me. They used to give the trainings like combat training, felony, those kind of training, breachings and all that. How to do a traffic stops. The traffic stops, basically they used to make us do it so that we grew up and learn.
and how to make the MDTs, how to make the reports of the criminals or any FIRs which the Okay, people ठीक है. reports. Those all that. Tell me, जो जो आपको सिखाया गया है, जो आपने what you been taught, can you tell me what is a felony stop? Felony stop is basically high risk stop, which we, I mean, like for example, if we see a person who was involved in a robbery or some kind of high chargeable cases, we do make the felony stop. Okay, I'll give you a situation. Yeah, sure. You got a dispatch call that there is a stolen yellow color Camaro. Okay. Okay. You continue to do your code one around the city. You continue to patrol around the city. 2 hours later, you see that same yellow Camaro, same number plate. Okay. It has one person in the vehicle. It's occupied once. Okay. After 2 hours, you don't know if it's the owner driving the vehicle or if it's someone who stole it. Okay. That information you do not have. On this yellow Camaro, will you perform a traffic stop or a felony stop? I will perform a traffic stop. Later, I will try to communicate with him and check his identity, check his driving license, and I will cross check with the complaint which I have received, who have given the complaint. So Okay. if it doesn't matches, then I will. It doesn't come on. I will try to make it 1011 itself. All right. Okay. Do you know what the SOP is? Yes, sir. What is the full form of SOP? Standard operating procedure. And have you studied the SOP? Yes, sir. Most of it, not completely. To be frank, I Okay, would be. no worries. Can you tell me the difference between reasonable suspicion and probable cause? Yes, sir. Reasonable suspicion, which means if we, for example, I will explain with some examples. Sure. If we get some complaint that there is some drug selling kind of thing happening in some area, in some specific area, like consider in the for example, what I can take Grove Street kind of place. Okay. So if I respond there and if I see no one except one person standing there, Mm-hmm. but I didn't know that if he's selling or not, if he's involved or not. Okay. Yeah, but when I reached there, I see him only the person. So my suspicion will go over him. It will be reasonable suspicion, but I don't have evidence that he is doing that. Okay, let me hold you The there. probable. No, don't tell me what probable causes. This Okay. person at Grove Street who's standing alone. Okay. You saw him. You got calls. Someone selling something at Grove Street. You went there. You found a person, right? Yes. Will you frisk this person or search this person? I would frisk this person if I detain him Okay. Why not search? because I don't have the enough proof to search him that he is involved in the crime. Okay. And what all would you look for while frisking him? I look for the leaders. Okay. Would you consider a metal detector as a lethal? No. Okay. If you frisk the person, and while frisking the person, you feel objects bulging out from his pockets. You don't know whether they are lethal or non-lethal. आप क्या करोगे? Come again? You frisk a person. Yeah. You pat him down completely. Okay. From his pockets, you notice that there are items bulging out. Like the lethal weapon or lethal items. No, they could be lethal, they could be non-lethal, but they are heavy objects. Okay. So how would you go about it? Would you then search him? Would you talk to him? What would you do? Firstly, I would prefer to talk to him, and then I would go for frisking him again if he has hidden some lethal which I don't see. So I will talk to him and try to, try to frisk that.
try to take that item from. I mean, it is basically mostly the verbal talk will happen there. Okay. What's the difference between detain and arrest? Detain is the considering the previous example, I can detain him, I can't arrest him because I don't have proof. Arrest is only done when we have proof, like on probable cause only I can arrest. Acha, coming back to the proof, what kind of proofs you believe we Like have? if I see him directly, or if I see him doing involved in the caught in red-handedly, if I caught him red-handed doing that. What types of, like, I want to know the nomenclature of those proof. Bonify. And Bonafide and bona fide is one. What is bona fide? Yeah. I would like to. I mean, I can't answer. I'm not fully aware. I'm sorry. Okay. Alright, no worries. I would Carry like on. to skip this one. I mean, I have some basic idea. If I don't know if it is right or wrong. If you know, I can Yeah, say it. it's like good. If you don't know that answer, just say it on face Yeah, value. I will say it. If I am wrong, please correct me. Okay. Yeah, I sure. mean, witnesses like if considering I am officer, if I witness him doing it, it is bona fide. Like some civilians or any government of officials also seen it, and I mean they also can be witnesses. It will be considered bona fide, I think. I mean, non-bona fide will be considered in that RS case. I mean, suspicion case. That Alright. that I have. Yeah, Jake, continue. Yeah, I mean that's about it for mine. I've got a gist of the questions and the type Yeah. of job opportunities that Okay. we have available. So, like, I hope you understand the concept about priority calls, right? Yes, sir. So, if I give you some example, before that, do you have any basic idea about 10 codes or maybe the grasp of 10 codes? Yes, sir. Or should I need to give you the like brief details about the 10 codes that I'm gonna say? So, basically, what you have to do, take a pen and a paper from the table. Yes, sir. Once. I need to order coffee, I think. Okay, so write down the things that I'm gonna say. You need to arrange them according to the, let's say, priority calls. Like the topmost priority call should be on the top, and the least priority call should be on the bottom. All right, Okay. and you need to tell me accordingly. All right, Yeah, sure. so as you say, you're comfortable with 10 codes. I'm gonna say the 10 codes only. If you don't know the 10 codes, just let me know about it. All right. Yeah, sure. Okay. First would be 67. Okay. All right. Dhol to Next hai. would be 90. Okay. Third would be Let me third. know how many are you going to use so that I can There will be 3, 7 to 4, 8. 5, 7 to 8. Then give me one second. Yeah. I need to take a bigger paper. और लगेगा एक्स्ट्रा शीट मांग लें दे देंगे एग्जाम नहीं दे रहा एक्स्ट्रा शीट क्यों लगेगा मतलब वही है एक्स्ट्रा शीट मतलब लिखने के लिए आज बाबू सैवेज बन रहे हो दिन के दिन आई थिंक सैंडल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं I need coffee, guys. I need coffee. Yes, sir. Ready? Yeah. All right, so what I said 67 90, right? You have written them. Oh, yeah. Now the third one would be 13. Okay.
Fourth one will be 71. Okay. Fifth one 38. Okay. Sixth one will be 72. Okay. And seventh one will be 99. So place them accordingly. I would Which like one to should be on know top? one about one code. I'm not Huh? sure about 13. Which code? 13 code. 13. Yeah. Shots fired. 13 shot fire. Yeah. So like I've given you two different. That's why. Okay. Anyways, just you can omit 13 anyways. Like I've already mentioned. I on the thought 71 71 is the shots fired. No. There are like two different. Like there's a slight difference between 13 and 71, but yeah. Okay. It differs from the situation, but according to me, I would. 1 second. 22. गाइस कभी कॉफी मंगाओ कि जाके I बना would लो? like to respond to the hostage situation. It also depends on the situation who gives the. I mean, if there is any I want you to arrange them accordingly. arrange So them. this is shot Okay, fire I only. need to say the order. Yeah, Okay, say it okay. on an order so that I need. If I'm not wrong, 13 is shots fired, 71 is shooting. Okay. How much do you have knowledge about this thing? Priority calls. Okay. Hold on. Yeah. And I would like to know about 99 call. It is given by the higher authority, right? Yeah. You don't know about 99 calls. It means all unit respond. All unit respond. I mean, it is given by the. I mean, kind of high command or chief. Only the high commands. Yeah, high commands. Have you prioritized your calls? Yeah, I am writing it. All right, yeah. Take your time. Yeah, I'm ready with the list. I would place the 99 call on the top. Okay. And I will place the 72 on the second. Okay. Which one is first? 99. Okay, 72. Because it is the call given by the high command. I need to follow it first. Yeah, 72 I will keep second, and 90 will be the third. Shots fired will be the fourth, and 38 will be the last second, and 67 will be the last. Okay. Okay, that's all from my side. I would like any corrections. Let you know. No such corrections. Eventually you will get to know whether you have been selected or not. Okay. Just wait for the interview response. Meanwhile, you can go and relax. Alright? Okay, sir. Thank you for your time. Yep. Raj, you have Yes, for like last. हाँ आइए सर Thank you, sir. Nice. Yes. इसमें एक दिक्कत ही दिखा वो सही है जो दिखा बट ठीक है यार केडेड ठीक है कर सकते हाँ मैंने नीचे जो लिखा देख लो हाँ ऑन साइड नोट हाँ वही समझ गया इसीलिए ऐसा केडेड कर सकते यस वो एक यार कैसे यार अभी भी यार मैं थोड़ा इसका खींचने वाला था वो क्वेश्चन पे और ज़्यादा डीप जाने वाला था पर मैंने सोचा छोड़ो नहीं मैं तो कर सकता मुझे बुरा लगता फिर उसके लिए हाँ ठीक है उसको बाद में समझा देंगे
STPD. Good afternoon, sir. Good afternoon. What's your name? Good afternoon, man. My name is Simon Riley. Sorry, can you repeat that? Simon Riley. Simon Riley, right? Yes, sir. Nice to meet you, Mr. Simon. My name is Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my left is Kevin Butler, who is the chief of the SASP department. Nice to We'll be meet you, sir. taking your interview for today. Before we start this interview, can you send any one of us your medical certification as well as your resume? Wait, I'll do that. Rane, show me 41. 10-4, come to M1. Not M1, it would be gang division. Sorry, yeah, the gang division room. 10-4. खुलेगा Yeah. This is good. Okay, this is done. Let me just close all of this stuff. Let me close this. Medical certificate भेज दिया. सर आपको सेंड किया है मैंने. Yeah, just give me 1 second. जब तक मैं आपका रेज्यूमे चेक करता हूँ एंड जब तक मैं फॉरवर्ड करता हूँ टू द अदर 2 ऑफिसर्स एज वेल, यू कैन जस्ट लाइक टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो आपके रेज्यूमे में नहीं है. All right. So, well, my name is Simon Riley, and I was earlier in the Arizona State Department, and I, grew up and lived in Arizona itself. My education was Verde Valley School, and later on I passed on to the Police Academy of Arizona. Alright, so After- do you have any idea, like, for which department you have came for the interview? LSPD. LSPD? Direct Wait, selection LSPD? you're not audible, sir. Wait. Come in front. थोड़ा सामने आ जाओ. हाँ जी sir. Yeah, so I was saying, is it LSPD or something else? Can you repeat the question? The first question. आप कौन से For which डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो? Yeah. Oh, sir. It's basically I need to, just do my job. Department की कोई वो नहीं है, No, specific but नहीं है. what have you applied for? और फॉर्म किसके लिए भरे हो? SASP. SASP. Yes. So what would be the full form of the SASP? San Andreas State Police. Alright. Do you have any basic idea about SASP, how we work and what are our sub departments and all? Yes, I do. So yeah, can you please give me a brief? There's BCSO department, LSPD, Park Rangers, And what is I BCSO think- stands for? Blaine County Sheriff Department. Department? Blaine County Sheriff Department.
obviously the department stands for that, but I'm asking about the full form. It's a short abbreviation, right? So I want to know the full form. Do you have any idea about BCS of full form? No, I don't think so. No, right? Fine. If I give you an option to choose between these three, will you choose like LSPD only? Is there any reason behind it? No, there's no specification of any department. Then why did you say LSPD on the first place? No, I thought like which department like I'm standing here right now. Ah, okay. So yeah, tell me for which department you're gonna choose. Like if you have any option, if you have an option to actually choose. Preferences would be BCSO because I have like जितना मैंने सुना है यहाँ पे, so it is like an outer state and I like the the aura of outer states. It's only that preference. Otherwise, no. All right. What if we think you're better fit for SASP or LSPD then? I would work here like in SSP. Okay. Akka, like you worked at the Arizona Police Department, right? Yes, sir. What is the rank you achieved out there? Officer. And since how long have you been working there? Around 1 year. Can you tell me like how was a day on duty like for you? आप क्या क्या करते थे morning to evening? Morning to evening, we used to like go to the police station and get the briefings about the day and the previous day, like what happened and what we need to do further on certain things, and then go on a regular roundup with my company. Okay. And we used to like mostly stay on the road for like entire day and investigate or pursue the briefings we got in the morning. Okay. So, okay, that's cool. That's fine. Tell me one thing that you have, like during your time as an officer, yes, sir. You have ensured a lot of drugs are not entering the city, right? Yes, sir. So how did you go about the entire process? So our chief of the like police department there, he put up a team together where like a senior officer of mine, he was the leading officer over there. Okay. And we were conducting like various investigations on places and people who we might think they are involved in the drug case. Okay. So we were pursuing that, and we got couple of hits. We got consignments confiscated, and काफी कुछ था कि बहुत लोग arrest भी हुए थे, and like we were doing our bit of work to stop the drugs. Okay, got it. Do you have like since you were an officer, I assume that you know what an SOP is, right? Yes, sir. What's the full form of SOP? Standing operating procedure. All right. And how well versed are you with this SOP? Like according to my rank, I think जितना होना चाहिए, I think उतना था. Dekho, I wouldn't say according to anyone's rank because I assume if anybody crosses the rank of a solo cadet / probationary officer, he should know his SOP in and out. Yes, so I wouldn't consider SOP in relation to ranking. But okay, I'll ask you a couple of questions just to understand how you have learned the SOP or what do you understand from the SOP. Okay? Sure, sir. I have a question regarding a point in the resume. Go for it. Yeah, so you have written that you have carried out different warrants, subpoenas, and affidavits. Can you tell me the difference between all these three things? So can you repeat the question? You have written in your resume that you have carried out different affidavits, warrants, and subpoenas. So can you differentiate between all three of them? Affidavits are, the stamped, what do we say? The stamped orders, like they're not the warrants, but it's, for example, I enter into a contract with you, right? So we write it on affidavit. What are the terms and conditions of that thing, the deal? Isn't and that a if someone
Well, Okay, go on, go on, go on. bond is stated on the affidavit only, I guess. And the rest too? Warrants are like where there are different types of warrant: arrest, search, and confiscate warrant, and vehicle seizure warrants. तो उस तरह के जो वारंट्स होते हैं, like we get it from the court and we pursue that. And subpoenas? Subpoenas, that's a bit of, I've written extra about that. Okay. Yeah. Go on, Jake, sir. Alright, yeah. Okay, so I'm going to start off with the simpler things just to understand. Do you know what a felony stop is? Yes, sir. Can you explain? Felony stop is like when you get eyes on a person or the vehicle who you suspect or your fellow suspect was involved in a previous crime. Okay. You're patrolling inside the city. You're an officer in Los Santos, okay? All right. You get a call out of a stolen red color Mustang. Okay. The police department tries to investigate, but they couldn't find the vehicle. Okay. 2 hours later, while performing Code 1, you spot the same red color Mustang, the same number plate. All right. You are unaware about who is driving the vehicle, whether it is the owner, whether it is the suspect. Okay. Will you perform a traffic stop or a felony stop? felony stop. M1 में interview हो गया. Why not traffic stop? Since you don't know if it's the owner driving or not. So if it's the owner driving around, it will be, owner will understand and like he will not be harmed in any way. Yeah, but it's not about being harmed or not being harmed. Like, if I'm the owner of that vehicle, wouldn't I get scared to see officers pointing weapons at me? So a brief warning is given before pointing guns, I believe. Like the procedure in Arizona was the same. Like we used to stop the car and speak it on a megaphone that you need to throw the vehicles and come out of the vehicle. Throw the keys and come out of the vehicle. And if it's the owner, he will just step out. If it's a suspect, he might, try to dodge or run away, do things like that. Yeah. Now tell me one thing. I'll give you another situation in relation to this, okay? Okay. I'm a person who has a very bad rapport with the police. I'm just a civilian. I do not have any, I don't have any records. I am just a regular civilian. I am on a very bad note with Kevin Butler. Me and Kevin Butler can't get along, no matter what. All right. Because Kevin Butler is the chief of the department, I do not really trust the officers. Okay. I'm driving a vehicle that is my own vehicle. It hasn't been stolen, okay? But somebody gave a dispatch. Somebody put a 911 saying this vehicle is stolen. All right. I'm still driving and I'm moving around. You spot my vehicle. You tell me on the megaphone. You perform a felony stop. You tell me to throw my keys out. All right. Since I have bad relations with Kevin Butler, I think to myself at that point, ki, I don't know what these officers are going to do to me. I've not done anything wrong. But I don't know, man. These officers could beat me down. They could do whatever they want. Like maybe Kevin told them to do something to me. So I would have obviously not sure how to respond when you told me to put my keys out. I was innocent at that time. Okay. How do you deal with such a person? I will try to, make him trust, calm him down. And on the whole, I will just follow the SOP. And if he does not comply, I will, make a non-lethal force or maybe just try to talk to him and get him out of the car and run his details. And if it's good, he can go. Okay. Since you said non-lethal force, what are the different types of forces? One is no force, one is non-lethal, and one is lethal. Okay, there are only 3 types of forces, right? Yes, sir. Okay. What is an officer's primary weapon? A primary weapon is a pistol. Primary weapon is a pistol, alright. Yes, sir.
Difference between reasonable suspicion, probable cause. Okay, so I'll explain it to you with an example. Will that be okay? Yeah, sure. So, for example, if I get a call of a car theft in a certain locality, and I go there and I see a guy roaming around there, all right? So, and I suspect that he might be involved, but I don't have any proof. So, I will just talk to him. If he, talks okay, then good. I'll try to detain him and ask him questions otherwise. But if I reach there and he's in the car stealing it, or maybe just, trying to, when he sees me, try to run and certain things like that, and I see him like leaving the car or something like that, then it's a, probable cause to search him and detain him and Okay. probably arrest him. Are you aware about localities in Los Santos? A little bit, not Okay. every Have you locality. heard about this place called Mirror Park? No. Alright, okay. There's a place called Mirror Park where there are multiple residential houses, okay? Okay. You get a dispatch alert call saying that there's a house robbery happening out there. Okay. You are the only officer on duty at that point in time. You have no additionals and no other units who can help you out. Okay. You go there at the exact doorstep where the dispatch alert came from. You notice a person exiting the building. Okay. It's a female, okay? Alright. She has a couple of things in her hand which looked like she would have got it from the house. Okay. Eventually, through proper, like once you notice everything, you realize you have probable cause and you have the right to arrest her because she is the criminal out there. Okay. When you go to talk to her, arrest her, cuff her, everything, at that point in time she tells you that I will only allow a female officer to cuff me or search me or like pat me down. How would you react to that? What would you do? If certain situation arise, I will take her to cells because I have a probable cause. I cannot just let her go anyway. Okay. I will just, take her to cells and tell her to either call a lawyer or wait for the female officer. And when there's a female officer available, then we can continue. What if your department has no female officers? I think a lawyer standing by there would be a better option. Okay. So until the lawyer comes, you would not search her or cuff her, right? No, sir. I'll detain her and I'll bring her to cells. Okay, now tell me one thing. What if she's in the cells? You have not cuffed, you have not searched her, you have not frisked her, right? Detain करने के लिए तो cuff तो होगा. Detain करने के लिए cuff तो होगा, but that's what I'm saying. What she says only a female officer can cuff me. So what will you do? That's a tricky question, but SOP follow करते हुए cuff करके sir detain तो करना पड़ेगा. Okay. So even if she doesn't give consent, you will cuff and detain her, right? I have the probable cause, so I can't just let her go. अगर suspicions होता तो भी I could have just walked her to the PD without cuffing. All right, cool. आपको पता है we have 10 codes, right? Yes, sir. Okay. Behind us in this area, there's a place called Burger Shot. If I'm performing a traffic stop there, I can just be like on the radio saying, there's a 2-door car in front of me, Ron, can you help me out? Okay. But why to go through all the hassle कि यार ये 10 code याद रखूँ and रट्टा मार लूँ and then remember it and फिर बोलूँ? Like why should I do all of this when I can just like talk to my officers and directly easily communicate? सर 10 कोड सबसे पहले तो कम्युनिकेशन को कम रखने के लिए होते हैं because it's not like 2 or 3 officers are there. They're like whole department on the radios. And if we just go blabbering here and there, like even people in a situation, they would not understand each other, and they will be like, for example, if I'm speaking something, a very long sentence, and sir has to speak something, he has to wait for the entire sentence to speak, so it doesn't get overlapped. So in that case, अगर मैं छोटे में बात करता हूँ कोड में, तो he'll get a chance to speak early. So it's to cut off the excessive communication. Okay, ठीक है. Kevin, Ron, do you all have anything for him?
I mean, do you know what Miranda rights are? Yes, sir. Okay. Can you explain me why the Miranda rights are there and what is the meaning of the Miranda rights? Don't give me literal translation, the actual meaning of the rights. ओके सो जो मिरांडा राइट्स हैं वो बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि आई टेल यू वन टर्म कि हमारा जो लड़ाई है दैट इज नॉट फॉर द क्रिमिनल इट्स फॉर द क्राइम एंड इफ समवन इज कमिटिंग क्राइम ही शुड गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एंड लाइक इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके जज के सामने। तो इस चीज़ के लिए और ये चीज़ उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके पास ये राइट है तो लाइक उनको समझ लो। Then what is the meaning of you have the right to remain silence और आपको चुप रहने का पूरा अधिकार है? इस पार्ट का मीनिंग क्या है? सर इस पार्ट का मीनिंग ये है कि यू हैव बीन अरेस्टेड, आप जो भी बोलेंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं आपके अगेंस्ट, तो आप लाइक आपको शांत रहने का अधिकार है, तो आप जो भी बोले अपने लॉयर के सामने बोले। ठीक है, fine. Okay, I'm just going to add on to this question. Yes, sir. आपने there's a Evangelico out here. Somebody robbed a Evangelico. You responded. You chased him down. You cuffed. You caught him. You got him to the PD. उसका पूरा MDT बना लिया है. उसका पूरा प्रोसेसिंग हो गया है. आपने उसको फाइन भी कर दिया है. फिर जेल भेजने के पहले आपको याद आया शिट मैंने मिरांडा राइट्स सुनाना भूल गया। ओके क्या करोगे? सर अगर वो लाइक कोर्ट में जाता है सो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर मी, क्योंकि मिरांडा राइट्स आर लाइक बेसिकली अगर वो किसी ने उसने कुछ लाइक बड़ा क्राइम भी किया है एंड इफ आई डोंट टेल हिम इट्स मिरांडा राइट्स सो इट्स माय फॉल्ट एंड मिरांडा राइट्स आर नो स्मॉल थिंग एंड कोर्ट में जाते ही वो जो प्रोसीजर है वो दैट विल बी यू नो null and void and there will be an inquiry on me. ठीक है, alright. Kevin sir, you have any questions? Yeah. So I'll give you a situation, alright? Alright. Serious हो गया था क्या? I need to tell me your actions and all what you're gonna do. Anyways, so you were an officer, right? So it's for a 38 call. That means you got information, not like a regular 38 call, it's a like you got some information, some coordinate कि ऐसे एक certain location पे you need to go and you need to investigate related to drug peddling scenario. Alright. ठीक है? So you have taken a cadet with you. Both taken of you what? were stacked. पता नहीं और कितने दिन into Okay, थक okay, गया वो। Yeah. Alright. Both of you were stacked up. What happened when you reach the place? You see there is a guy. Is around like 15 and 16 years old. He was just sitting on a rock bench or Sunday को एक for and interview है. like playing with whatever it was. Anyways, you approached the guy. The place was an abandoned place, by the way. I just saying abandoned in the sense like it was a building which was about to construct, but due to some reason they stopped the construction. So yeah, it was like on that phase for a long time. So that's why it's an abandoned place. You guys were actually using torch and stuff to actually check for evidences inside the place. That's because you got the coordinates of that place only. So you see the guy, you approach, you had a word with the guy, you start having a conversation. You ask about his mom, dad, and what he is doing here, and any like something else, blah blah whatsoever. Meanwhile, your cadet, subordinate was just roaming here and there and searching for any more evidences. All right. Okay. So all of a sudden that guy, that 15 or 16 years old kid, just he was actually carrying a glass like a bottle with him. All right. Okay, a melee weapon, right? Yeah, not a melee weapon, it was a glass bottle. Okay, it that made can it be a melee lethal. weapon that made it a melee weapon just by throwing it off or maybe smashing it on the floor and try to use the rest part to stab you. Okay. What's up, Ranchos? When he was about to stab you, your another subordinate, like the cadet, question actually saw by that your reflex was not active at that point of reflex in the sense आप उसको कुछ
टैकल नहीं कर पा रहे थे because you were actually having a conversation. Got it. Meanwhile, this happened. But that guy, that another cadet, was having a proper reflection and he took out his gun, service pistol. Then don't ask me why our cadet is having a gun. Okay. सोच लो cadet, just आपके rank के हिसाब से मैं cadet बोला. It's like Okay. junior, आपका junior Okay. है. Never mind. ठीक है? So he took out his gun and he started pointing on the guy and he was about to shoot. ठीक है? Okay. What will be your command in this situation? You were not ready for the situation, but you have seen your cadet pointing the gun at the person and was about to shoot. Okay. Yes. Now tell me what would be your decision. Yeah, what would be your command? Sorry. Okay. So जब like he will be pointing the gun, right? तो उस टाइम पे मैं उसको like वेट करने के लिए बोलूँगा क्योंकि like he is doing his job, like he is I'm doing his job using perfectly. Quantvi, लेकिन मैं उसको NVE, रुकने के लिए ENV बोलूँगा and because Reshade and he is carrying a Euros and bottle. Bloom. ठीक है, and I can tackle it. अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो I think जब वो गन दिखाएगा तो it's like you know कि वो बच्चा शायद रुक जाए because obviously if he wants to stab me but he still fears for his life, you know. अगर वो नहीं रुकता है तो I think it's a lethal attack and I might tell him to shoot on the floor or his leg probably. ठीक है. One more question about. Do you have any idea about force of escalation? Force of escalation, I think it's the same thing, like no force, non-lethal and lethal. Huh? Force of escalation means force, non-lethal, lethal. What do you mean by the term escalating force? Yeah. Okay. चलो आपके लिए थोड़ा और इसे. GTA bro, GTA 5 के लिए 3060 ग्राफिक कार्ड ठीक है कि लोग 1060 पे भी खेलते हैं. 3060 बहुत बढ़िया है. नहीं आपके लिए इजी कर दिया मैंने. Escalating a force, sorry बोल रहा हूँ. Escalating force मतलब क्या है? Escalating a force is like अगर सामने वाला कुछ यूज कर रहा है which is like probably जैसे कि आपने बताया कि बॉटल यूज कर रहा है, right? तो I should like अगर वो उस चीज़ के लिए जाता है like higher ranks of weapons के लिए जाता है तो उसके हिसाब से I need to escalate with him. अच्छा. What if I ask you something about giving me an example of escalating a force where no guns, no weapons has been used? Whether it is melee, whether it is lethal, whether it is non-lethal, not a single weapon used. But you are still escalating force to control the situation. How? What would be the example? With my mouth. Mouth? Yep. Okay. Like we can talk, talking. All right. Yeah. All right, gentlemen. I think I am done with the interview. Also, rest of you two, do you have anything else to say? Yeah, one more SOP related question. Yeah. Okay. Yeah. So, what is chain of command? Chain of command is like whom to report, like superiors. Is it a one-way thing or a two-way thing? It's a one-way thing. Okay. Like from One-way bottom thing, to up. Okay. Not the vice versa, right? No, like if I if there's a chief of police and he gives a direct command to cadet, so उसको follow करने पड़ेगी despite of बीच में कितने भी ranks हो. But ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि cadet directly chief of उसके पास नहीं जा सकता है अपने question. You want to ask a situation on COC? I mean, I got all the answers I required, to be honest, so yeah, I don't want to extend it too much. Same. Okay. All right, I mean that's all for our interview for today. Thank you for your time, and जो आपका response है, you'll know about it in due time. All right, so thank you. All right, thank you. May I take your leave? Yeah, you may take a leave. Yeah. Thank you. Yeah.
Ron, send me your review on email, on my personal email. और कोई है? हाँ 911 दिख गया. 1 rated Daji, how many more candidates are there? 4. Send 4, copy that. Manish, I'm not sure about PC setup to be honest, so I can't really like comment. Oh, I need coffee, man. LKL फुल फॉर्म क्या है हैं? रीच भाई को पूछो भाई, जॉनसन को पूछो भाई, वो LKL है भाई, हम LKL नहीं है. ये कौन आ रहा है? Five, 6, 7, 8, 9, 10. Under director Ron, come to 19. वो 911 जिन्होंने भी गए थे वो वेस्पुची पीडी आ गए. All incoming MGX energy versus Zeds. क्यों? Responding on our location that this officer told that meet officer Ron, he is coming again in this like, yeah. We have to have a word with officer Ron. Flags. You can sit here for some time. Yeah. अच्छा flags हुआ ठीक है. बेटे को ऑफिसर आते हैं भेज दो, ठीक है? कुछ खाना No नहीं problem, चाहिए ना आप sir. लोगों? No, sir. Thank you very much, man. Thank you, sir. Thank you. Okay. Very scary man, bro. मैं एक बार कुछ सोच रहा हूँ. हाँ सही है. Be right back, guys. My name is Jeff. Yes, Thanks. Officer Ron, na? Sir, actually, we were doing garbage. नमस्कार सर, right now. नमस्कार. And the problem is now,
सर हमारा नाम है गप्पू प्यारे। सर एक्चुअली हाँ जी, हाँ जी, हम एक्चुअली सर गप्पू प्यारे नाम है हमारा। हम इंडिया में रहते थे इससे पहले। थोड़ा मदर फादर का थोड़ा मतलब इशू था जिसकी वजह से मतलब अब वो नहीं है इस दुनिया में। बट हमारे जो पिता थे, जी सर, हमारी मदर का देहांत मतलब 1 महीने पहले ही हुआ है, तो जस्ट उसके कुछ दिन बाद हमें पता लगा कि मतलब यहाँ पे इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होगा। तो मैंने सोचा कि इंडिया में तो हमारा कोई नहीं रहा, तो हमारा दिमाग में आया कि यहाँ पे आके जॉब करें। इंडिया में हमारे पापा कांस्टेबल थे, मतलब उनके देहांत से पहले। तो बचपन से ही हमारे मन में मतलब जो होता है ना, मतलब लोगों के लिए प्रेम, वो बहुत रहा है। जो मतलब मेहनती लोग होते हैं, जो काम करते हैं, और जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें मतलब जैसे मतलब हम ना बताते हैं आपको, हम आईएसएस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सिक्योरिटी सर्विस, उसमें बीच में हमने काफ़ी टाइम काम किया था, ठीक है, अराउंड 6-7 महीने के लिए। तो वहाँ पे हमने कुछ नेता थे सर जो हमारे से मतलब काफ़ी मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा इंडिया में मतलब करप्शन भी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप के नेता होते हैं, मतलब पावर बहुत होती है उन पे। बट स्टिल सर मैं मतलब एक नेता थे जो मतलब करप्शन करते हुए मैंने देखा था। तो समहाउ मैंने वहाँ के जो लोकल हवलदार थे उनको बताया, एंड उनके थ्रू फिर उस करप्ट नेता को मैंने पकड़वाया था सर। तो मतलब सर बचपन से ही मतलब मेरा सपना यही रहा है कि मैं लोगों को सर्व करूं और अच्छे से मतलब अपने कंट्री को, जिस भी देश में जिस भी शहर में रहूं, उसे मैं सर्व करूं, लाइक अच्छा नागरिक, एक अच्छे नागरिक की तरह। सही बात। अब हम दोनों में ये से कौन किसी है? को भी भाई तो मेरे लेफ्ट में जो आया उनका नाम है जेक विलियम्स, ही इज जी सर। एसएसपी ट्रूपर। नमस्कार सर, अब नमस्कार। हमारे दोनों में से किसी को भी आप अपना सीवी एज वेल जी एज सर। आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो हम्म, भेज दीजिए। जी सर, 1 सेकंड भेजता हूँ। या अपलोड हो रहा है सर फ़ोन से। या श्योर। हो गया, डन से। आपका नाम क्या था? सर गप्पू प्यारे। ऑलराइट। जी सर। तो मिस्टर गप्पू, यू आर काइंड ऑफ अ फ्रेशर, राइट? जी सर, जी सर। आपको पता है आप कौन सा डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने आए हो? थोड़ा सा सर ब्रीफली बता मैंने सकते हैं? बेसिकली रिसर्च थोड़ी करी थी, मतलब कि लॉस एंटोस में डिपार्टमेंट्स क्या हैं, तो ना बेसिकली जो मदर डिपार्टमेंट है वो जी क्या सर। है, मतलब मेन जो डिपार्टमेंट है? सर SASP इफ आई एम करेक्ट। या अगर सर इंडिया आपको स्टेट पुलिस, राइट? जी ओके चलो फिर ऐसे एसपी के बारे में कुछ बताइए फिर। सर, एज मच एज आई नो SASP में भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उनके अंडर काम करते हैं। आई नो 3 ऑफ देम। एक तो आई थिंक PCSO है, जो थोड़ा सिटी के आउटस्कर्ट्स पे जिनका आई थिंक वो है पुलिस स्टेशन, ब्लेन काउंटी शेरिफ्स ऑफिस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैंने एक्चुअली फ्लाइट में थोड़ी पढ़ाई करी थी बेसिक्स। तो एक LSPD है, लॉस सेंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, जो सिटी के अंदर जो भी क्राइम्स होते हैं वो हैंडल करते हैं। एंड एक है सैन स्टेट पार्क रेंजर्स, जो बेसिकली एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ वगैरह को हैंडल करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक ऑप्शन है टू चूज बिटवीन इन दिस 3, जी सर। ठीक है, तो आप क्या चूज करते? सर देखिए, मैं रिस्पेक्ट हर मतलब हर डिपार्टमेंट की 100% करता हूँ, क्योंकि जब इंडिया में था तब भी ISS मतलब एक बैक एंड का मतलब डिपार्टमेंट था, जहाँ पे हम बैक एंड से सिक्योरिटी प्रोवाइड करके लोगों को सर्व करते थे। तो फ्रंट एंड हो बैक एंड हो, मुझे किसी डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं LSPD में इस बार मतलब इस सिटी में वर्क करूँ, क्योंकि आई वांट टू बी ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द सिटी के अंदर जो भी इश्यूज हो, मैं उसमें चाहता हूँ कि फ्रंट एंड पे आके मैं सिटी को सर्व करूँ। ठीक है। जी सर। आपका अगर मैं पूछूं कि कोई वीकनेस
क्या बताओगे आप? सर वीकनेस में मैं एक चीज़ होगा कि कुछ जगहों पे मैं इमोशनल थोड़ा हो जाता हूँ सर। मतलब समझ में नहीं है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। सर बेसिकली आपको बताता हूँ, एक सिचुएशन हुई थी बेसिकली, जहाँ पे एक मतलब 17 ईयर्स का एक लड़का था, उसके अपने कुछ दोस्तों से लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो यस यस। उसके एक दोस्त ने एक लड़के को मतलब बैट से मतलब मारा था और उसकी टांग टूट गई थी सर, सामने वाले की। इंडिया में थोड़ी मतलब स्ट्रीट फाइट्स और ये सब बहुत होती थी सर, तो वहाँ की सिचुएशन थोड़ी ऐसी होती थी। तो मेरे गली के लड़के थे, तो कायदे में मेरे को एक्चुअल में मतलब जाके उस चीज़ को कंप्लेन करके, मतलब माइनर है वो, मैं माना मैंने, बट उस चीज़ को कंप्लेन करके चीज़ मतलब उस तरह से हैंडल करनी चाहिए थी। बट मैंने जाके उन लड़कों के पीछे बात फिगर आउट करी, जिसने मारा वो एक्चुअली थोड़ा मेंटल, मतलब उसका थोड़ा एग्रेसिव नेचर थोड़ा ज़्यादा था। बट फिर मैंने उसको थोड़ा समझा के छोड़ दिया था सर, तो मेरे को उस बात का रिग्रेट है, क्योंकि आफ्टर अ फ्यू इयर्स उसने 2-3 सिचुएशन में ऐसी मतलब चोरी चकारी के काम में वो पकड़ा गया था, और आई वॉज नॉट एबल टू गेट हिम ऑन द राइट पाथ। तो थोड़ा इमोशंस में मैंने उसको उस टाइम पनिशमेंट नहीं लेने दी, एंड फ्यूचर में वो एक चोर बन गया सर, तो मेरे को उसका दुख है, थोड़ा रिग्रेट है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इमोशंस में मतलब कोई गलती करूँ अपनी ड्यूटी को रिगार्डिंग। ठीक है। जी सर। अच्छा, अगर आपका स्ट्रेंथ की बात आता है तो आप क्या बोलोगे? सर स्ट्रेंथ में सर एक चीज़ मेरी बहुत अच्छी बोलूँगा मैं सर, आई एम अ वेरी क्विक लर्नर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आज ही मतलब राइट नाउ अगर आप मेरे को आप अपने साथ लेके जाएंगे, है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ले जाना, बट मतलब अगर लेके जाते हैं तो मैं आपको देख के, आप जिससे बात कर रहे हो, मतलब मैं बहुत जल्दी एनालाइज करके ना चीज़ें सीख बहुत जल्दी जाता हूँ। ये बात है। जी सर। राइट जेक, पूछ या लो अगर तुमको कुछ पूछना है। या राइट। सो आपको क्या लगता है कि एज बिसाइड्स जस्ट लाइक प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, जी सर। पीडी का और क्या क्या काम होता है? सर बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, पीडी का काम ये भी होता है कि जिस तरह से बिजनेसेस रन हो रहे हैं उसके बीच में कोई करप्शन ना हो सर, ठीक है। और जैसे मतलब रोड पे ट्रैफिक होता है, वो सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं सर, उसमें भी पीडी का काम होता है कि वो चीज़ फिक्स करें। एंड चोरी चकारी जो होती है उसमें भी पीडी का काम होता है सर, कि मतलब हम लोग जाके उस चीज़ को रोकें। ओके। जी सर। सर्च एंड सीजर का मतलब क्या होता है? सर सर्च तो मतलब मेरे हिसाब से तब किया जाता है जब किसी के ऊपर हमें मतलब कोई प्रूफ हो कि मतलब इसने कुछ गलत किया। जैसे मतलब मान लीजिए मेरे साइड में एक लड़का खड़ा है, मैंने उसके हाथ में गन देख ली, ओके। तो मैं उसे सर्च करूंगा, क्योंकि मतलब दूर से देख लिया तो मतलब मैं उसे सर्च करूंगा क्योंकि मुझे दिख गया उसके हाथ में गन। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं एक ऑफिसर हूँ तो मेरे पास बॉडी कैम भी होगा ही, तो वो भी मेरे पास एज अ प्रूफ भी रहेगा, एंड तब मैं उसे सर्च करूंगा। बट अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि उसने कुछ गलत करा है, तो मैं सिर्फ उससे सर क्वेश्चनिंग करूंगा एंड पूछूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं। ओके। एंड सीजर क्या होता है? सर सीज तो हम किसी चीज़ को तब करते हैं जब उससे मतलब क्राइम हो रहा हो एंड Alright. मल्टीपल टाइम्स हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर जैसे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बाइक हो गई, ठीक है, और कोई लोग कुछ लोग हैं उस बाइक से मतलब बार बार कुछ ना कुछ मतलब क्राइम हो रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब कुछ दिनों बाद अगर लगातार 2-3 क्राइम में वो बाइक दिखती है, तो मतलब मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि उस बाइक को सीज ही कर देना चाहिए, क्योंकि क्राइम उसी बाइक से हो रहे हैं। चोर पकड़े गए हो ना पकड़े गए हो, बट क्राइम उस चीज़ से हो रहे हैं बार बार, तो मतलब वो बाइक तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, उसे सीज कर देना चाहिए। या फिर एक बिजनेस है जहाँ पे ब्लैक मनी है बहुत ज़्यादा या गलत काम हो रहे हैं, तो वो भी चीज़ मतलब एक बिजनेस सीज करा जा सकता है। ओके। देखो हमारे पास अभी तक अराउंड 250 एप्लीकेशन आए हैं। जी सर। उनमें से सम हैव मेड इट टू योर स्टेज जहाँ इंटरव्यूज हो रहे हैं। हाँ जी सर। तो हमारे पास अभी बहुत लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, करेक्ट? जी सर। आप में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आप में है एंड अदर पीपल लाइक इट मेक्स यू बेटर? क्विक लर्नर मत बोलना, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ। क्विक लर्नर है, आप अकेले जी नहीं सर। हो। ऐसा कुछ जो आपको लगता है सिर्फ आपके अंदर ही है।
सर देखिए, मैं लोगों को ना पहचानना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके मतलब अगर मैं किसी को थोड़ी देर बात करूँगा, किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, तो मैं पहचान जाऊँगा उसके अंदर मतलब कमियाँ क्या है और फायदे क्या हैं। ओके जी थोड़ा का सर। कुछ एस्टिमेटेड टाइम होता है ऐसा कुछ थोड़ा मतलब? थोड़ा मतलब सर कुछ घंटे या कुछ ठीक है। मतलब हाँ एक जल्दी अगर मतलब नहीं हो आज सकता मैं है कभी रात को बाहर कभी जा रहा हूँ। मतलब 5-10 मिनट की कॉन्वर्जेशन से भी पता लग जाता है इंसान का स्वभाव। जैसे मतलब जैसे आपसे अभी तक मैंने जितनी बात करी है सर, मतलब तो उससे मेरे को इतना तो मेरे को फील हुआ है कि आप मतलब ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप मतलब पूरा जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से चलते हो और आप गुस्सा जल्दी से नहीं होते हैं, जितना मैंने नोटिस किया है। आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम में मैंने स्पेसिफिकेशन लगाया है, बट ये चीज़ डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी सर्व करेगी क्योंकि मैं लाइक लोगों को जानूंगा तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता हूँ डिपार्टमेंट के लिए। ओके जी सर। एज पर योर रेज्यूमे आपके पास फायर आर्म्स एंड वेपन्स का नॉलेज है, तो एक क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 में क्या फ़र्क है? सर क्लास 1 वेपन्स बेसिकली वो वेपन्स होते हैं जो एक पिस्टल कैटेगरी में आते हैं, जो भी मतलब हैंड गन्स हम यूज़ करते हैं। क्लास 2 वेपन्स के अंदर आती हैं जो एसएमजीज होती हैं, एंड क्लास 3 वेपन्स में आती हैं जो असॉल्ट राइफल्स होती हैं सर। ओके आपने अभी तक किधर किधर काम किया है, एक जनरल वर्क? सर जनरल वर्क सर मैंने एज अ वॉचमैन भी वर्क किया है सर, अपने मतलब जो हमारी सोसाइटी थी इंडिया में वहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। क्योंकि पापा नहीं थे 14 ईयर्स की एज के बाद से, एंड हमने इंडियन सिक्योरिटी सर्विस में भी काम किया सर एज अ बॉडी गार्ड, एंड सर नाइट सिक्योरिटी में भी काफ़ी पेट्रोलिंग करी है हमने सर अपनी सोसाइटी के बाहर। ओके जी सर। ओके मुझे बताओ अबाउट सो ओके व्हाट डू यू नो, लाइक आपके स्किल्स में लिखा है दैट यू आर एवरेज व्हेन इट कम्स टू नोइंग अबाउट द ड्रग लॉज एंड एनफोर्समेंट ऑफ दैट, राइट? यस सर। सो लाइक आपने जो भी आपके स्किल्स है अराउंड लॉ रिलेटेड स्किल्स लाइक द ड्रग लॉ एनफोर्समेंट, लाइक द सर्च एंड सीजर एंड स्टफ लाइक जी दिस, सर। आपने इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया था? लाइक व्हाट डिड यू डू टू लर्न अबाउट दीज स्किल्स और हाउ डिड यू अटेन दीज स्किल्स? सर बेसिकली मैंने जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में ऑनलाइन रिसर्च और ऑनलाइन पढ़ाई करी। थोड़ा मैंने नीचे जब बात कर रहा था और जो लोग मतलब पढ़ के आए थे एंड जो भी नॉलेज लोगों को थी, कुछ लोग एक्सपीरियंस थे कुछ लोग नहीं थे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं लोगों से बात करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, तो मैंने उनसे बात करके पूछा चीज़ों के बारे में, एंड वहाँ से मतलब मैं आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट एट थिंग्स एंड एनालाइजिंग एंड लर्निंग फ्रॉम देम बेसिकली। तो उसके थ्रू मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मिल पाई सर। ऑलराइट क्या आपको पता है कि जब एक ऑफिसर एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है वो 10 कोड्स यूज़ करता है? यस सर। आपके हिसाब से क्यों करते हैं ये? Sir, to make the communication very simple, and for example, if I'm speaking to, let's say you on the radio, and at the same time there are multiple officers on the radio, and अगर मैं एक पूरी conversation आपको ऐसे बोलूँ कि जेक सर मेरे को यहाँ पे बैकअप चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसकी जगह मैं अगर एक कोड यूज़ कर लूँ तो दैट विल बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। उससे मतलब कोई केओस भी नहीं होगा रेडियो पे, या फिर एंड सामने अगर कोई मतलब क्रिमिनल है तो वो चीज़ एज अ कोड भी हेल्प भी करेगी कि मतलब क्रिमिनल को नहीं पता कि व्हाट वी आर गोना डू। ऑलराइट इट हेल्प्स इन मल्टीपल वेज। क्या आपको पता है एक फेलिनी स्टॉप क्या होता है? सर फेलिनी स्टॉप बेसिकली मतलब जितना मैं वर्ड से सुन के पता कर पा रहा हूँ, ये होता होगा कि अगर कोई मतलब क्राइम किसी व्हीकल से हुआ या फिर किसी भी इंसान से होता है तो हम उसको रोक के पूछताछ करते हैं, उस चीज़ को मेरे हिसाब से फेलिनी स्टॉप कहा जाएगा। और फिर इसमें और ट्रैफिक स्टॉप पे क्या फ़र्क पड़ता है? सर ट्रैफिक स्टॉप तो सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स का हो गया, एंड फेलिनी स्टॉप मतलब कोई भी क्राइम हो उसके लिए हो सकता है, अगर किसी पे हमें सस्पिशन है या कुछ भी है उस हिसाब से, या फिर हम किसी को फॉर लेट्स से मास्क में देखते हैं एंड मतलब हमें लगता है कि वो एक क्रिमिनल हो सकता है, तो वी कैन जस्ट गो एंड स्टॉप देम एंड आस्क देम कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर अप टू, एंड इफ वी हैव अ सस्पिशन ऑन देम।
Okay, just give me 1 second. जी सर। केविन सर, हाँ यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है केविन सर। हाँ, पता है पता है, ओह, मैं बहुत सोच समझ के चीजें करता हूँ, ओके, सोचता बहुत हूँ मैं। अच्छा, ठीक है यार, I mean Kevin, Ron, you all can go ahead and ask anything if you all want या to. आई डू हैव सम फ्यू क्वेश्चंस। जैसे आप बोल रहे थे राइट, यू कैन रीड पीपल, रीड नॉट रीड बट यू कैन यू अंडरस्टैंड हाँ वो लोग कैसे हैं, राइट? जी सर। आपने बोले मेरे को, तो आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है? जी सर। सोच लो कि लाइक कई जगह से गोलियां वगैरह चला है, ठीक है? सर अब सॉरी, उसे on duty- फिर से बोलिए, सॉरी सॉरी। कोई एक सर्टेन प्लेस से गोली चला है, हाँ जी हाँ जी। अब उस जगह पर ऑन ड्यूटी, मतलब उस टाइम ऑन ड्यूटी थे जी जी। आपके साथ एक जूनियर है आपके साथ, हाँ जी। आप दोनों एक साथ उधर बच्चा ढूंढ रहे हो, जी जी। 10-12 साल के बच्चे। जी जी। obviously you can feel that उसका गिटार, हाँ मुझे पता है क्यों, मतलब उसका मुझे जो पता है, ये उस बहुत टाइम का बढ़िया जो सिंगर getup है। हाँ जी। जो अटायर है उसका, जो भी ड्रेसेस पहन के रखा है नॉल, तो उसको देख के आपको लग ही रहा है कि शायद हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है नॉल, ठीक है? अब अप्रोच करते हो रिलेटेड टू द केस, जो उधर से क्यों जी, जी। शॉट्स फायर हुआ है उसको कुछ पता है कि नहीं, ऐसे उसके तरीके से पूछते पूछते आप उससे बात करते हो। अचानक से क्या होता है कि वो बंदा थोड़ा सा डर जाता है ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, ठीक है? और वो उस जगह से भागने लग जाता है, ऑन फुट दौड़ने लगता है। जी आप उसको चेस कर रहे हो बट वो भाग रहा है। जी। अब बताओ इस सिनारियो में अगर वो बंदा पकड़ा जाता है एट सम पॉइंट जी। ऑफ टाइम, वो शायद उसका वो थक गया, वो रुक गया, ना आप उसको पकड़ के बिकॉज यू आर ट्रेन्ड इनफ, जी जी। मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा भागते ही रहोगे, पर यू आर जी, जी। ऑब्वियसली ट्रेन्ड इनफ, आप बड़े हो उनसे तो आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है। जी जी। हाउ विल यू प्रोसीड? सर देखिए, जैसा कि आपने बोला है कि वो एक 12 साल का बच्चा है, राइट? लाइक 10-12 The साल का guy बच्चा। still there? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो पकड़ा जाएगा, आई वोंट मतलब उसी इमीडिएट मोमेंट पे मैं उसको कफ या कुछ उस टाइप की चीज़ नहीं यूज़ करूँगा। मैं उसको जस्ट बोलूँगा कि मतलब Alex आएगा? हाँ, ये pick up. केविन ने दास को गिटार क्यों दिया है? समझ नहीं आ रहा है। basically I'll tell him that everything is fine, you don't have to worry about anything because of course he's a kid, right? And once I've checked कि मतलब प्रेस करके कि lethals वगैरह नहीं है, तो I'll just calmly speak to him कि what happened and आपने यहाँ पे क्या होता हुआ देखा, क्योंकि of course आप मैंने उसको फ्रिस्क कर फ्रिस्क लिया। करने गए, जी सर। उसके पॉकेट से आपको 250 grams of cocaine मिला और something. Okay. Now, what will you do? देन सर फिर मैं उस बच्चे को मतलब बिठा के गाड़ी में I'll मतलब ट्राई टू कॉन्टैक्ट माई सीनियर्स बेसिकली, या फिर अगर सीनियर्स को आप अवेलेबल सीनियर नहीं हो, है। जी आपके जी। साथ आप सीनियर हो, आपके साथ एक जूनियर को भेजा मैंने। अच्छा अच्छा। ये तो सब बताओ। बेसिकली सर मतलब बेसिकली मैं फिर जूनियर को कमांड करूँगा कि उसको आराम से प्यार से गाड़ी में बिठा लें एंड उसके बाद उसको मतलब पीडी तक लेके जाएं एंड वहाँ जाके जो भी मतलब अगर थक मतलब गया मैं ही ब्रो, पोलाइट ऐसा वे में सो मतलब जाओ। बात करूँगा उससे एंड उससे पूछूंगा कि मतलब वेयर ही गॉट थिंग्स फ्रॉम एंड उसके बाद उसको मतलब मैं क्वेश्चन करके आई ट्राई टू गेट सम इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट दैट किड आराम से एंड वंस द लाइक इंटरोगेशन इज डन पोलाइटली ओके सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिट। हाँ, तो मतलब वंस द लाइक क्वेश्चनिंग इज डन, जो भी मतलब जो डिपार्टमेंट होता है मतलब जो लाइक माइनर्स का केसेस हैंडल करते हैं, उनको मैं वो लाइक बच्चे को मतलब भेज दूंगा, मतलब उस बच्चे को उनके पास। किसी और को कुछ पूछना है? Tell me one thing. What's your name again? गप्पू प्यारे सर।
He is like a It's a fresher. fresher. Yeah. Fresher? Yeah. Yes. जी sir. Okay. So no, it's nothing regarding that. So I just want to ask you. You said the guy who you found drugs on, right? जी sir. It's class C narcotics, cocaine. Mhm. So when you find drugs on someone, irrespective of him being a juvenile, Mhm. do you follow your procedures? Why is your approach changing toward that person? सर एक्चुअली एक जब मतलब बच्चा होता है, एक माइनर होता है सर, उसका माइंडसेट पूरी तरह से मतलब एक तरफ पे ना डला हुआ नहीं होता, इन माय ओपिनियन। So he's fragile मतलब in a sense, हाँ, right? ही इज़ अ फ्रैजाइल, या ही इज़ फ्रैजाइल। तो आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उस बच्चे को ऐसा ट्रीटमेंट मिले। ऑफ कोर्स उसने गलती करी है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। एज अ माइनर उसकी सज़ा उसे मिलेगी, इग्नोर इसीलिए मैंने नहीं उसे किया आगे जिस यार, जो बस थका डिपार्टमेंट इस हुआ चीज़ हूँ में यार। ज़्यादा सक्षम है उस डिपार्टमेंट में उसको भेजा है। एंड वो इस सोच से भेजा है सर कि उस बच्चे को एक सही सोच मिले एंड वो अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर पाए, बिकॉज ही इज जस्ट 10-12 years old and a lot of kids who are living on streets and who are poor. सर मी बीइंग मतलब मेरे 14 years की एज में मेरे डैड मतलब लाइफ मतलब नहीं रहते दुनिया में, तो मुझे पता है मतलब वो चीज़ कि कैसा फील होता है कि आप गलत रास्तों पे जाने वाले हो एंड कितनी आप नींद आ रही सुधर जाओ। बहुत यार, कल तो रात को सर बहुत मैं कम भी भी चाहूँगा सोया। कि वो बच्चा एक सही I रास्ते पे slept for जाए like what, एंड 4 छोटी एज में hours I उससे think? गलती हुई या माना, हो सकता है उसे 4 कोई to 5 hours I भटका slept, which is भटका not रहा हो या enough for फिर me. उसने किसी नीड के चक्कर में वो क्राइम किया, बट वो चीज़ रात टर्न को अराउंड हो सकती है। तो आई वुड अगर मैं लाइक घर कि आया and I'm वो सुधर fine, जाए, इसलिए then मैंने सही जगह पे I will उसको stream. अगर मैं घर आया and I'm देखना not fine, सही I won't समझता stream. हूँ। Okay. So you're responding to a case of assault, right? Three जी different cases. हम्म One is a male adult, हम्म all right? One is an elderly, हम्म and another one is a teenage boy. जी सर। आपके approaches कैसे होंगे उनकी तरफ? Differences क्या होंगे? सर जो एल्डरली और जो टीनेज आप बोल पार्टी रहे करने हैं जा सर, रहे हो, वो yes. थोड़े से मतलब फिजिकली वीक होते हैं, तो उनकी तरफ आई ट्राई मतलब अगर फर्स्ट हैंड पे अगर उनकी तरफ से कोई भी एग्रेशन या कुछ ऐसा नहीं दिखता है, तो ऑफ कोर्स जैसे इस केस में जो बच्चा था उसकी तरफ से कोई एग्रेशन नहीं, जस्ट ट्राई टू रन अवे एंड ही वाज स्केयर्ड। ऑफ कोर्स आई कुड हैव सीन दैट विद माय आईज, राइट। तो अगर कोई भी बच्चा लाइक टीनेजर या एल्डरली अगर एग्रेशन नहीं दिखाता है, तो आई ट्राई माय बेस्ट टू नॉट बी एग्रेसिव टुवर्ड्स देम, बट अगर एग्रेशन दिखाएंगे तो मतलब मेरे को मतलब फिर अपनी तरफ से भी जो पुलिस डिपार्टमेंट की फोर्स है उसको यूज़ करना पड़ेगा। एंड जो मैच्योर एक लाइक जवान 20-30 साल का कोई इंसान है, अगर 30-40 का भी, तो उसको वो अपनी कंप्लीट सेंसेस में है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो उसके लिए अगर कुछ भी मुझे सस्पिशन होता है तो आई विल कंप्लीटली प्रोसीड विद द ऑफिशियल प्रोसीजर मैं दैट कैसे इज बेशर्म हूँ, यू नो मैंने क्या किया गिवन आज? टू मी आज बाय को द नो स्टेट। शासक को स्ट्रीम है नहीं है क्या? नहीं। वैसे केविन सर, आई डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, बट आपने बोला कि यू हैव समथिंग इन माइंड. आई एम वेरी Yeah. क्यूरियस टू नो व्हाट्स रनिंग इन योर माइंड. Yeah, Questions I'll from my tell end are you. done because I'm pretty clear Ron, on anything? everything. Nah. Rex, do you have anything to ask? Rex? Yeah. Okay. हमारे Do you have interview में anything भी to ऐसे ही कर ask? रहा था नहीं? ना अरे नहीं, वो वाले में तो ऐसे ही. कोई नहीं. What happened? What are you going behind my Alright, back? Pulling out those Mr. fucking Pyare, earphones, man. जी सर। I always read Stop wearing someone's music CV Rex in very interviews. carefully, you know? जी So सर। you have mentioned something about music. Are you trained or are you like a bathroom singer like me? Or are you just, you like music? What? Look, सर थोड़ा बहुत सर गा लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, गिटार है पीछे, देखते हैं आपके स्किल कितना है। ये लो। वैसे अभी थोड़ा गला खराब है वैसे लेकिन केविन सर, पीडी में ऐसा नहीं चलता यार, गला खराब है तो क्या मतलब केविन सर? कॉल्स नहीं लोगे? हाँ हाँ। उसने रेज्यूमे में लिखा कि इज गुड एट सिंगिंग, उसने ये नहीं लिखा कि नोज हाउ टू प्ले द गिटार. आपको कैसे पता? हाँ सर। ट्यून आ जाएगा, ट्यून. बताओ बताओ सर. अरे बताते यार हाँ सर, ऐसे बताओ करके ऊपर चढ़ जाओगे, कैसे बताऊंगा? बताओ सर। बताओ ना, हमें जानना है. सुनो मेरी बात सुनो। आई एम आल्सो क्यूरियस। So I am just giving him an option. अच्छा. अब right now I don't have anything else apart from the guitar. याद है उस दिन तुमको भी गिटार लेके आने बोला था चेक? अच्छा.
Sir, but I mean, out here you can make anything an instrument. You know, a table can be a subsidiary for a drum if you want to perform music in any way. So why guitar only? Why guitar specific, sir? Like it could be anything around here. See? See, sir. अगर तोड़ गया ना पैसा तुमसे लूंगा. So Kevin, sir, why guitar? अरे तो कुछ और है हमारे पास गिटार छोड़ के, वही पूछ रहा हूँ. ठीक है मान लेते. यही है ना, जब किसको खराब लगता है तो यही उठा लेता है, गाना गाता है. वो लेने गया है, मेरे को लग रहा है उसके पास है. रेक्स भी गाना गाता है क्या, मेरे को नहीं बताता. प्रिय सर पका रहा था ना पूरे इंटरव्यू में तो मेरे को ये. अरे Mikey knows how it feels now to interview with Rex. कोई ना, वैसे मिस्टर प्यारे, if you are not comfortable with guitar you can even sing normally also. I just, you know, who knows, लोगों को चाहिए होता है. There was one more candidate like you. उसने भी मेंशन किया था. सोच रहा इंटरव्यू देते वक्त भी गाना होगा, सबवे में बैठ के भी गाना होता है. कोई नहीं, क्या होगा. उसने जब गाना गाया उसके बाद जेक का मेरे पास मैसेज आता है. किसी का बोझ नहीं है. मैंने कब मैसेज किया सर? एक काम बताइए सर, आपको गिटार बजाना आता है? नहीं मेरे को नहीं आता. तुमको आना है क्या? बजाना है तुमको? किसी को आता है गिटार बजाना? नहीं. हाँ आता. हाँ लीजिए, इनसे लीजिए. आओ मुझे तो नहीं आता क्योंकि आप बजा के देखिए, अगर आपसे लाइक बज पाए तो. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तुमको बजाना अगर नहीं आता है तो नॉर्मली गा दो, कोई इशू नहीं. तो ये पहन लो. सी कि आपने जो भी लिखा है वो कितना जस्टिफाइड है. अच्छा. यस. क्या पता रेज्यूमे में झूठ बोल रहे हो हमसे. नहीं सर, आप ट्राई कीजिए गिटार बजाने का. हैं? मुझे लग रहा इनके कह रहे हैं ना आता है तो. हाँ रॉन, गो फॉर इट. हाँ, आपको गिटार बजाना आता है? सर बोल रहे हैं. कभी सीवी में मेंशन नहीं किया था तुम? हिडन चार्जेस. हिडन टैलेंट. अरे हिडन चार्जेस. रॉन, गो फॉर इट रॉन. आ रहा है. रिस्पांस का प्रॉब्लम सारे ऑफिसर लोग को है क्या? क्या? जो रिप्लाई 15 मिनट बाद आता है. पता नहीं यार, जब भी कुछ किसी को भी कुछ बोलो करने को ना, सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे करूं मैं. हैं? ये तो लाने बोला था जाने. और फिर कुछ लोग आप ही ट्राई कीजिए बजाना. नहीं मैं बजाऊंगा तो. अरे ट्राई कर लो, हो जाएगा. देखो अगर मैं जे विलियम नहीं होता मैं कर लेता, पर मैं जे को. नहीं तुम जे की हो इसलिए तुम करोगे. करो. No. I can't. While I'm on duty, I do not do all this. It's a very different life, you know, right now. जैसे हम भी बाथरूम सिंगर है वैसे ही से. जब ये लोग बाथरूम सिंगर बोलते हैं ना, तब भाई गाली देने का मन करता है. अरे है, ट्रेन करके बोलते हैं खुद को बाथरूम सिंगर. हाँ, बोलना होता है बस. कोई बात नहीं मिस्टर प्यार. दाशी आप ही बजा लो. नहीं मैं आपको पता ही नहीं. अरे आता है आपको. यू हैव टू बिलीव. जस्ट अरे ट्राई कर लो. just believe. Yes. You just have to believe. हाँ, anything in life is possible. Okay, so I might fuck this up. Okay, I actually might fuck this up. That's fine. कोई बात नहीं यार. क्या बजा रहे हो सर? नाइस. थैंक यू सो मच. हिडन टैलेंट. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो. सर अभी तक नहीं हो पाएगा. क्या? बढ़िया. अभी तक हो पाएगा सर. हाँ जी. कोई बात. बढ़िया. All right. I'll just say thank you for the interview. Your response about this will come in due time. We'll let you know about the response and about the selection process and the way forward. So yeah, you just have to like keep on the lookout for that. And yeah, Okay, that's about it. You can take your leave and yeah. Thank you so much sir. नमस्कार आप सबको. Thank you so much. नमस्कार. Thank you for your time. Yeah. दाश जी कितने लोग हैं? फोर्सेस में करवा दूंगा तुम्हारा. वन और दाश जी कितने और इंटरव्यूज है? अभी है 2-3 है. अरे यार सर मैं इधर ही भेज दे. ग्रीन बंडाना पहन सकते क्या? अबे ओ एक सेकंड. बंडाना मिल गया तो पहन ले. हाँ. बंडाना मिल गया तो पहन ले, पर वो अभी आज के लिए ये डील ऑन है. इफ यू फाइंड अ बंडाना टुडे यू कैन वेयर इट. मिनट में आया, रुको अभी. डर लग रहा है. मैंने क्या कर दिया? कौन सा वाला बंडाना? नहीं है ना? नहीं है. हाँ. नहीं है.
अगर वो बोल रहा है हेड बनाना आई डोंट नो, बट नॉर्मल बनाना नहीं है, हेड बनाना उस भी पॉसिबल है। want to Mikey, which रेक्स bandana are you किधर talking गया? about? इनमें नहीं, want to Mikey? सर जो माथे पे देख रहे हो? अरे यार, वापस आ जाओ। सी हम पकड़ लिए। माइकी का आईडी नहीं है क्या? नहीं, but he's probably not the best officer, no. Want to Mikey come back, ignore the bandana call. अरे तुम पता है हाँ जी, लोग बोलो। कितना भोले होते हैं। हाँ लोगों ने ये 5 मिलियन दास में बजा रहे थे। उसको मैं फॉसिल्स का दे दिया कांटेक्ट नंबर। कैसे? मेरे साथ सही है दिखा के तोड़ दिया। आ जाओ। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? सामने आ जाओ सर, सामने आ जाइए। अच्छा सामने नहीं होगी, ओके। व्हाट्स योर नेम? सर हमारा नाम है बबलू गायतोंडे। Bablu Gaitonde, right? जी सर। All right, my name is Jake. I'm a SASP trooper in the SASP department. To my right is Mr. Kevin. He is the SASP chief. And to my left is Mikey, who's a sergeant in the SASPR department. We'll be taking an interview for today. Before we start things off, क्या आप आपका resume and medical certification हमें से किसी को भी भेज सकते हैं please? और soft copy? जी सर। गिव मी अ सेकंड सर। सर आपकी मेल? 1 second. I'll just give it to you on a notepad. You can just take it. आई विल सेंड इट। Okay. सर आपको resume and Your medical certification, yeah. Yep, okay. दे दिया सर, दोनों दे दिया। ओके जब तक मैं आपका रेज्यूमे देखता हूँ और मेडिकल सर्टिफिकेशन देखता हूँ, अभी तक आपका रेज्यूमे आया नहीं मेरे पास। वो जा रहा है, गिव मी। हाँ, नो वरीज, दैट्स फाइन। जब तक मैं वो देखता हूँ and I understand and I go through it once, I'll also send it to the other 2 officers as well. क्या आप मुझे आपके बारे में कुछ बता सकते हो जो आपके रेज्यूमे में नहीं है? जी सर, श्योर। गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार आपको रेज्यूमे भेज दूँ। या श्योर, नो वरीज। बुरा If you're facing difficulty sending the resume, just let me know. I will look into my database then. Mr. Bablu? I'm audible, right? Yes. Uh-huh. एक सेकंड।
सर मिल गया क्या आपको? या आई गॉट इट, ऑलराइट। वो एक्चुअली वो वर्क नहीं कर रहा कोई था, दिक्कत तो नहीं, कोई दूसरा दिक्कत नहीं, नो वरीज, नो सॉरी। वरीज, दैट्स कंप्लीटली फाइन। हाँ, तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ? जी सर, लाइक मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से, लाइक अगर मान लीजिए मैं कभी भी कुछ मिस्टेक करता हूँ एंड मान लीजिए कोई भी मैंने अपने उसमें कोई भी गलती करी है, तो उस चीज़ को अगर कोई मेरे को लाइक उसको समझाए चीज़ को कि आपने जो मतलब एक तरीके से होता है ना कि प्रोसीजर टाइप चीज़ कि आप कुछ मिस्टेक करते, तो वो चीज़ मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को सुधार लेता हूँ। ओके। ये चीज़ की मेरे अंदर थोड़ी सी क्वालिटी है, लाइक मैं एक बार में अगर कोई मेरे को कुछ चीज़ समझाता है तो मैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ एंड जो गलतियाँ होती है वो गलती मैं कभी रिपीट नहीं करता। ओके जी। ओके, आपके पास इसके प्रायर कुछ एक्सपीरियंस है? जी सर, मैं ऑफिसर रह चुका हूँ एंड इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप ऑफिसर, लाइक वेयर डिड यू डू योर ड्यूटीज? आप किधर करते थे काम? सर लाइक ये मैं पहले मैंने 2 जगह सर्व किया है। ओके। सबसे पहले मैंने लिबर्टी सिटी में सर्व किया था ओके। एंड उससे पहले मैंने इंडिया में भी सर्व किया है। ऑलराइट, आपने पहले इंडिया में सर्व किया, देन लिबर्टी सिटी। जी सर, लिबर्टी सिटी। एंड इन लिबर्टी यू आर द रैंक ऑफ ऑफिसर, राइट? जी सर। ओके, क्या आपको पता है आपने लाइक विच डिपार्टमेंट हैव यू अप्लाइड फॉर? जी सर। कौन सा है ये, लाइक आप किसके लिए इंटरव्यू दे रहे हो अभी? सर एसएसपी के लिए। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एसएसपी? सर फुल फॉर्म क्या आपने ये इंटरव्यू के पहले थोड़ा भी रिसर्च किया है अबाउट व्हाट यू अप्लाइंग फॉर, व्हाई यू अप्लाइंग अबाउट फॉर इट? हाँ सर, काफ़ी चीज़ों के बारे में रिसर्च की थी इससे पहले आने से पहले। राइट, जस्ट टू कीप थिंग्स क्लियर, एसएएसपी इज सैरांडिया स्टेट पुलिस। जी। क्या आप जानते हो एसएएसपी के अंडर कौन से सब डिपार्टमेंट्स हैं? नहीं सर, इसके बारे में तो नहीं पता। लाइक हम एसएसपी के अंदर आई गेस एलएसपीडी एंड आई गेस बीसीएसओ। ओके, एलएसपीडी एंड बीसीएसओ के फुल फॉर्म्स क्या है? सर एलएसपीडी की फुल फॉर्म है आपकी लॉस सेंटोस पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ। एंड बीसीएसओ की फुल फॉर्म है सर आपकी If you don't know, it's completely fine. I would rather be honest. Yeah. I guess BCSO की नहीं पता सर। Okay, BCSO is Blaines County Sheriff Office, and we also have a तीसरा department भी है called SASPR, which is San Andreas State Park Rangers. अगर ये इंटरव्यू सही गया and things go fine and आपको एक मौका मिला to select a department of your choice, कौन सा होता? सर बेसिकली मेरे को तो सिर्फ सर्व करना है, डिपार्टमेंट कुछ भी हो वो चीज़ आई डोंट थिंक कि मेरे लिए मैटर करती है। ऑलराइट, ठीक है। जब आप लिबर्टी सिटी में थे, आप ऑफिसर थे। जी सर। आपने वो जॉब क्यों छोड़ा? सर ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मेरे को सिटी छोड़नी पड़ी। ओके, जी। सो यू मूव्ड आउट ऑफ लिबर्टी सिटी। यहाँ पे आई मीन इन द वर्ल्ड इतने अच्छी जगह है, देयर इज न्यूयॉर्क, देयर इज कैलिफोर्निया, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कुड डू ड्यूटी। व्हाट ब्रॉट यू टू लाइक लॉस एंजल्स? क्यों? सर गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब। क्या बोल रहे हो, न्यूयॉर्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? कैलिफोर्निया नहीं सर, एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ है बट यू नो डेवलपमेंट, लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि इधर ज़्यादा डेवलपमेंट है एंड इधर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो दैट्स वाई। एंड वही जिसके बस डिपार्टमेंट इसलिए मेरे को इधर ज़्यादा अच्छा लगा। देखो, हमारे पास अराउंड 250 प्लस एप्लीकेंट्स आए थे, उनमें से अ लॉट गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू जहाँ पे आप हो अभी। आई वांट टू नो कि आप में ऐसा क्या है जो बाकियों में ना हो, या यू आर बेटर एट इट? व्हाई शुड आई चूज यू ओवर एवरीबडी एल्स? सर मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बाकियों में है कि नहीं है, बट हाँ मेरे अंदर एक क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छी है, वो है सर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आपको लग रहा है कि बाकियों में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है? नहीं, मैंने अभी आपको बोला वही चीज़ कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बाकियों में है कि नहीं, बट मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड लाइक चीज़ें हैंडल करने में भी मैं काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हूँ, जो मेरे से हो पाएगी या जिनके बारे में मेरे को नॉलेज है वो चीज़ें मैं काफ़ी अच्छे तरीके से उन चीज़ों को भी टैकल कर लेता हूँ।
तो ये 2 मेन पॉइंट है मेरे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, हाउ ओल्ड आर यू? So I am 22. So what year were you born in? Sir 1999. Alright, okay. जी सर। आपके रेज्यूमे में देखा यू एक्चुअली लाइक गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट। आप मुझे समझा सकते हैं कि कैसे अचीव किए थे? समझा सकता हूँ सर। बताओ अचीव कैसे किए थे पूछा आपने, क्या किया ये अवार्ड अचीव करने के लिए? 3 अवार्ड्स। जी सर। तो सर उसमें आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मेरा पहला अवार्ड जो मेरे को मिला था ये मेरे को मिला आपका महावीर पुरस्कार। तो महावीर पुरस्कार मेरे को एक्चुअली ये तब मिला था मेरे को लाइक जब मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी डिपार्टमेंट में था। ये कुछ सिचुएशन हुई थी जिसमें Sir, like this, I would assume it's a very prestigious award, right? जी जी। So I mean, you should know at least why you were given this award, right? Do you know why you got any of the awards? तो वीर चक्र के बारे में मेरे को याद है। बताओ। तो वीर चक्र मेरे को ड्यूटी सर्व करते टाइम ही मिला था कि कुछ मतलब कुछ ऐसा सिनारियो हुआ था हमारे साथ जिसमें मैंने लाइक अपनी जान पर खेलकर मैंने कुछ सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया था। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे को गवर्नमेंट के थ्रू वो वीर चक्र मिला था। Sir, I don't want to disregard any capabilities, but as per your resume and as per what information you gave me, you were born in 1999. You got the Veer Chakra in 2006. That makes you 7 years old. At 7 years old, you served duty and got this award? नहीं। So then, are you saying you've provided us inaccurate information in your resume? उसमें सन लिखा हुआ है क्या? सर आपने लिखा है सर, डोंट लाइक आई डोंट नो लिखा हुआ है कि नहीं, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। आपने मुझे रेज्यूमे भेजा है, unless somebody else made this resume for you, because I mean I don't know why, but yeah. Wait a second. And also the Mahavir Puraskar you got in 2003 at the age of 4. I don't think so कि उसमें ईयर लिखा हुआ है। Okay, so I think I'm blind then. No, I think so I sent you the wrong resume, I guess. So the resume that you have sent me is the same resume that you submitted. I have the entire data log in my tablet as well. So I would say that if you send me, if you feel that information is inaccurate, that is completely okay. But I would recommend working on the resume and fixing things which are incorrect. जी। Okay, so you have an experience of an officer, right? So I assume you will know your SOP. जी सर। आपको SOP के बारे में पता रहेगा, right? हाँ सर, मेरे को SOP के बारे में थोड़ा बहुत पता है। SOP का फुल फॉर्म क्या है? सर बेसिकली जो SOP, अच्छा हाँ मैंने एक चीज़ और, मैं सॉरी टू इंटरप्ट एंड आपको एक चीज़ बस और बताना चाहता हूँ मैं। लाइक मैंने अपने रिज्यूमे में भी ये चीज़ मेंशन करी है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। That's okay, but these are terminology. Like ये नहीं, terms मैं है। थोड़ा आपको SOP के बारे में हिंदी में बताऊंगा तो उससे वो कोई issue तो चलेगा, नहीं है ना? वो चलेगा, but तभी भी SOP का फुल फॉर्म is a full form, right? जी जी जी। SOP का फुल फॉर्म बताऊंगा ना। नहीं मैं मतलब आपसे नॉर्मली बस एक पूछ रहा था। सर SOP हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन लाइक आप हिंदी में बात कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। SOP सर, SOP का फुल फॉर्म आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके। रीजनेबल सस्पिशन एंड प्रोबेबल कॉज क्या होता है? सर रीजनेबल सस्पिशियस आपका होता है लाइक जब भी आपको, जैसे मान लीजिए कोई सीन हो रहा है, कुछ सिनारियो हो रहा है एंड उस आपको एक लोकेशन मिली है कि आपको कॉल आया है कि इस एरिया में यहाँ पे जो है चोरी हुई है एंड आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ लोग दिखते हैं एंड आपको उन पे डाउट होता है, तो वहाँ पर सर रीजनेबल सस्पिशियस होता है क्योंकि आपको उन पर शक है लेकिन आपके पास कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि ये वही बंदे की नहीं है।
तो ऐसे में सर वो रीजनेबल सस्पिशियस होता है एंड प्रोबेबल कॉज लाइक आपके पास प्रॉपर एविडेंस और आपको पता है कि ये वही बंदे जो चोरी कर रहे थे, तो सर ऐसे में प्रोबेबल कॉज होता है। ओके, एक फेलिनी स्टॉप क्या होता है? फेलोनी स्टॉप सर जिसमें क्रिमिनल, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसके ऊपर रिकॉर्ड है ऑलरेडी। तो जैसे मान लीजिए उसको रोकना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक केस है या लाइक उसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ा डाउट है, तो ऐसे में हम लोग उसको 10-11 परफॉर्म तो नहीं कराते। लाइक ऐसी सिचुएशंस में उसको फेलनी होता है, मतलब लाइक कैसे बोलूं, फेलनी स्टॉप होता है सर वो, लाइक जिसमें आप उस वो ऑलरेडी आपको उस पर हो कि हाँ ये बंदा इस पे केस है या फिर उसके ऊपर कोई एफआईआर है। ओके, आपने बोला उसके ऊपर 10-11 परफॉर्म नहीं करते, तो फेलिनी स्टॉप का 10 कोड क्या है? आई थिंक इट्स कोड 5। ओके जी, समझ लो आपको एक कॉल आता है कि ग्रेट ओशन हाईवे पे एक रेड कलर पोर्श चोरी हुई है। रेड कलर की पोर्श चोरी हुई है। हाँ, आप पेट्रोल कर रहे हैं इनसाइड द सिटी। जी, कुछ ऑफिसर्स गए इन्वेस्ट करने, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। जी, 2 घंटे बाद आपको वो सेम पोर्श दिखती है एट लीजन स्क्वायर। जी, वो सेम नंबर प्लेट एंड यू आइडेंटिफाइड इट एज अ स्टोलन व्हीकल। आपको पता नहीं है कि वो गाड़ी सिर्फ एक बंदा बैठा है, ओनली ऑक्यूपाइड वंस, ठीक है। जी सर। आपको पता नहीं है कि वो ओनर है, वो सस्पेक्ट है, वो कौन है, आपको पता नहीं है। इसके ऊपर आप ट्रैफिक स्टॉप करोगे कि फेलिनी स्टॉप? सर फेलिनी करेंगे ना, बिकॉज उस गाड़ी की कंप्लेंट ऑलरेडी। पर क्या पता वो अंदर ओनर हो, गन पॉइंट दे के वो कैसे रिएक्ट करेगा अगर फेलिनी स्टॉप कर रहे हो। नहीं सर, जब गाड़ी की ऑलरेडी कंप्लेंट है और अभी तक ओनर ने आके हमसे वापस से कंफर्म नहीं किया कि उसको उसकी गाड़ी मिली है कि नहीं मिली है, तो ऐसे में तो सर उस फेलोनी होगा ना उसके ऊपर, बिकॉज हमारे पास तो कंप्लेंट है उसकी। वो बाद में हम उसको आगे आगे जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू हम पता लगा सकते कि वो ओनर है कि नहीं है। अच्छा, आपको मिरांडा राइट्स पता है? मिरांडा राइट्स पता है सर हिंदी में। आप हिंदी में बोल सकते हो ये? जी सर। बोलिए। तो सर मिरांडा राइट्स आपका ये है कि आपको लाइक जब आप किसी भी सस्पेक्ट को पकड़ते हो तो आपको उसको मिरांडा राइट्स सुनाने होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको चुप रहने का पूरा अधिकार है। यदि आप कुछ भी बोलोगे तो आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको वकील लेने का भी पूरा अधिकार है। यदि आप कोई वकील उसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार के द्वारा आपको एक वकील दिया जाएगा, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा, कोई सरकारी वकील अगर अवेलेबल होगा तो। ओके, एंड हम ये किसी को भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर जब हम किसी को भी पकड़ते हैं तो लाइक उसके जो हक है सर वो उसको बताने होते हैं कि एक्चुअली में वो, अगर जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जिनको इशू होता है, मान लीजिए हमने किसी को अरेस्ट किया, वो बोलते हैं कि नहीं तुम हमें अरेस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम उसको इसके राइट्स सुनाते हैं कि देखिए आपके ये राइट्स है, अगर आप अपने राइट्स के थ्रू जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। लाइक अगर आपको लॉयर चाहिए तो आपको लॉयर हम प्रोवाइड कराएंगे अगर हमारे पास होगा, वरना अगर आपके पास आपका कोई लॉयर है तो आप बुला लीजिए और आप जो है अपने राइट्स के थ्रू जा सकते हो। ओके, आपके पास आप ऐसे ही जनरली पेट्रोल कर रहे हो अराउंड द सिटी। जी सर। एक इंसान आता है, जी, ही पॉइंट्स अ गन एट समबडी एल्स। जी सर। वो उसकी गाड़ी चोरी कर लेता है। जी सर। ही ट्राइज टू एवेड, वो एवेड करने की कोशिश करता है, वो भागने की कोशिश करता है। हाँ, भागने की कोशिश करता है जी। एंड इवेंचुअली आप लोग उसको पकड़ लेते हो। पकड़ने के बाद यू टेक हिम टू द पीडी। जी सर। एंड उसको वो लॉयर मांगता है, उसका लॉयर आ भी जाता है। जी सर। इवेंचुअली ये सब होने के बाद यू टेल हिम हिज चार्जेस, यू टेल हिम हिज फाइन, हिज जेल एंड एवरीथिंग। फिर इवेंचुअली फाइन टिकट इशू करने से पहले आप रियलाइज़ करते हो कि आपने उसको मिरांडा राइट्स नहीं सुने।
ओके एंड वो बंदा भी अपने लॉयर को बोल रहा है कि ये ऑफिसर ने मुझे मिरांडा राइट सुनाया नहीं है, तो उसके बाद क्या करोगे? सो बेसिकली ये तो एक कॉमन लाइक बेसिक चीज़ है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो आपको मिरांडा राइट्स सुनाने पड़ते हैं, बट बाय एनी चांस अगर कोई भी ऑफिसर ऐसे भूल जाता है तो उसको मिरांडा राइट्स नहीं सुना पाते, तो इससे रिलेटेड सर फिर हायर कमांड से बात करेंगे। अगर क्योंकि आप यू आर द हाईएस्ट इन कमांड, अगर मुझे हायर कमांड से ही सब कुछ पूछना होता तो मैं ये पीडी इंटरव्यूज क्यों ही खोलता, हम 7 लोग डिपार्टमेंट संभाल लेते। इफ यू आर इन कमांड व्हाट वुड बी योर अप्रोच? तो देखिए बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक तो मेरे थ्रू ही हुई है कि मैंने उसको मिरांडा राइट्स नहीं सुनाए, तो ऐसे में मैं उनका जो भी लॉयर होगा उससे कंसल्ट कर सकता हूँ कि हाँ राइट्स नहीं सुनाए, उसमें फॉल्ट है मेरा। ठीक है। Kevin sir and Sandit sir, I have no more questions. You all can go ahead if you all do. No, all good from my side. That's only all good. All right. So that's all for your interview for now. जो भी आपका response है आपको due time में पता लग जाएगा. Once all the interviews are over. So yeah, all the best for that and thank you for your time. जी सर, थैंक यू सर। तो मैं गो? Yeah, you may leave. थैंक यू। कैप आगे से करो, एक उल्टा पहनूं? Want me to wear my cap like this? Dashi, how many more candidates? Last. 10 for. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. My name is Officer Jake Williams. I'm a trooper in the SASP department. To my right is Kevin Butler, who's the chief of the SASP department. And to his right is Jordan Sandett, who's the sheriff of the BCSO department. We'll be taking your interview for today. Nice to meet all of you. Can you tell me your name, please? Jan Levin. Alright, ma'am. Before we start this interview, can you send any of us your resume as well as your medical certification? Yeah, sure, sir. क्या था इसका नाम? Jan Levin. Okay. This is done. No past experience, it's a fresher. Okay.
इनको थोड़ा मान जाऊंगा, ये फ्रेशर है. मैं दो लोगों को बहुत ज़्यादा तोड़ता हूँ. एक तो जो दोस्त है और दूसरा जो लाइक So will you just give me a second? या शॉर्टी का टाइम. जो दोस्त है उनको तोड़ता हूँ, या जो अनरियलिस्टिक चीज़ें लिखते हैं फॉर्म एंड रेज्यूमे में एंड लाइक एक हाई रैंक्स. पासकवा में पैदा होते ही पद्मश्री मिला मुझे, पता है. गौरव राउत जी एंड सागा शवा का ट्रिपल थ्रेट इंटरव्यू संडे को है. Welcome to the shelter, welcome to the hell, welcome to the shelter, welcome to the hell. Sir, can you please drop a hi? Please. 1 second. Yes, sir. Yes, sir. All right, yeah. While I just forward it to Jordan and Kevin, and I look at it myself as well, can you tell us something Sure, about sir. yourself that is not in your resume? Sure, sir. I'm Jan Levin, and one thing that is not mentioned on my resume is that I love to do social work, like visiting old age homes and like animal houses, to like Okay. just visit and like talk and communicate with them, understand them. That is one thing that is not mentioned on my resume. All right, okay. Yes, sir. Do you have any past experience at all? No, sir, nothing. So, what brings you to become an officer?
So actually, my mother was a doctor and my father was an advocate. So like my mother understood people a lot, like very well, and like she was very compassionate and very helpful. And on the other hand, my father like was very knowledgeable about like the law and stuff, and so like I got very curious about crime and everything. So that's why I think I can understand people and like help them out with this job. All right, okay. Do you know which department have you like filled in the form for? SASP, sir. And do you know the full form of SASP? Yes, sir. San Andreas State Police. All right. The SASP has a few sub departments. Are you aware about that? Yes, sir. I know about three of them. Can you tell me? BCSO, LSPD, and Park Rangers. And can you tell me the full form of BCSO and LSPD? Sure, sir. BCSO is Blaine County Sheriff Office. Then LSPD is Los Santos Police Department. All right. If no, can you repeat that, please? I had a little issue. Can you repeat both the full forms? Yes. So BCSO is Blaine County's Sheriff Office, and LSPD is Los Santos Police Department. All right. If this interview goes well and you do get selected, and we gave you a choice to select a department of your choice, from the three, what would be your preference? So there's no order of preference, as like I'm very new to this and I don't know like much about it, so I would be flexible to any of the One more candidate is here, okay? posts or any of the branches. Chan for copy that. All right. So you're open to work in any of the three fields, right? Yes, sir. All right. Okay. Since you have an experience, I just want from your understanding, what do you think is our jobs as officers? So our jobs as officer, like the first and the like primary job is to like the safety of the civilians, and then understanding them and helping them out. The second responsibility that we have is to catch criminals. This is what I understand about this job, sir. All right. We've got around 250 plus applicants, from Yes, which sir. certain people, including you, have made it to the interview round. I Yes, want sir. to know that what do you feel makes you better than the rest of the applicants? So I think my communication skill, like I've seen officers in like my country back, they don't have like well and good communication skills. So like people are not able to understand what they say. So people talk back rudely, which like I don't like. So I think my good communication skills and like understanding compassion for people is like one thing that sets me apart from the rest of the candidates. Okay. I'll just give you a small situation. Yes, sir. Say there was some form of situation happening at Sandy Shores, where we caught one criminal, where we caught one suspect. While bringing him back to the cells towards the city in Los Santos, he started getting very aggressive verbally towards me. Yes, sir. And since that situation got quite heated up, I also told him a few words which I shouldn't have. So we kept using slang and kept saying things we should not to each other, me and the suspect. Eventually, after a point, I reached to the cells, and because I couldn't take the heat of the moment, the chief Kevin Butler comes and tells me to step back. So I step back at that point. I don't talk to the suspect at all. Yes, sir. And at that point, he tells you to go deal with the suspect. Now the suspect is already angry. He's already pissed off because of the way I have spoken to him. How would you deal with it? Because that anger might even lash out to you. Yeah, sir, obviously. So how would you deal with that? So first of all, I'll try to like calm him down, like by offering him a seat and offering him food and water, so that like he doesn't lash out on me. And then I'll try to sympathize with him, so that he calms down and like understands our perspective as well, as he did a wrong crime, so that he understand what he did wrong and his faults. But obviously I won't point them out straight. I would first like slowly lay them out for him,
in a very calmful manner Okay. by seating him, and that's how I would handle the situation. I won't take it to myself because, like, first of all, it's like my duty. Mhm. Yeah, so I won't take it to my ego and like start shouting at him. Got That's the it. thing. Yes, sir. What according to you is your biggest weakness? Biggest weakness, I would say, like, I become too focused at one task. Okay. I'm not saying I'm like bad at multitasking, but like if there's one work, I need to complete that work and then I need to like go to other one. All right. Okay. Yes, sir. Kevin, Sandy, do you all have any questions for now? I can then come back to some situations later. Yeah. All right. So, if I ask you about expectations from the department side, what Yes, would sir. you say? So Like, I what would, expectations? Yeah. yes, sir, I would expect like knowledgeable knowledge and training. I need proper training. So yeah, that I would expect. And Knowledge and training, right? yes, sir, and like so you're good to me. You like communicate well with me. You don't All be right. rude to me. What Yes, do you sir. mean? What do you mean by good to me? Good to So, for me, an example, not if rude. there is a situation Yes, where, sir. suppose you and one other officer were Mm-hmm. there, and for some reason you guys made a mistake, I Yes, sir. call you guys to my cabin and I scold you guys for the Mm-hmm. same. So that does it make me bad? No, sir. That's your duty to like scold us if we did So something then, wrong. wait, what do you mean by good to Good to me? me if I didn't do anything wrong and like you shout at me. That's what I You're meant. talking about justice and injustice, right? Yes, sir. Right. So Obviously, why would you shout at me like without any reason? That's the thing. yeah, yeah. Yeah. So I have one more question, Yes, sir. and that would be related to the duty itself, because you are not the only one who came as a fresher, right? Yes, sir. So I hope you understand the responsibility that we are carrying. Mm-hmm. Okay? If there are some scenarios that like your life will be at stake, Yes, sir. are you up for that? Yes, sir. Like I have seen my father like went into investigations and all. So like I can say I am like courageous and smart enough to like handle those situations. Yeah, Jake, that's it from my side. Sandy, Ron, do you want to ask anything? Yeah. Not from my So, side. बोलूँ मैं? हाँ. Yeah. So the resume which you have attached with the firm states that you have achieved commission on accreditation of law enforcement agency. Am I What, right? sir? So the resume which you have attached with the firm Mm-hmm. states that you So have achieved yes, commission and no, accreditation. so yeah, that was a mistake which I like made myself correct. That was something wrong, yes, sir. It's okay, happens. So in the skills you have mentioned that you have a Mm-hmm. skill of conflict resolution. What, sir? Skills may you have mentioned that you have a skill of conflict resolution. Yes, sir, conflict resolution. Any 2 or 3 scenarios which you would like to explain? How did you resolve the conflicts? Yes, sir. Like one time in my college, two of my friends were like fighting a lot. Like they were up to fist fights and all. So I tried to like calm both of them down and like make them understand what the other person did wrong and what themselves they could do correctly. So that's one of them, how I like diluted that conflict. And then the second one is like money issues, which happens like है in our उसको एनर्जी everyday में ले लो. life. And when people face them, I usually try to help them out with those conflicts. Okay. Yes, sir. You also mentioned good judgment in your CV. Mm-hmm. I like good judgment of character of others, sir. And how can you prove that? By talking to them, by like observing their behavior. See, if someone on the street is talking very rudely to me, and not only to me and to the other people as well, I don't take things on myself personally. I like observe how they talk to like other people too, and if they're like very rude to everyone,
I first try to understand what the reason is, and like if I understand, then like I made a judge on like not If this usually, is the but case, yes. then I would be the least person you'll have to talk. Oh, I see. Yeah. Yeah. Carry on, Jake. I'll add on. No, I mean, honestly, I have no more questions. I just want to understand one thing. What all do you Yes, know sir. about the law? Have you done any research in relation to being an officer? Because I understand you're a fresher and that a lot of it comes with training on field and off field. Yes, sir. But have you done any research about things like an SOP or something? Yes, sir. Like I know something about SOP. SOP is standard operating procedures, right? Okay. Then I read about some amendments, not all of them. Like the Okay. first amendment is like government doesn't allow to make like rules on the basis of religion, and like people are allowed to bear firearms, and then so like we are not allowed to be racist, not pass comments on others. This much I know, sir. All right. Okay. Do you know the difference between arrest and detain? Arrest and detain. Yep, so detain is basically when we have to keep the person in a certain area. Like, not we can't cuff them or stuff. We just have to like make sure that they stay in the area. We detain them. Okay. And arrest is when like we are sure that they did the crime and we like cuff them, and that's an arrest. So we tell them the Miranda rights. All right. Yes, Why do you tell someone their Miranda rights? because they have a right as a citizen of the city, and therefore they have rights. They should know that they have rights. And why are we arresting them? We tell them the reason as well. All right. Okay. Yes, sir. You have any knowledge about the? You have a little knowledge about the law now, right? A little, sir. All right. I'm going to put you in a situation just to see how you would handle it. Okay, sir. Say you're an officer in the LSPD department. You get a call of somebody robbing a bank. After that, you go there, you negotiate, you try to chase them down. Eventually, you catch them. You cuff them, you get them to the PD. You make them hear their charges. They ask for a lawyer. The Yes, lawyer sir. comes, and the lawyer is also out there in the conversation among you all. Now the thing is, you've done all the paperwork, you've collected all the evidences possible, everything is done perfectly fine, but you made one mistake. You forgot to tell him his Miranda rights, and that you realize before like finding him and jailing him. Now, the lawyer out there is just telling you directly that you cannot jail this person. You've not told him Miranda rights. He otherwise if you jail him, you will lose your job. He kind of indirectly like threatens you that you'll lose your job if you jail this person. And you're the highest in command, so you have no senior who knows more than you in this situation. How would you like approach it? What would you do? How would you deal with it? So, because of my mistake of not telling him the Miranda rights, I would have to let him go no matter what. Because, like, it was his right to know that he has a right to attorney and stuff. So, if he didn't know that, I can not do anything about that, and I have to let him go. Because he can, like, do anything in this court. He can say that he didn't have, like, he wasn't told his Miranda rights, and like that can risk my job and everything. So All right. Okay. yes, I sir. honestly have no more questions. Yes, sir. You guys can go ahead if you'll do. No, nothing from my side also, yeah. Senator Ron, anything from your sides? I don't know about the jurisdiction and stuff of the other No. departments. They're with me, hello? No, sir. No. So like the SASPR, the park rangers deals with all the animals, hunting and stuff. The Lian County Sheriff's Office deals with all the highway patrols and the Leaf Sea Burrito Bay area. Okay, Then sir. LSPD mainly stays within the city limits. So where would you like to be if you had a chance? So honestly, I would love to work in all of these departments, as like they all sound very fascinating. So like I don't have any order of preference. Really, I don't.
Not any of them like you would like to work? Not So I would specifically anyone? no, sir. I have like equal preference for all of them. Perfect. Yes, sir. And then Jake, sir. All right, ma'am. Thank you for your time. Thank you for the interview. Your Thank you response so will much, be sir. out in due time. We'll let you know about the way forward. Thank you so much, sir. All right. Thank you. Yeah. Pleasure to meet you all. नाइस टू Same मीट here, यू man. टू। ये देखो मेरा अभी किधर है? अभी दो। ये क्या? ये फ्लेक्स करने मेरे के केबिन में आ लिए? जाओ। अच्छा, ये एक और इंटरव्यू है। हाँ इसके बाद मेरे केबिन में आ जाओ ना, मैं दे दूंगा सब। मैं क्यूरियस हूँ। भाई देख के हाँ। पहचान लेती है यार। हैं? बोली ना, I'm good at judging. अच्छा। अच्छा। मैं सोचा अगर if every fresher was this prepared then थोड़ा सा ना पीढ़ी भर जाता पूरा। भाई घंटा लगा मेरे को, फ्रेशर है। वही तो। हाँ जैसे बोल रहा है फ्रेशर, तो मेरे को कई एंगल से नहीं अगर लगा। अगर फ्रेशर को एक भी अमेंडमेंट पता हो ना, मैं थोड़ा तालियां मार लूंगा। मैंने कहा है अरे अमेंडमेंट पता है, वाओ। यहाँ पे कॉर्पोरल्स का अमेंडमेंट नहीं पता, यहाँ पे- फ्रेशर्स को पता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमने अमेंडमेंट पूछा भी, सामने से बोला गया कि मुझे पता है, ये लो। मुझे ऐसे बुरा लगा कि अभी पूछूं भी तो क्या पूछूं। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे देगी। अरे सेंड इट, एक बार ग्लासेस उतारना। सेम टू सेम, बहुत बढ़िया। तेरा आईब्रोज गायब है। इसका ना वो काट लिया होगा सुबह शेव हाँ। करते वक्त, आईब्रोज भी उड़ा देते हैं आज। सलीन हम सुन रहे हैं कि तुम आजकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। किसका? सागर शिवा, अरे यार कुछ चीजों का प्रैक्टिस कर रहे हो यार। कुछ मुझे एक मैसेज आया। क्या क्या? काश मेरा भी इतना प्यार से इंटरव्यू लेते, बट नहीं, सबको मसाला हाँ चाहिए। मेरे को भी आया। रुको रुको रुको, संडे को सब रहना, ठीक है? हाँ, Sunday संडे को इज सब इम्पोर्टेंट FTOs डे। को भी बुला लेना। यस यस। जितने भी FTOs है सबको बुला लेना। ठीक है। आप तो सबसे पहले ना आए थे, आप सर आप कहाँ सर चले जी गए थे? क्या करें सर जी, अब तब मेरे से पहले 3-4 चले गए, फिर मुझे आ गया काम सर। अरे तो मैं बोलना चाहिए था ना, आपको 4 एक बजे बार तक बोलना चाहिए था। मैंने दास बाबू अरे तो को बोला एक बार दास बाबू को बोलना चाहिए था कि केविन बोला सर था से सर बात जी, हुआ था। बोला था हमको। ये वो नहीं बोले बोला था केविन से बात हुआ, ये बहुत बाद में बोला, जब पूरा सिनेमा खत्म हो गया तब बोला इसने। चलो कोई सीन नहीं सर, पेशेंस। ठीक है बिल्कुल। यार, ये 12 बजे से आके वेट करके बैठा था, हाँ पता है, मैंने भी उसको देखा था लाइक जब मैं आया था। हाँ ठीक है चलो कोई। आपका नाम सर? सर फतेह संधू सर। वैसे I'll just फतेह say संधू। we apologize for जो भी इनकन्वीनियंस था। ओके सर, कोई सीन नहीं सर। खाना पानी कुछ? नहीं सर, सब पे सर। My name is Jake Williams. Okay, I am sir. the trooper in the SASP department. Nice To to my meet you. right is Kevin Butler. He is the Nice to chief of meet the you. SASP department. To my left is Jordan Sendit, who is the sheriff of the BCSO department. And to his left is Ron Evans, who is a senior officer in the LSPD department. Nice to meet you both of you. Yeah, nice to meet you too. मतलब क्या Nice to इससे meet मिलके you, अच्छा नहीं दो ही लगता। लोगों से मिलकर और सर आप बता कोई- सकते हो कौन से दो लोग? निकल जाते थे। हाँ, कौन से दो लोग से मिलकर आपको अच्छा लगा? हाँ फिर बाकी सर दो सभी से सर मिलके अच्छा लगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छी से ठीक है। ओके, आप क्या आप हम में से किसी को भी आपका रेज्यूमे एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन भेज सकते हो बिफोर वी स्टार्ट दिस Okay. इंटरव्यू? ओके सर। सर इजी भेजने बोला था यार। you are definitely not one of the 2 out of the 4. हाँ मेरे को भी लग रहा है। वही वही। सॉरी माय बैड सर। कोई ना कोई। यू आर फायर्ड। मुंह से बता देते कोई बात, मार कोई नहीं, अभी हम तीनों बचे, कोई भी खा सकता है नेक्स्ट बार। मैं पहले टारगेट होऊंगा, मेरे को ही नाम ले रहा था ना। देखिए सर दीजिए। हाँ 1 सेकंड। ऑलराइट, जब तक मैं इन लोगों को आपका सीवी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ओके क्या आप आपके बारे में कुछ बता सकते हो जो हमें नहीं पता? सर लाइक वैसे तो सभी कुछ वहाँ पे मेंशन है, ठीक है सर, बट मेरी एक वीकनेस है जो आई थिंक अभी कोई भी ज़्यादातर नहीं बताता कि क्या वीकनेस है, बट मेरी एक वीकनेस ये है कि लाइक जैसे भी मुझे थोड़ी ना गाड़ियों में जैसे पहचानने में मोरल, तो उसमें सर आती है दिक्कत। गाड़ियाँ पहचानने में दिक्कत आती है ना? हाँ जी, जैसे ट्रैफिक स्टॉप पे लाइक
तो उसका मेरे फादर साहब मैंने वहाँ पे रिज्यूम में भी मेंशन किया कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे। तो उन्होंने मुझे एक बताया कि लाइक तुम उसका लाइक सीट बोल सकते हो, 2 सीटर कार है, 3 सीटर कार है, 4 सीटर कार है। बस यही मेरी सर थोड़ी सी दिक्कत है। ऑलराइट, ठीक है। वो दिक्कत ओवर टाइम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है, मैं अपनी। ओके आपके पास पास एक्सपीरियंस है? नहीं सर, नहीं। अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं सर। नहीं है? तो ओके। क्या आप बोल रहे हो कि आपका रेज्यूमे में आपने झूठ बोला हमसे? क्यों सर? क्योंकि आपके रेज्यूमे में लिखा है कि यू हैव सर्व्ड एट द NYPD एज एन ऑफिसर फ्रॉम 2018 टू 2021। सर मैंने मतलब वैसे तो रिज्यूम चेक किया था, बट आई थिंक सो जिससे मैंने रिज्यूम बनवाया था लाइक वो आई थिंक उसने मिसप्लेस कर, मतलब गलती से उसका हो गया था। सर क्या आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने से पहले डबल चेक नहीं करते हो सर? सर किया था बट ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई विल कंसिडर दैट मैं आपका रेज्यूमे अभी के लिए चेक नहीं करूँगा। ओके सर। बिकॉज मुझे पता नहीं आपके रेज्यूमे में क्या सच है क्या सच नहीं है। जस्ट बिकॉज सम लाइक आपने ही बोला कि इट्स इनकरेक्ट फाइल, राइट? यस सर। तो आप बोल रहे हो आप एक फ्रेशर हो, राइट? यस सर। ओके, तो आपके हिसाब से एक PD का जॉब क्या होता है? सर मेरे हिसाब से पीडी का जॉब लाइक अपनी सुरक्षा करना है एंड जो भी यहाँ के सिटीजन हैं लॉस एंजल्स के, उनकी सुरक्षा करना सर। ओके, क्या आपको पता है आपने कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है? नो सर। आपको सर क्या कुछ भी लाइक कोई भी जगह पे कुछ भी एम्प्लॉयमेंट खुल जाता है, हर जगह अप्लाई करते हो सर? नहीं सर, वैसे तो मैंने SASP डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है एंड में भी जो डिपार्टमेंट है लाइक LSPD, BCSO एंड पार्क रेंजर आई थिंक। ओके, तो मुझे पहले बताया SASP का फुल फॉर्म क्या है? सैन एंड्रियास स्टेट पेट्रोल। सैन एंड्रियास स्टेट पेट्रोल। यस। ओके, LSPD का फुल फॉर्म? लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट। BCSO? BCSO को सर मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है। लाइक मुझे ना बोलो जो आता है बोलो, बहुत ओके। सुन लिया हम। हाँ, ब्लाइंड ब्लाइंड काउंटर शेरिफ ऑफिस। ठीक है। ओके, एंड SASPR का फुल फॉर्म? नहीं सर वो नहीं पता। I'll आई just- थिंक बोलो। SASP R. yes sir. Okay, I'll just clear a few things out here. Okay sir. SASP is San Andreas State Police. Yes sir. LSPD is Los Santos Police Department. Okay sir. BCSO is Blaines County Sheriff Office. Okay. And SASPR is San Andreas State Park Rangers. Okay sir. एक्सक्लूडिंग दी SASP जो बाकी 3 सब डिपार्टमेंट है, अगर Okay. आपका इंटरव्यू अच्छा गया और आप सिलेक्ट हो गए एंड आपको एक मौका मिला टू चूज वन ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, आप Okay. कौन से डिपार्टमेंट में लाइक काम करना चाहते हो? सर मैंने इसके बारे में आपने जो फॉर्म में भी पूछा था, देन मैंने वहाँ पे भी यही जवाब दिया था एंड यहाँ पे भी कि लाइक मैं जो जहाँ पे भी मुझे मिलेगा पीपल को मतलब सर्व करने के लिए, तो मैं उसी में मतलब जो भी आप दोगे उसमें सेटिस्फाई हूँ। लोगों को सर्व करने के लिए तीनों में मिलेगा, इसलिए आपका प्रेफरेंस जानना चाह रहा हूँ। सर मेरे लिए सभी इक्वल है सर डिपार्टमेंट। लाइक कोई भी मैं वो एम नहीं सोच के आया। ओके, आप किधर से हो? मैं सर न्यूयॉर्क से हूँ। न्यूयॉर्क से हो, तो न्यूयॉर्क से लॉस सैंटोस कैसे आना हुआ? सर न्यूयॉर्क से लॉस सैंटोस लाइक मेरे फादर थे, वो भी LS उसमें न्यूयॉर्क उसमें से ऑफिसर। ओके। एंड उनका जैसे वो एक ऑपरेशन पे गए थे, देन वहाँ पे उनकी मतलब डेथ हो गई थी एंड फॉर सम रीजंस मुझे मतलब मनी इशू हुआ एंड
बहुत सारी एक दिक्कतें हैं, मिनट, तो वो मुझे यहाँ हैरी पे स्टफ को निपटा के। मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। लाइक मेरे दोस्त ने सुजेस्ट किया था ओके, या लॉस एंटोस बट लॉस एंटोस क्यों, लाइक इतने अच्छे अच्छे जगह है जहाँ पे यू कैन डू द सेम थिंग दैट यू वांट टू डू आउट हियर। बिकॉज सर जिसने मुझे सुजेस्ट किया था तो उनका जो ब्रदर था वो भी यहाँ पे सर आ चुका था, देन उन्होंने यही प्रेफर मुझे किया एंड मुझे भी अच्छा लगा सर। ठीक है, ऑलराइट। क्या आपको, लाइक आपने ऑलरेडी आपका वीकनेस तो बता दिया था। यस सर। बट आई वांट टू नो वन थिंग, हमारे पास अराउंड 250 एप्लीकेशंस आए। यस सर। उसके बाद सर्टेन पीपल गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड बिंग द इंटरव्यू, जैसे आप सिलेक्ट हो गए हो। यस सर। आप में ऐसे क्या खासियत है जो बाकियों में नहीं है कि वी शुड पिक यू ओवर द अदर्स, ऐसा क्यों? सर जैसे कि मैंने बताया कि लाइक मेरे फादर साहब लाइक पहले ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दिया, लाइक मतलब ऑन फील्ड नहीं थे बट जो भी जितनी भी ट्रेनिंग दिया, लाइक मैं उस हिसाब से अपना सभी मतलब डिसीजन ले सकता हूँ लाइक कोई भी सिचुएशन में। एंड उन्होंने लाइक फ्रॉम फ्रेशर लाइक जैसे आते हैं तो उनको इतना आई थिंक नॉलेज नहीं होता, जैसे उन्होंने मुझे एम का भी एंड सब थिंग सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दिया, तो दैट्स एम का ट्रेनिंग लाइक गन चलाने का एंड ऑल। ओके ओके, मैं आपको एक छोटा सा सिचुएशन दे रहा हूँ। ओके ओके सर। समझ लो हम एक बैंक रॉबरी में हैं। ओके सर। मैं वो सिचुएशन का कमांडो। ओके। सामने 3 सस्पेक्ट है, वो एक BMW में है। पूरा सिचुएशन ख़त्म हो गया, चेस चालू हो गया, मतलब नेगोशिएशन ख़त्म हो गया, चेस चालू हो गया है। ओके सर। इवेंचुअली वो एक उनकी गाड़ी कोई दूसरी गाड़ी से टकराते हैं, दैट्स अ स्मॉल एक्सीडेंट, और एक्चुअली नॉट अ स्मॉल एक्सीडेंट, क्वाइट अ बिग एक्सीडेंट, जिससे उनकी गाड़ी स्मोक करने लगती है। ओके। अभी बिकॉज ऑफ दैट वो दे कांट रियली ड्राइव द कार फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि वो थोड़ा इट्स रिस्की फॉर देम। ओके। तो वो लोग ने एक जगह पे गाड़ी रोका, दे गॉट ऑफ द व्हीकल एंड स्विच्ड टू अ मित्सुबिशी। ओके। मैंने रेडियो पे कमांड दिया वो टाइम पे कि पॉप द टायर्स। ओके। आप क्या करोगे? सर फॉर नाउ अगर मैं लाइक वहाँ का ड्राइवर हूँ, ठीक है सर, आप देन ड्राइवर नहीं हो, ठीक है, मैं you're the +1 of the primary unit. ओके सर। तो सर फॉर दैट टाइम मैं वहाँ पे पहले उनको वार्निंग दूंगा, डोंट स्विच द व्हीकल, एंड अगर वो नहीं मानते एंड जो मिस आई है उनको मैं वार्निंग दूंगा कि लीव द एरिया। इफ वो अगर लीव नहीं करते, मैं दोबारा एक बार वार्निंग दूंगा, देन वो मैं उनके टायर पॉप कर दूंगा। कैसे पॉप करोगे? लाइक सर गन से ही करूँगा सर। देखो, द गवर्नमेंट हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं। यस सर। वो हमें यूनिट्स देता है दैट कैन हेल्प अस इन द एयर, यूनिट्स देता है दैट कैन हेल्प अस इन द वाटर, वो Yes, हमें sir. एक आर्मरी देता है। बट दैट्स ऑलवेज वन थिंग कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं देता है सो दैट वी कैन ओवर यूज इट या गलत यूज़ करें। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि पीडी के पास ऐसा और कुछ चीज़ है जिससे दे कैन डू द सेम थिंग बट विदाउट एक्चुअली यूजिंग अ गन? सर फ्रॉम माय ओपिनियन स्पाइक्स हैं, बट ऑन दैट सिचुएशन लाइक हमें ये नहीं पता कि जो मित्सुबिशी वाले हैं लाइक उनके पास कोई भी लीथल हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है, बिकॉज लाइक अगर हम वो कहीं पे रिपेयर करवाने जाते हैं, देन रिपेयर वाले में भी टाइम लगता है, देन हम स्पाइक्स लगा सकते हैं वहाँ पे, बट फॉर दैट सिचुएशन वो स्विच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सर स्पाइक्स मतलब टाइम लग जाता है स्पाइक्स को भी लगाने में। एंड अगर आपका गन मिस फायर होके सस्पेक्ट को लग जाता है एंड ही लूजेस हिज लाइफ, देन व्हाट विल हैपन? फॉर दैट टाइम सर
तो सर उसको लाइक सर इसका आंसर नहीं पता सर, ऐसे मैं टाइम वेस्ट करूँगा। ठीक है, ऑलराइट। Kevin, Ron, send it. I have no more questions on my end. You all have questions? I can go for it. तो या पूछ या लो पहले। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ अपने, आपका डिग्री कौन सा, लॉ एनफोर्समेंट डिग्री है ना मास्टर्स का? यस सर। यस, सो डू यू नो व्हाट मिरांडा राइट्स आर? नहीं सर। ठीक है, ठीक है केविन सर, पूछ लो आप। चेन ऑफ कमांड पता है ना आपको? यस सर। या सोच लो, ये 4 लोग देख रहे हो अभी राइट नाउ आपके सामने जो खड़े हो। यस सर। मैं एसएसपी चीफ, यस सर। एसएसपी ट्रूपर, ओके। एलएसपीडी सीनियर ऑफिसर एंड बीसीएसओ शेरिफ। ओके। आपको कुछ इशू हुआ है कुछ भी रिलेटेड, ओके। आप किसको अप्रोच करोगे? सर सीनियर ऑफिसर को, लाइक अगर वो भी लाइक मेरी Ron बात is senior सुनते हैं officer तो मैं FTO है। अपने लाइक उनके जो साथ कुलीग होंगे उनके साथ मैं करूँगा, एंड देन जॉर्डन सर को, एंड देन ट्रूपर, एंड देन अगर सोच लो कि आपका जो एफटीओ है यस सर। उसने आपसे बदतमीजी से बात किया है, यस सर। कुछ भी रीजन की वजह से, ओके। उसको रिलेटेड आपको किसी से बात करना है, रिपोर्ट करना है ना, इसको करोगे? सर एफटीओ ने किया तो लाइक उनके जो कुलीग एफटीओ होंगे जो लाइक आपसे मैं सीधा बात नहीं कर सकता बिकॉज उसमें चेन ऑफ कमांड सीधा ब्रेक होती है, एंड वो मैं अपने जो सीनियर जैसे लाइक मैं ऑफिसर हूँ तो देन मैं अपने सीनियर ऑफिसर को ही बोलूँगा एंड एफटीओ को। Alright, that's it. Jordan, do you have anything to ask? No. Alright, man. Okay, sir. You can leave. आपको आपका रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ना, थैंक यू सो मच। मैं जा सकता हूँ सर? Yes, you can, man. थैंक यू सर। ये ऑफिसर क्या सीन हुआ था? मेरे को उस टाइम इतना कुछ समझ में नहीं आया था, मैं थोड़ा एक कुछ से सोच रहा जेक में ऑफिसर से क्या हुआ मतलब? अरे उसका सीवी में मेंशन है he is an officer but he is saying that he is a fresher. He said he attached the incorrect file and he doesn't have the file right now, so I Jake, I am sending you one thing, check that. ठीक है? and send it, and Kevin have sent us something. अरे उसका टेंशन मत लेगा रॉन, I'll tell you one thing. देखा? क्या? हाँ ठीक, कर दे अभी कर दे, कोई करने से पहले। क्या? चुपके से डाल दो भाई, बोल दिया करो जेक, और कर रहा हूँ। कम टू माय ऑफिस, लाइक ऊपर चलो, आ जाओ, आई विल गिव यू गाइस द आईडी कार्ड्स, लाइक मतलब
आ जाओ, और कोई नहीं है। हाँ एक सेकंड आया डिस्पैच एवरी ऑफिसर किधर हो? चीफ ऑफिस। कम टू माय ऑफिस। चैन फॉर कमिंग। द टाइमिंग क्या कर, एक रिस्पांस डाल रहा हूँ। तुम्हारे काम का चीज़ मेरे है। को भी एक ने दिया था, स्नाइपर है वो, मैंने दे दिया। रेक्स को धरा दो, वो तो तुम्हारे काम का चीज़ होता है। इधर आओ रॉन। हाँ दिस इज योर्स। थैंक यू। आईडी कार्ड एक बार चेक कर लो, सब डिटेल सही है कि नहीं। ये आधार कार्ड वाला फोटो क्यों आया है कोई? आईडी कार्ड में वैसे ही आता है। इधर आओ जॉर्डन। डन, चेक कर लो। ओके बढ़िया है, थैंक यू सर। यप जी का जो इसको पानी वानी चाहिए क्या? खराब हो गया, दे दिया, तो हो दे। जाएगा। चेक कर लो। हाँ दे सकते पी हैं। लेता हूँ, एक एक दे दो मुझे। एक एक आप भी आ जाइए राज बाबू। हाँ आ रहा हूँ। मैं बोला केविन सर। हाँ अब अरे अबे अरे गलती गलती। आर यू दी ओनली वन हु कैन गिव बैजेस? यस, तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। ट्राई टू गेट मी एक्सेस टू जस्ट दिस इफ पॉसिबल। अरे ये सिग्नेचर बहुत बढ़िया है। रुक जा ठीक है। नो मतलब लाइक ठीक है। अभी के लिए ठीक है, बट व्हेन देयर आर लॉट इज हैपनिंग ना, तुम्हारा There will be बाकी there. सब काम के साथ माइंडफक हो जाएगा। I will assign. Don't worry, I will assign. For that day I will assign. मैं एक पर्टिकुलर डे में ही दूंगा। हाँ अभी के ठीक लिए है, हाँ यार जिनको मैंने समझ recruit गया हुआ, That day I will assign all the commands. डन सीन ठीक High है। commands, like sorry, not commands, high commands. Not only this, but also sure, maybe in a day or two we'll be having a meeting with the uh, departmental the judge and also government related to our, let's say, this thing, weapon license and stuff. जज से मैंने ऑलरेडी अपील कर चुका हूँ। अब मेरे को अभी 3-4 नाम से 5 to 6 नेम्स और ऐड करना होगा उसमें, तो वो मीटिंग में डिस्कस करके उधर से अप्रूव करवा लूँगा। So we'll be having like the users of class 1 and class 2 firearm for the time being. ठीक है? Got it, okay. Yes. ठीक है, that's it. मैं तो अभी थोड़ा देखता हूँ, पेट्रोलिंग करते इधर उधर, फिर आता हूँ शाम में फिर से इंटरव्यू। कितना बजे है? 7 या 9? मैं शाम को नहीं आने वाला हूँ। ना शाम में मैं हूँ आज मैं हूँ, डोंट वरी। आज जिसको जिधर करना है करो, आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा। आज शाम को जिधर करना है करो, मतलब जितने लोगों को आना है आने दो। मैं अच्छा मैं तो आज बाहर जा रहा हूँ। हाँ कोई इशू मैं नहीं। किताब खोल के बैठूंगा आज पूरा। हाँ कोई बात नहीं। पाब्लो आ रहे हैं ना अभी? एक और रिस्पांस डाल दिया। सही है। हाँ अब रॉन यू हैव अ न्यू सीनियर, ओके? तुम लोग सुनो, लिसन, अब तुम लोगों का रिस्पांसिबिलिटी है। आई विल गिव यू अ सेट ऑफ नेम्स। जेक, दैट वुड बी लाइक 40 हो ही जाएगा ना? 40 नेम्स तो हम दे ही सकते हैं ना इन लोगों को, अगर 6 होता है, राइट? मतलब अंडर देम 6 इन। हाँ अगर एक्चुअली रॉन ने ऑलरेडी कर दिया, हो गया सेग्रीगेटिंग। या वो कर दिया उसने।
नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से, मतलब नेम के हिसाब से कर दिया, नंबर ऑफ नहीं बोल रहा हूँ। किसके अंडर कौन आ रहा है? Ron, just send Kevin sir the list. Like you send me. Send him that. भेजता ठीक है, मतलब मेरे हाँ को नहीं कर पता दिया था कर विजिट है दिया या एक ही बात है। कर दिया ना? तो कर उसमें दिया। तुमको और एक FTO ऐड करना पड़ेगा। कौन है वो? देख लो रिस्पॉन्स। देखा मैंने। अच्छा उसको ही ऐड करना पड़ेगा। माइकल या तो अभी वैसे भी नए रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं फॉर ऑफ कैडेट्स एज वेल, तो यू डोंट नीड टू लाइक फिडल अराउंड विद द लिस्ट, जस्ट ऐड दीस पीपल लाइक हूएवर जिसका भी हो रहा है। वो तो नेक्स्ट बैचेस में ऐड करता रहूंगा मैं। हंस का रिस्पॉन्स आ गया, हंस का। और मेरा वाला मैं जल्दी खत्म कर दूंगा बिफोर 2 दिसंबर, लाइक सैटरडे। सो यप और यूआई ट्रेनिंग एक दिन फिक्स रखो, उस दिन सबको एक साथ यूआई ट्रेनिंग दे देना। अगर कोई यूआई ट्रेनिंग नहीं दे, मतलब लेने नहीं आ पाए, तो व्हाट वी गोना डू इज लाइक आई हैव अ प्लान, आई एम गोना रिकॉर्ड द एंटायर थिंग ऑन अ वर्चुअल मॉनिटर और समथिंग एंड वी गोना कीप दैट फॉर देयर फ्यूचर यूजेस। और उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, आफ्टर अ डे और 2 और 3 व्हाटसोएवर, हम लोग फिर से और एक ट्रेनिंग दे देंगे यूआई का खुद से। ठीक है। सीनियर ऑफिसर करना लोगों को तुम्हें लगता है मैं हंस को सीनियर ऑफिसर दे सकता हूँ? तुम्हें लगता है? एमडी का तो नहीं दे दूंगा पूरा। Can for come to chief office. Yeah, 476. एक बार on just show me your badge. रुको। 44441. Can for come to chief's office. Okay, so everyone has the SASP badge only, right? Yeah, SASP badge. बढ़िया हाइट है मेरा तो। सबका 100 ही है भाई। तो पहले इंटरव्यू में जब ये आया ना, मैं वो टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया एज रॉन, मैं भूल गया, मैं कहा सरनेम है वांसी है कि नहीं है, चलो यार नहीं रॉन ही बोल देता हूँ। तो वैसे मैंने खुद को जेक विलियम्स नहीं बोला, खुद को जेक बोला, इसको केविन बोला, इसको रॉन बोला कि लास्ट टाइम आएगा ही नहीं। नहीं कांस्टेंट। Congratulations, Hans Gaming. Based on your interview and previous experience, you have been selected as a sergeant under an SPD. We hope that your experience will help us. Will help. क्या practice? बोल रहे थे ना बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैं। अरे लोगों को सुनने को मिल रहा है आजकल। Will help the department progress further and achieve heights. Air 1 चला रहा है। सर एयर 1 से रिस्पॉन्ड किया था पहले भी। केविन सर रेक्स को भी दे दो और पाब्लो भी आ रहा है उसको भी दे दो। इमरजेंसी थी ना रेक्स इसलिए ना वही यार। आज रेक्स और पाब्लो आप दोनों तो आने भी नहीं आती। हाँ मेरे को भी नहीं आती। दे दिया रेक्स, तुमको दे दिया, पाब्लो आ जाओ। दे दिया। चेक योर आईडी कार्ड्स। ओ से ये तो बढ़िया। ये क्या कलवा है बे रेक्स, बता अरे मैंने भेज दिया वो रेसिज्म कर रहा है। और ये रेक्स इस एक्सेस दियो इनको। दे रहा हूँ। हाँ क्या करे लोग, टैग के बाद ईमेल ही नहीं देते, क्या करूँ? अरे मैंने तो सीधा रिक्वेस्ट कर दिया था। इजी भेजा, अभी रिक्वेस्ट भेजा, देखो भाई। पाब्लो, आई वांटेड यू इन वन इंटरव्यू टुडे। कौन से? एक बंदे ने 4 साल पे अवार्ड अचीव किया, कुछ तो 7 साल पे एक और अवार्ड अचीव किया व्हाइल सर्विंग ड्यूटी। क्या बात करो, क्या नाम था? क्या नाम था मैं भूल गया। बबलू गाइड होंगे। वैसे एक चीज रेक्स तुम्हारे बारे में कुछ सुना आज? क्या यार तुम एक इंटरव्यू में चुप हो गए थे यार, ये क्या बात हुई? मैं एक पूरे इंटरव्यू में बोला ही नहीं ना। हाँ बताऊंगा, वो अलग मसाला तुमको दूंगा बाद में। तुम्हारे जूनियर ऐसे बोल रहे तुम्हारे बारे में यार कि इन इंटरव्यूज डोंट टॉक। जूनियर हाँ, तुम जरा एक बार प्रेफर्ड डिपार्टमेंट चॉइस देखो जरा। किसका? SVR किसका? अरे जिनका ले रहे थे 32 इंटरव्यू ले रहे थे ना ये और माइकी मिलके। अच्छा ओके। हाँ 32 देखो। हाँ देखा। हाँ और मैं डूब गया रे। बताऊंगा बाकी चीजें बाद में, अभी नहीं बताऊंगा। क्या बोल रहा है? सर डू यू माइंड इफ आई टेज हिम इन योर चेंबर?
No, 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 no. You don't mind or you mind? No जो no बोल tasing. रहे हो? अच्छा no tasing, no I tasing do बोला, mind. no Don't tasing. taste बोला. अच्छा मेरे को लगा आई डोंट माइंड। No violence, yes. मेरा क्या कितना फोटो है गंदा यार। दिख रहा है। फ्लेक्स करता हुआ घूमूंगा। ये Yes. क्या है अरे ये? इसके बाद तो रुक जाओ, ये तो कुछ भी नहीं, इसके बाद तो प्रॉपर बैच आएंगे। ये तो तुम्हारा जस्ट आईडी कार्ड है, गवर्नमेंट आईडी ये कार्ड। QR कोड को फोन जस्ट से सेइंग स्कैन फोटो करके देखूं अच्छी क्या? रही है। हाँ वो आधार कार्ड वो वाली, मेरी आधार आधार कार्ड कार्ड की वाला फोटो अच्छी हो गई है। माँ नहीं कसम मेरी मेरा आधार आधार कार्ड की कार्ड पे फोटो इससे अच्छी हो अच्छा गई फोटो है। आया था। जेक का फोटो देख, लग रहा है खाना नहीं खाया। अरे मेरा देखो आजकल ना नहीं खा देखो। रहा हूँ। हाँ कीटो डाइट। कीटो नहीं। ठीक है। चलो कोई ना, वो तो अलग बात है। एनीवेज सुबह हो गया? तेरे को जो बोला वो किया ना तू? राइट अप रेडी किया ना? आधा लिखा हूँ, आधा लिखा हूँ, यस, आधा वो बस राइट लिख अप दूंगा चाहिए अभी। क्योंकि आज सुबह पता है क्या इंसिडेंट में तुम लोगों को बताता हूँ। आज सुबह मैं कोड वन करते करते ऐसे ही मेरे को वो कॉल्स आया, 13 कॉल्स आया, मैं रिस्पॉन्ड किया। उधर हंटिंग वंटिंग होता रहता है, 4 5 बंदे पीठ में एकदम लंबा लंबा स्नाइपर लगा के और अरे बाप रे। बोल रहे कि हम उनको ही मारते हैं जो लोग हमको हार्म करने आते हैं ना। अच्छा तो ये डीएस कैसे हार्म करने आ गया आपको? बोले ये तो हमारा नहीं है। अच्छा मैं बोला फिर तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या लिख रहा है? सो बेसिकली we'll see कि हम कैसे इसको इनिशिएट कर पाए। कि अगर अगर ऐसा देखा जाए स्टेट की तरफ से अगर हंटिंग इलीगल ना हो बट अ सर्टेन रेंज तक उसको लीगलाइज किया जाए। रेंज इन द सेंस, रेंज मतलब यू शुड गो थ्रू अ ट्रेनिंग फेज। क्योंकि ऐसे ही कोई भी हंटिंग करता रहेगा, कोई अपने आप को सोच लो हंटिंग की जगह मैं इंसान को मार दिया, बराबर क्राइम है। For hunting, even you need a proper weapon, that is the hunting rifle of that particular caliber. Because अगर आप पिस्टल से किसी को तो ये डॉक्यूमेंट किसको देने वाले हो? I was thinking सर फिर से एक बार तेज करना चाहूंगा मैं, देखो कह रहा है अप्रूव कर देता हूँ मैं। नहीं ये डॉक्यूमेंट किसको देने वाले हो? जज को। हाँ तो अप्रूव्ड लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ कंटिन्यू क्या नाम क्या है जज का? सर अब तो टेजर बनता है ना, नहीं ना सीन सुनो बैक टू बेसिक, बैक टू सीरियस। सीन ऐसा है सेम चीज हमें अनलाइसेंस मिली वेपन्स के लिए भी करनी चाहिए, सेम चीज। या ट्रू फॉर we'll have a meeting, सुनो we'll have a meeting very soon। आज होगा या कल होगा वो तो मैं बता दूंगा प्रायर नोटिस पे। ऑब्वियसली एक प्रॉपर मीटिंग होगा विद पूरा बोर्ड कमेटी के साथ। उधर जिसको जो भी पॉइंट एक एक करके रेज करके रखना, या फिर we'll discuss, we will write it down, या फिर हम में से कोई एक बता देगा। बिल्कुल मैं बता दूंगा ऐसा सीन है। ठीक है, so that we can proceed with will I be representing the PD there? अरे यार ये बंदा 170। देखो यार 10 मिनट बचा यार, 10 मिनट बचा, थक गया इंटरव्यूज के बाद यार। लेजेंड थक गया। श्रीवास्तव लेगा तो नहीं, लिटिल फन इज गुड, लिटिल फन इज गुड। हां क्यों तुमको स्क्वाड गर्ल्स चाहिए? आदि श्रीवास्तव से मैं अगर बात करूंगा। क्या बोल रहे हो रेक्स भाई? क्या कुछ बट एक चीज तो मैंने देखा, पता है क्या हुआ रेक्स? क्या हुआ पता है? हाँ तुम्हारे जगह पर मैं गया आज चेक करने, बराबर? मैं देख रहा हूँ एक सुअर को लेके जा रहे हैं कोई। क्या विराज भाई को कौन लेके गया? अबे चल सुअर को मैं विराज बुलाता हूँ प्यार से। तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? ठीक है, और वो बैठ ही नहीं पा रहा है, इतना मोटा सुअर है। स्टैंडर्ड भाई क्या सुन रहा हूँ मैं? आईने में देख के बात कर मैं बोल रहा हूँ भाई रख दे, हो गया आज का हो गया। उसने फिर सरेंडर कर दिया, उसका कुछ इशू चला, मैं बोला छोड़ कोई इशू नहीं, भागने का कोशिश कर रहा था। है अभी से? मतलब वही है, अभी से भागना। लोगों को डर तो है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये चार्जर है। एक सेकंड अभी से मत बोलो यार। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ दास जी के साथ ना, मैं चुपचाप पीडी के अंदर आया। अभी बताओ एक बंदा आया, एक बंदा है सर्किट नाम का, वो पीडीए में आया था। पैसे मांग रहा था? नहीं यार, तुमसे तो मिला हुआ हमें। वो पीडीए में आया था, ठीक है। वो कुछ बातें कर रहा था पीडी के अंदर। एक बंदा भाग के अंदर आया, कफ करके चला गया। कफ करके चला गया। ओह ऐसे रुको ऐसे आ गया। टेस्ट करना था, टेस्ट किया? हां टेस्ट किया। हां फिर वो गाड़ी में बैठ के भाग गया। उसके बाद
देखो टेस्ट करो गोइंग फॉर कप सीधा उठे नहीं मत सीन ये है ना कि उसके और पहले आना ना पीसीएस मैन को देखो। सीन ये है कि उसके पहले ना कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से हाँ। मुझे ईएमएस को बोलना था कि ये लो मेरा कफ, मुझे कफ और अनकफ कर लो, ऐसा कुछ इशू हुआ था। तो मेरे पास जेब में हाँ। कफ नहीं था बिकॉज़ आई हैड टू पुट आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द आर्मरी यू नो। तो कोई बात नहीं। देखो ऐसे लोगों के लिए मुझे छोड़ दो उनके पीछे, फिर मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट टाइम से वो करेंगे नहीं है। सिंपल है भाई, पीडी के अंदर आके कफ ऑफ कर रहा है। जो जितना बसूड़ी कर रहा है उस पर उतना हट जाओ। वही भाई 500 का कफ एसओपी के दायरे में रह के, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उतना हट जाओ। ऑफ कोर्स एसओपी। वैसे हाँ आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट ये अदर कोई स्मगलिंग हो रहा है कि नहीं। तुमको तो इसका आइडिया है रेक्स, बट बाकी चीज़ों का जैसे सोच लो सी एनिमल्स का कोई या फिर सी फिशेस का कोई स्मगलिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं, वो भी चेक कर लेना एक बार कभी पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि वो भी तुमको आई गेस तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए वो चीज़ें। मतलब ही क्या जब 2 घंटे में सड़ जाए। बात तो वो भी सही है, बात तो ये भी सही है। Does anyone is anyone hungry or thirsty? जानवर मार रहे हैं। ना आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं दे दिया सबको। यार 16 सैंडविच पड़े, सारे के सारे सड़ गए। मेरा भी सब खाना पीना सड़ने वाला है इसलिए। इसके बाद किस किस का है इंटरव्यू? एक सेकंड पता जस्ट नहीं, आई विल बी राइट बैक। एक बार वो रिएक्शन चेक कर लो। कितने लोग होगा? 10 होगा क्या? नहीं ज्यादा होगा। आज और कल में सबका लास्ट मौका है। केविन सर, हेलो केविन सर, हेलो केविन सर, वो राइट अप में मैं लिख रहा हूँ व्हाई ऑल द चार्जेस, जितने चार्जेस मैंने सजेस्ट किए हैं, ठीक है? अच्छा, जो भी हमारा चार्जशीट है ना, वो हमें एक बार कोई जज के साथ बैठकर बात करना पड़ेगा इसके बारे में। हेलो केविन सर। अबे दिमाग में है वो बोला मुझे काहे मार रहा है, मैं थोड़ी केविन हूँ। हाँ तो गाइस जब हमारा चार्जशीट अरे वो कंफर्म, एसएसपी चीफ है ना, तुम बराबर के हो, तुमको मारा। हाँ, चार्जशीट कंफर्म हो जाएगा, इवन व्हेन वी हैव द चार्जेस फॉर योर थिंग, द हंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट एंड ऑल लाइक वो सब, तो वो बैठ के एक बार लाइक जो भी जजेस हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, देख लेना मिरर के सामने, एक्सक्लूडिंग मी। अच्छा तुम भी तो होगे नहीं, बट डिस्कस करने यार, क्या बोल रहे हो? आज रात को करेंगे विद जेक भाई। आज रात को बिल्कुल भी नहीं, आज रात को एक भाई रिप्रेजेंट करेंगे। आज रात को तुम लोग मुझे कुछ भी बोलोगे, बोलूंगा 10-4 गो फॉर इट। आज रात को कुछ भी बोलोगे, बोलूंगा 10-4 गो फॉर इट। कोई बात नहीं, सुनो मिरर के सामने बैठ जाना। जेक भाई को सारे पॉइंट दे देना, वो हमें रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वैसे जज का नाम क्या है? वो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, सच में बताओ। बनाया नहीं अभी से। क्या? बनना कब बंद होगा रे? जेक भाई बम साला गिवन समझे, इधर गायब था मैं। अच्छा, sometimes you should sort out things. बाकी चीजें अभी बोल नहीं सकता तुमको, नहीं तो बोलता मैं। पता है, वो तो पता चल सी ना। बताऊंगा हाँ रात को। यस यस। एक चीज और बताता हूँ। वैसे गाइस जस्ट सेइंग संडे आफ्टरनून सबको आना है विदाउट फेल। संडे आफ्टरनून? हां वो तो आ ही जाएगा। It's the triple threat interview. The most fun interview। हाँ जब संडे को है ना। तब से मैं बोल रहा था, वो सुन नहीं रहता। मैं कह रहा ना राइट अप में मैं लिख रहा हूँ वाई सब सारे चार्जेस, वाई दो चार्जेस, ठीक है वही लिख रहा हूँ। ठीक है। हाँ तो ये क्यों बता रहा, मैं नहीं समझा। अरे इस रिलेटेड बहुत कुछ फिर बात होते क्या लाइक वी गो समझ हैं। अच्छा ओ क्यूट। अरे जैसे इसने बोला ना, फिर इसके बाद वही मसाला है जो तुमने हमें दिया था। हाँ वही ओह माय गॉड। हमें मसाला के नाम पे फ्री नाइट्रो वाले आते हैं यार। फैक्ट है बेचारा।
कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं संडेट, मैं मसाला दे दूंगा तुम्हें। तुमको जब बोलना होता है तुम तो बंद करके बैठ जाते हो, हमारी गलती। तो मैं बैटरी पे नहीं चलता ना, खाना पीना सोने पे चलता हूँ। हैं? दिन रात बैठे रहो वही एक जगह पे, मुट्ठ मारा उधर। है क्या? अबे ये मेरे को किसने दिया? बट ठीक है। क्या क्या दे दिया? अबे ओ हो ओ आप कर दिया। किसी ने मेरे को ये दिया है केविन सर, बाय द वे। क्या दिया है? ये क्या है? स्नाइपर में लगने के लिए इतनी बड़ी एमो, मतलब मैंने ही दिया रे, मैंने ही दिया। हाँ ये देखो, इन्होंने दिया ये है। दास बाबू अपने से बड़ी बुलेट लेके घूम रहे हो? नहीं, कोई गार्बेज में मिला था मेरे को, देखे क्या? अच्छा 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 अच्छा, ओके फिर ठीक है। ओए कैमरा देखने दो थोड़ा, कैमरा है। ओके। और पाब्लो ब्रो आईटी व्लॉग बना रहे हो? नहीं ब्रदर, नहीं नहीं। अच्छा ओके ऐसा, ओके बैक टू बेसिक्स, ठीक है। खाना ही खाना पड़ा है नीचे। और ये चीफ का ऑफिस है। मेरा ही ऑफिस से बाद में करा लेंगे। SASP चीफ। तुम लोग वहाँ जा रहे हो, डेविस मूव आउट हो रहे हो। हम लोग डेविस जा रहे हैं भाई। ओ बाय द वे डेविस दिखाना है एक दिन तुमको। हाँ डेविस देख लिया कल ही देख लिया। है हमने नहीं देखा। जिसको देखना है नहीं वो तो दिखा, देखा तुम नहीं। पहले देखिए गाइस हाँ। चेक द ग्रुप, कुछ भेज रहा हूँ। अबे एक काम करो जल्दी से खड़े हो जाओ, मुझे 5 लोगों की शक्ल चाहिए थे, एक बंदे ने मांगा था शक्ल। हाँ रेक्स प्लीज हेल्प। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेजा, देखो गाइस। ऐसा माय गॉड, इधर देखो गाइस, इधर देखो, इधर कितना लाइवलीहुड फोटो आ रहा है ना। कितने अच्छे लेंस है ना ब्रो, आज मैंने जो लगाया है। तो ज्यादा ही अच्छे हैं, मुझे जलन हो रही है। अबे वो सिग्नेचर रख, वाह, नॉर्मल वाह, पिक्चर वाह। चाहिए, सिग्नेचर रख। मेरे को छोड़ के सबका फोटो निकाला रेक्स। डन। अरे वैसे दास बाबू आपका शक्ल में थोड़ी चेंजेस होगा। अरे सामने तो आने दो उसको, बेचारा पीछे चला गया। आजा आजा। आज का इंटरव्यू कब हुआ? मेरे स्ट्रीम पे हुआ आज। और एक ले, छोटे ये था ही नहीं डिपार्टमेंट ना। कान के नीचे मारूंगा, छोटे डिपार्टमेंट। तुम उसी डिपार्टमेंट के अंडर आते हो। अरे थैंक यू भाई याद दिलाने। भाई लेकिन फर्स्ट फोटो इज लुकिंग टू गुड, खुद ही देखो एकदम लग रहा है ऐसे। हाँ, देखा वही, होगा। मैं हूँ ही नहीं उसमें। अरे रे कैंडिड, हाँ तू नहीं है इसलिए अच्छा लग रहा है। कैंडिड बोल रहा था तो खुद ही वो बोल रहा है, पॉइंट दे रहा है। हो गया कॉमेडी हो गया। चलो गुड नाइट गाइस, सी यू गाइस टुमारो आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट ब्रदर। मैं तो रात को सी यू गाइस होगा ना। हाँ यप मतलब मेरे को मसाला जेक विलियम्स टुमारो आफ्टरनून। अरे हाँ अच्छा, मैं तो सबके साथ चिल कर लूंगा। रात को फिर जाएंगे रेक्स, ठीक है? यस। नहीं अरे नहीं आज वहाँ भी नहीं होगा ये आज। हाँ और तीसरी गली जा रहे हैं, देख लो अभी, पहले 2 ही गली। आज एकदम फुल बिजी हो, समझ रहे हो? समझो सेंड इट। 10-4 हो जाएंगे सब। इधर मेरी तरफ देखो। समझ गए। तू समझ नहीं, अरे तब से बोल रहा है 10-4 करेगा सब, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा, इसलिए मैंने बोला कि 12 बजे कुछ भी बोलेगा मैं 10-4 कर लूंगा, अग्री कर लूंगा। क्या जाता है पता। समझो यार, समझो मैंने पी नहीं। इसका मतलब तुमको समझना पड़ेगा। हैरिस तक बीच इंटरव्यू में कुरुमा चलाते वीडियो कॉल कर है ठीक।
टर्बो वर्बो की आवाज आ रही थी। ओह क्या बात ये कर रहे चीफ हो? किधर गया यार? I'm going for my dad's friend's party. I'll go there for a while and then I will go somewhere else maybe and then come home. I don't know. It's going to be. हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रीम चालू है मेरा. हेलो फ्रेंड्स. डिस्क्लेमर अच्छा लगा. का बर्थडे है आज, बताया नहीं इसने. स्ट्रीम चालू है मेरा. ये लाइब्रेरी में म्यूट बैठने वाले लोग. स्ट्रीम चालू है मेरा. क्या? तन्मय बर्थडे है उसका. हाँ तन्मय का बर्थडे है, बताया नहीं. हाँ 2 लोग का स्ट्रीम चालू है अब. ओके. कैसे करते हैं स्ट्रीम? अरे सेंड इट भाई, कुछ फोटो भेज रहा हूँ, कर दो तुम भी. दास जी स्ट्रीम चालू है 2 लोगों का, अभी से ही बोल रहा हूँ. दास का खुद चालू है. अच्छा ठीक है. वही तो 3 बोल लोगों रहा हूँ, का. मेरा ओह. नहीं चालू है, मैंने बंद कर दिया. 3 किसको काउंट कर रहे हो? मैं मुझे बंद लगा कर जब तू चुका 2 हूँ. बोला था तो तू और मैं गिर रहा था इसलिए अपन ने नहीं 3 मैं बोला. दास के लेके अच्छा बोला. अच्छा. नहीं मैं दास फिर गुचीस. नाइट बॉट यार, नाइट बॉट. अरे फोटो कहाँ पे डाला रे रेक्स तूने? भेज रहा हूँ. भेज. अरे वो तुम थोड़ा मिस आउट हो जाते हो, रुको. कोई बात नहीं. मैं ही फोटो में मिस आउट हो गया फोटो लेने के चक्कर में. हाँ हम भी साथ में डालेंगे सेम टाइम पे. बताओ कब डालना है, टाइप कर लेने दो मैं पहले. रुको थोड़ा देर खा रहा हूँ. बिल्कुल. हाँ है. हाँ अरे हाई कमेंट आएगा किया तो. चल रुको भाई, पहले मैं डालूंगा. रुको मैं स्ट्रीम बंद करके आ रहा हूँ. हाँ क्या? हाँ फिर अच्छे से मजा ला दूंगा वो. चलो गाइस, हंस वाज द सेकंड इंटरव्यू. वैसे जंगल हंस वाज द सेकंड इंटरव्यू ऑन माय स्ट्रीम. तो गाइस जो भी आया लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो गाइस. मैं जा रहा हूँ. आई हैव सम प्लान्स टुनाइट सो आई एम गोइंग टू गो आउट्स. तो मिलते हैं. लाइक सब्सक्राइब शेयर. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट. सी यू गाइस, बाय बाय.